माननीय अध्यक्ष महोदय, एनसीआरबी का जो डाटा है 2018 और 20 का वो मेरे पास उपलब्ध है, वो मैं सदन के पटल पे उपस्थित करा दूंगा। संबंधित जो पुलिस थाने हैं उनके द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है उन्हीं की कोर्ट में उसके ऊपर कार्रवाई चल रही है। डाटा मैं उपलब्ध करा दूंगा। Honorable Sri Beni Benan. Sir, in our Factory Act, there are several provisions for the occupational safety and health welfare of the women workers. But, sir, harassment of the women workers in workplace is increasingly drastically these days. I would like to highlight one person. In my constituency, Kitex Garments, which is in my constituency, situated in main county, there are several women workers. Most of them are these guest workers from Jharkhand and Odisha. They are severely exploiting and harassment since. During the COVID lockdown days, there are guest workers tried to get out from the company, but they are beaten by the security guards. However, they are shown to manage to walk towards the nearest railway station. So I had a discussion with the local police officers, and their complaint was they are not properly, salary is not properly paid. They were forced to work 12 hours. Out of quality food was served, proper toilet facility was not provided, and they were promised a salary of rupees 8,500. Honourable member, 5,000. Sir, 1 minute. This is what. And I had written a letter to the Honourable Chairperson of National Human Rights and so many ministers, but I didn't get an answer. Sir, hence I would like to know whether the government would like to inquire about the incidents in the company and take necessary action. माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक केरल प्रांत में फैक्ट्री अधिनियम के अंतर्गत दर्ज किए गए मुकदमों की संख्या है, 2019 में जो हमें सूचना स्थानीय अधिकारियों को पत्र देखने के बाद प्राप्त हुई है, 190 विषय 2019 में लंबित थे और उसके दौरान 2019 में 161 विषयों पर निर्णय लिया गया और 52 व्यक्तियों को दोषी पाया गया। ये फैक्ट्री जो एक्ट है उसके अधिनियम के अंतर्गत पाया गया। जहां तक सेक्सुअल हरेसमेंट एट वर्क प्लेस है वो क्रिमिनल लॉ है, उसमें राज्य सरकार के आंकड़े एनसीआरबी में उपलब्ध कराए जाते हैं। ये जो दूसरा फैक्ट्रीज एक्ट में मैंने केरल में जो फैक्ट्रीज एक्ट है उसमें मैंने संख्या उनको बताई है कि 190 लंबित हैं और 52 लोगों को दोषियों की संख्या बताया गया। लेकिन ये 52 जो लोग जो इनको दोषियों के रूप में बताया गया है, ये फैक्ट्रीज एक्ट के अंतर्गत विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत हैं। इसको वर्गीकृत करके विशेष रूप से महिलाओं के संबंध में अगर कोई कार्यस्थल पर फैक्ट्री एक्ट के अंतर्गत आता है तो वो इस जानकारी के आधार पर मैं उन्हें विस्तार से दे दूंगा। Question number 242, Dharamveer Singh. अन्य सदस्य। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी, क्योंकि नई शिक्षा नीति देश में लागू हो चुकी है और आज क्योंकि केंद्रीय विद्यालय हों या जवाहर विद्यालय, ये केवल एक बोर्ड के नीचे आती हैं। सारा देश एक है, एक जैसी शिक्षा चाहते हैं। तो मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, क्योंकि हमारा एक डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जो चरखी दादरी, वहां पर पंचायत ने जिला प्रशासन के माध्यम से 50 एकड़ जमीन भी दे दी। क्या मंत्री जी आश्वासन देंगे कि पॉलिसी के मुताबिक ही वो स्कूल भी हमारा ये साल नहीं तो अगले साल चालू हो जाए? अध्यक्ष जी, केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय से संबंधित माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा था, तो ये एक सतत प्रक्रिया है और जहां तक शायद नवोदय विद्यालय की बात कर रहे हैं चरखी दादरी में खोलने का, तो निश्चित रूप से वहां पे प्रक्रिया में है और वो बहुत ही जल्द खुल जाएगा। श्री एन.के. प्रेमचंदन जी। Thank you very much, sir. Sir, my question is relating to Kendriya Vidyalaya and Navodaya Vidyalaya in the light of Prime Minister's, there is a program, there is a prestigious program for the minorities. That is a Prime Minister's Jan Vikas Karyakram program is there. This program has been implemented as per the recommendations of Rajendra Sachar Committee report for the upliftment of the minorities in the country. My specific question to the Honourable Minister is whether in starting or commencing Kendriya Vidyalayas and Navodaya Vidyalayas, the blocks which are identified under Prime Minister's Vikas Karyakram Yojana,
will be given due priority so as to commence the schools in those blocks in which the Prime Minister's program is there. There's a specific recommendation is there in the Register Sachar Committee report. As per the recommendations, this program has been implemented by the Honorable Prime Minister. Will it be given priority in order to commence these schools? Thank you very much, sir. अध्यक्ष जी बहुत ही वरिष्ठ सदस्य हैं और हमें लगता है कि इस प्रश्न से ये संबंधित नहीं है, तो अलग से अगर इसमें करेंगे तो जरूर जवाब दे देंगे। श्री मनीष तिवारी जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष जी, प्रश्न पूछने से पहले इस प्रश्न पे मैं आपका संरक्षण चाहूंगा। अध्यक्ष जी, इस सदन में जितने लोग बैठते हैं वो 15 से 20 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनके संसदीय क्षेत्र में लगभग 35 से 40 लाख लोग रहते हैं। अब जो एजुकेशन मंत्रालय है, एचआरडी मंत्रालय है, इनकी तरफ से 10 सीटों का कोटा दिया गया है हर एमपी को केंद्रीय विद्यालय का रिकमेंडेशन करने के लिए। मैं बहुत ही विनम्रता से यह विनती करना चाहता हूं और अध्यक्ष जी आपका संरक्षण चाहता हूं कि इससे हमको बहुत तकलीफ हो रही है और मेरा आग्रह यह है कि या तो इस कोटे को खत्म कर दिया जाए। इससे जो हमारे लोग तो छोड़ो, हमारे जो विधायक है वही हमसे नाराज हो जाते हैं क्योंकि इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट होती हैं, आप अकोमोडेट कर नहीं सकते। मैं आपकी दिक्कत भी समझता हूं, मैं आपकी तकलीफ भी समझता हूं, पर या तो मंत्री जी ये कोटा बढ़ा दिया जाए, 10 से इसको 50 कर दिया जाए, और अगर आपकी लिमिटेशन है और इस लिमिटेशन को मैं समझता हूं, फिर मेरा आपका विनम्रता से निवेदन है और मेरे ख्याल सारा सदन इससे सहमत होगा, फिर इस कोटे को खत्म कर दिया जाए। अध्यक्ष जी, यद्यपि ये प्रश्न हरियाणा में नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय खुलने के संबंध में है, लेकिन गृह की मर्यादा और मनीष जी जैसे वरिष्ठ व्यक्ति की ये भावना, शायद उसमें से पक्ष विपक्ष में सदन विभाजित भी है। लेकिन मैं आपकी अनुमति से एक दो विषय स्पष्ट करना चाहूंगा। कोई अधिकार का विषय नहीं है। एक कभी 2 था, कभी 0 था, कभी 2 था, कभी 5 हुआ, अभी 10 बना है। उसके उपरांत भी कई प्रकार के एक मिनिस्टर्स की पास एक कोटा था, उसमें कोर्ट की कुछ टिप्पणियां भी है, फिर वो एक विचित्र स्थिति में है। हमारी एक सहमति अगर बनती है कि हम प्रैक्टिकली स्कूल शिक्षा एक राज्यों की विषय है, लेकिन देश में प्रारंभ में केंद्रीय सेक्टर की कर्मचारियों की बच्चों के लिए ऑल इंडिया ट्रांसफर होती है, थोड़ा उनको सुविधा मिले पढ़ाई ट्रांसफर के साथ साथ, इसीलिए सेंट्रल स्कूल खुले। लेकिन धीरे धीरे के क्वालिटी की स्कूल, सेंट्रल स्कूल हम सभी के प्रयास से पिछले 50-60 साल में केंद्रीय विद्यालय संगठन एक अपना मानक प्रतिष्ठा किया। ऐसे ही जवाहर नवोदय विद्यालय, ये सारे विद्यालय आज ग्रामीण इलाका में टायर 2 टायर 3 सिटी में अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए का आकर्षण है। मैं इस बात को भी आदर के साथ स्वीकार करता हूं कि जनप्रतिनिधियों के ऊपर उसकी दबाव है, लेकिन हम जनप्रतिनिधि है, हम चुनिंदे लोगों के लिए काम नहीं कर सकते हैं। वो जो सारे बच्चे पढ़ रहे हैं हमारी निर्वाचन क्षेत्र की बच्चे पढ़ रहे हैं, सामान्य वर्ग की एक प्रक्रिया के तहत पढ़ रहे हैं। अगर ये सदन उचित मानता है, क्या हम इस बड़े पंचायत में बैठ के हम अपना अधिकार को चंद लोगों के लिए समर्पित करें या सबके लिए समर्पित करें, यह सदन फैसला कर सकता है। आपके मार्गदर्शन उसमें चाहिए। सदन मेरी शायद में सहमत हो, खत्म कर दिया जाए इसको, हाँ समाप्त कर दिया जाए। मंत्री जी क्यों विशेष प्रावधान रखो, फिर बात कर लेंगे। सभी दल के एक मिनट सभी दलों के नेताओं से जो भावना है सदन की, सभी दलों के नेताओं से बात करके माननीय मंत्री जी को अवगत करा देंगे। सर बात यह कि सर हमें 5 करोड़ मिलते हैं, वो भी तो हम जाना चाहते हैं, इसका मतलब ये नहीं खत्म किया जाए। श्री आपने कहा कि समाप्त करो विशेषाधिकार,
और विशेषाधार समाप्त करने की प्रक्रिया सरकार ने शुरू कर दी है, तो सदन सहमत हो जाए उस पर। सभी दल के नेताओं, एक मिनट प्लीज बैठ जाइए, इस विषय पर सभी दल के नेताओं से बात करके निर्णय लिया जाएगा। ओके, श्री गणेश सिंह जी, ऐसे खड़े होने वालों को कोई सप्लीमेंट्री नहीं मिलेगी और इस पूरे समय में नहीं मिलेगी। आपने नाम नोट करा दिया है, आप नोट करा दो, व्यवस्था से दे देंगे। केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय खोलने के लिए मेरे लोकसभा क्षेत्र सतना, क्योंकि बड़ा लोकसभा क्षेत्र है, मैहर एक बड़ी जगह है, वहां के लिए पिछले 10 वर्षों से मैं कोशिश में था कि वहां एक नया केंद्रीय विद्यालय खुल जाए। ये चुनौती पद्धति का उल्लेख किया गया है और चुनौती पद्धति में कोई प्राधिकारी के सहमति पर ही खुल सकता है। तो मैं जानना चाहता हूं माननीय मंत्री जी, चुनौती पद्धति क्या है? क्या वहां की आवश्यकता के अनुसार हम केंद्रीय विद्यालय खोलने के लिए, चूंकि जो भी फॉर्मेलिटीज सब पूरी हो चुकी है, जमीन दे दिया, सहमति दे दिया, भवन दे दिया, सब कुछ दे दिया, अब वो चुनौती पद्धति में डाल दिया गया, तो कब तक उसका निर्णय होगा? मैं भी लोकसभा राज्यसभा की सदस्य रहा, मैं भी मेरे गांव में एक सेंट्रल स्कूल खुले पिछले 20 साल से कोशिश कर रहा हूं। सब एक माननीय सदस्य एक निवेदन करते हैं विभाग को, विभाग उसको राज्यों को भेज देता है, राज्य सरकार भी रिकमेंडेशन करता है कहां खुले। कुछ मानक है सेंट्रल स्कूल खुलने के लिए। मैं फिर कह रहा हूं कि सेंट्रल स्कूल खुलने के लिए जब तय किया गया हुआ 4-5-8 दशक की पहले, तब शर्त यही था कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी जहां ज्यादा रहेंगे उस इलाका में स्कूल खुले जाएंगे। यह है प्रमुख विषय। उसके बाद राज्यों की ओर से अपेक्षा रखा जाता है जमीन की, अस्थायी रूप में कुछ साल के लिए निःशुल्क मकान की। यह सारा विषय होता क्या है, एमपी सदस्य महोदय एक बार चिट्ठी लिख देते हैं, हम उसको भेज देते हैं, राज्य उसमें अभी तक कई स्कूल खुले हैं, राज्य अभी तक लैंड उपलब्ध नहीं कराया है, कई स्कूल किराए के मकान में चल रहा है, अभी तक उसकी व्यवस्था नहीं हो पा रही है। राज्य के ऊपर बहुत सारे जिम्मेदारी आती है। मैं अभी इसी कोशिश करेंगे, हम इसी सत्र के दौरान सारे माननीय लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य को अवगत कराएंगे कि आपके इलाका में कौन सा चीज पेंडिंग है, लैंड को लेके, घर को लेके, उसको करिए। नया स्कूल की प्रपोजल आप देइए, हम राज्य सरकार को भेजेंगे। दोनों की सहमति होने से, मानक होने से इसको ही चैलेंजिंग रूट किया गया है। माने पिक एंड चूज नहीं करेंगे, एक लिस्ट के ऊपर कर रहे हैं। ये हमारी सरकार की पारदर्शी प्रक्रिया है। मोहबा मित्रा। सर, थैंक यू सर. Sir, I had my honourable colleague, Mr. Manish Tiwari, put forward his point of view. I'd like to put out another point of view, which is I represent an area which is on the border and has a lot of BSF and a lot of people with transferable jobs. The central school there is only one Kendriya Vidyalaya there, and like I'm sure many of my colleagues, we face this trouble every year that there are more than 10. 10 quota is very small, I think, but to do away with the quota completely would be very, very difficult, difficult. I would urge that since there are some people in some areas where there are other schools and they can take advantage, in areas like ours, there's only one CBSE school. People with transferable jobs need that. So perhaps the ministry for this parliament secretariat can have a separate cell where those people who need more quota, we can get that. It will be very difficult if the quota were removed, sir. Very difficult. सर, आपने एक आदेश दिया ही के सुरेश जी, क्या विषय यही? छोटा क्वेश्चन, हाँ, माय कॉन्स्टिट्यूंसी सर, ओपनिंग ऑफ द केंद्रीय विद्यालय इन माय कॉन्स्टिट्यूंसी। ये सदन में जितने लोग बैठे हैं ना, सब केंद्रीय विद्यालय की मांग करेंगे। एक इधर से हाथ खड़ा, इधर क्रॉस से। सर ऑनरेबल स्पीकर सर, केंद्रीय विद्यालय के नियम प्रक्रिया बता दी है। सर ऑनरेबल स्पीकर सर, ओपनिंग ऑफ न्यू केंद्रीय विद्यालय इन माय कॉन्स्टिट्यूंसी कोट्टारकरा, Kollam district, Kerala. Kerala government already transferred 5 acres land to Kendriya Vidyalaya Sangathan, and also temporary accommodation also hand over to Kendriya Vidyalaya, and also the regional commission Kendriya Vidyalaya inspected along with the central PWD officials. So everything is ready, but the government of India is not sanctioned the project. That's why we are waiting for last 10 years for starting this school. So I would like to, Honorable Minister, through you, sir, whether every formalities has been completed in Kottarakara, Kollam district for Kendriya Vidyalaya, but Government of India is not sanctioning.
I would like to ask Honorable Minister whether ऑनरेबल we are going to मेंबर stand. ऑनरेबल मेंबर शून्यकाल और प्रश्नकाल में अंतर समझो। ये शून्यकाल नहीं चलना चाहिए प्रश्नकाल में, मेरे यहाँ खोलो मेरे यहाँ खोलो। प्रश्नकाल और शून्यकाल डिफरेंस है। मैं पूरा शून्यकाल आपको अलाउ करता हूँ। क्यों बालू जी, सही है ना? इसलिए क्वेश्चन नंबर 243 नो आंसर। एक पॉलिसी मैटर बता दिया मंत्री जी ने, उस पॉलिसी के तहत चलाया। मंत्री जी आप बोलना चाहते हैं कुछ? नहीं सर, वो एक मैं फिर आप ही की अनुमति से एक विषय कहना चाहूँ। माय डियर फ्रेंड सुरेश जी, प्लीज अप्रिशिएट वन थिंग, डोंट गो बाय द हाफ बेक्ड केक और हाफ बेक्ड इंफॉर्मेशन। आई एम रेडी टू इन्फॉर्म ऑल ऑफ यू। जो आप कहते हो कि मेरे वहां मानक के आधार पे स्टेट गवर्नमेंट ने दे दिया, अकोमोडेशन दे दिया, मैं जिम्मेवारी के साथ आप सभी की कंस्टिट्यूंसी में जो जो पेंडिंग इशू है, विभाग की क्या, केंद्रीय विद्यालय संगठन की क्या व्यू पॉइंट है, मैं आपको लिख के दूंगा। उसमें कुछ कुछ अनामोली है। यह कहना अनुचित है कि भारत सरकार खोल नहीं रहा है, ऐसा नहीं है। हम जो मानक के आधार पर खोलने के लिए पूरा ओपन है। हर एक 2-3 साल में एक बैच निकलती है, लेकिन फिर मैं विनम्रता से कहूं, बच्चों को पढ़ाने की हमारी जो संवैधानिक व्यवस्था में जिम्मेवारी है, यह ज्यादातर भारत सरकार के कर्मचारियों के लिए है। हर एक जिले में सेंट्रल स्कूल फिर भी खुल चुका है, सबके प्रयास से खुल चुका है। यह अधिकार की विषय नहीं है, यह राज्य की जिम्मेवारी है। मैं इस सत्र के दौरान सभी को अपने अपने विधान लोकसभा के अंदर बैठिए, तो गोगोई जी बैठिए। ओके, आप उसकी पेरी मत करो। नहीं, 7 बार चुन के आने से नियम बदल नहीं जाता है। नहीं बदलता। अध्यक्ष महोदय, 7 बार आने से नियम बदल नहीं जा सकता है। सुरेश, डोंट आर्ग्यू इन फेवर ऑफ सुरेश जी। देखिए, ये प्लीज नो अलाउ, कोई इनका रिपोर्ट नहीं हो रहा। ये आप ये 0 ओवर नहीं है सदस्य अध्यक्ष आपने कहा। क्वेश्चन नंबर 243 उन्मेष पाटिल, आपको पैरोकार बनाया कि उन्होंने? यहाँ कोई वकील नहीं बनता है सदन में, ध्यान रखना आज के बाद। यहाँ वकालत की सिस्टम नहीं है। क्यों मनीष जी, बैठिए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 243 उन्मेष पाटिल, हिना गावित, मंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी। उत्तर सदन के पटल पर रखा गया। श्री टी.आर. बालू जी। Sir, there is a Sarva Shiksha Abhiyan. Now the question pertains to Samikra Shiksha Abhiyan. They are going, the government is proposing to impart quality education from preschool to 12th standard for the next 5 years. I want to know whether there was any shortcomings in the Sarva Shiksha Abhiyan. For that matter, you are introducing a new system. That is one thing. And what are the targets for the state board examination and as well as central board examination, which the government has fixed now? Are you going to introduce this education system in mother tongue itself? These are all the questions. Honorable Speaker, sir, this is the name of the scheme. This is the name of the scheme. During Atalji's period, where Honorable Baluji was a part of government, I think he is remembering all these old scheme, Sarva Shiksha Abhiyan. Since last few years, the old scheme has been with some new modification and same as Samagra Shiksha Abhiyan. Essentially, this is a 60-40 centrally sponsored scheme. States are free to run their own course, own language, and in this national education policy, much emphasis is given to mother tongue. And in this Samagra Shiksha Abhiyan, one of the priority area is to create local language system, be it digital library, be it classroom, be it smart through local language. This is a very progressive scheme and all the states are cooperating on this issue. This is a very progressive step implemented by Modi government. Now, Sri Krishna. Thank you, sir. So, Andhra Pradesh state government is spending heavily on the education to the tune of almost 12% of the budget we are spending. And we have come up with various new schemes like Amavadi, wherein we are giving parents 15,000 rupees if they send a kid to the school, and also Nadu Nedi, where we are refurbishing the schools. But, sir, if you look at the data of Samagra Shiksha Abhiyan that you are talking about, in the last year,
the percentage spent as proportion to the approved budget, not only Andhra Pradesh, but Maharashtra, Himachal Pradesh, Gujarat, Chhattisgarh, Kerala, Karnataka, Telangana, and West Bengal, all these states have spent below 60%. Yes, it is a 60% is from the central government and 40% is from the state government. But still, these states could only drop below 60%. So what I request or what we want to ask you is there any consultation made with the states so that the scope of this scheme can be improved so that the states can draw much better and utilize these funds much better? Thank you. Speaker, sir, there's a very good question my friend has raised. Yes, there is a slow in taking the central share from the Delhi. But there is a basic difference, there is a basic reason. Because now we all are in the age of transparency. Minister of Finance has given a new pattern of disbursement to all the line ministry in Government of India, and all the line ministry are also persuading the respective state government come through more transparent manner. Government of India is going to release the fund when you will deposit from your state budget to the respective department your 40%. Immediately, within few seconds, Government of India is going to release that money. Due to their own financial structure, different states, lot of states are taking the progressive stance. Lot of states have their own way of functioning. Government of India is constantly, especially Finance Ministry and all the line ministry, we all are persuading, and lot of states are also. This is a transitional phase. I hope by this end of March 31st, there will be substantial improvement in all these areas. This is a new pattern Government of India is emphasizing. This money belongs to the common man of this country. It has to be spent pie by pie in a more transparent manner. This is the effort of our government, and state government is cooperating. Gradually, it will improve. State has to adhere the financial discipline jointly agreed by Government of India and respective state governments. Question number 244, Srimati Aparijita Sarangi. 244. माननीय मंत्री जी, उत्तर सदन पर रखा गया है. Honorable Speaker, sir, we are well aware of the fact that the differently abled children in our schools require very special care and protection. Sir, online teaching for these children can only be a stopgap arrangement because they need personal care. Sir, if we go by the established norms, 3% of the children population, the population that goes to schools, out of these 3% of the children's population, in fact, those who are differently abled should be integrated with the school system. The norms say that 3% of these children are supposed to be differently abled and they should be integrated with the schools. But unfortunately, in India, 0.5% to 0.6% of these children have been detected and brought into the school system. So I would like to request Honorable Minister Education to let us know whether there is a roadmap, there is a strategy, there is a plan of action of Government of India to move from 0.5, 0.6% to 3% of these differently able children and integrate them with the schools. माननीय मंत्री जी. अध्यक्ष जी, भारत सरकार के माध्यम से चूंकि शिक्षा समवर्ती सूची में है, लेकिन फिर भी अभी दिव्यांग छात्रों के लिए अभी जो समग्र शिक्षा अभियान की बात हम कर रहे हैं, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में समग्र शिक्षा के माध्यम से कि सभी को बराबर की शिक्षा मिले, इस दृष्टिकोण से हम काम कर रहे हैं. और शिक्षा मंत्रालय के द्वारा लगातार राज्य क्षेत्र और नीतिगत पहलों, दिशा निर्देश, डेस्कटॉप, मोबाइल, टेलीविजन आदि के माध्यम से भी बच्चों की पढ़ाई, दिव्यांग बच्चों की पढ़ाई सुनिश्चित हो सके, इसके लिए हम लगातार प्रयास करते हैं. और सरकार के माध्यम से समय समय पर हम संघ राज्य क्षेत्रों को भी हम अपनी ओर से गाइडलाइन देते हैं कि किस तरह से वो बच्चों की पढ़ाई वो कर सके. और इसी के तहत आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह अभी इस कोविड महामारी के समय में भी जो परेशानी हुई थी, पीएमई विद्या के माध्यम से बच्चों की पढ़ाई जो कि लॉस न हो, लर्निंग लॉस न हो, उसके वजह से लगातार पढ़ाई
ऑनलाइन डिजिटल माध्यम से चलाया जा रहा था और इसी के तहत इस बार बजट में भी लगभग 200 DTH चैनल की भी घोषणा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की है ताकि सभी बच्चों को समान और गुणवत्तायुक्त शिक्षा मिल सके। सप्लीमेंट्री। Sir, to address the issue of learning disabilities of these differently abled children, we need to have a large pool of special educators all across the country. Sir, the Rehabilitation Council of India actually raises this pool, gives recognition to institutes to actually train people to become special educators. But unfortunately, I was going by the statistics, the RCI has given recognition to very few number of institutes across the country. So, sir, in this regard, I would like to ask whether the Ministry of Education, in association with the RCI, can think of a strategy by which, huge number of institutes, those who are eligible, can be given the recognition so that more number of special educators can come. Honorable Minister. Speaker, sir, this is a very genuine concern shown by Honorable Member and all the section of the House. Let me put forth, this is a very sensitive issue. Our government, when Prime Minister Modi took charge, he redefined the entire issue. Now, he has broadened who all are disabled, who all are Divyang. In India, this is a very new issue. All these dysfunctions, malfunctions are there within our own family. But due to... Please, let me. I am not so expert like you, Taiji. Mantri ji, please, Mantri ji. Please. Speaker, sir, this is a very sensitive issue. The thing, lot of... मित्र लोग ज्यादा हैं आपके, इसलिए आप... No, I am not expert like Tai. She's a knowledgeable lady, and is a very expert person. I am not so. So, with my little understanding, I would like to explain. If I cannot convince them, I will come to them. I will invite them, all of them, to my office, and we will interact. This is a very genuine issue raised by Honorable Member. Sir, there is a lack of awareness within society who all are they in disabled person in our family. Sir, when I took charge of this sector, in the initial days, within first week of my taking charge in the Parliament, I face a question, dyslexia. Sir, I can candidly admit, I never heard this kind of terminology in my career. So when I asked my colleague, what is the Hindi? इसकी हिंदी क्या होता है? सर, हिंदी करने के लिए सर हमारे पास कोई वोकाबुलरी में शब्द नहीं था. हमारे घरों में इस प्रकार की बच्चे भी हैं. भारत में अभी जो there is a new national education policy, lot of emphasis, lot of priority has given on this issue. Addition to that, during this COVID period, हमने तो digital education, दिशा TV वगैरह लगाए, लेकिन how to educate the disabled students. There's a new challenge. We all are concerned, experts are working on that. I would like to seek advice of this House, how to create more trainer, more school, who all are dysfunctional, let us know them. Collectively, we have to face this challenge. We have to educate all these segments. According to me, the population of this category of different kind of disabilities is around 10%. How to handle them? This is a challenge. We all have to work together. Iti Mohammad Bashir ji. Education of these differently abled students is really deplorable, sir. The first thing I would like to say is development of sign language. That is very much needed. Facility is very less. That is number one. Number two, application of educational technology for the upliftment of differently abled students. Sir, worldwide, a lot of technology updation is coming up for the development of the education of the differently abled students. My humble question to the Honorable Minister is, number one, whether you should take effective steps for developing the sign language of the country, and the second one, application of the education technology for this particular section. Would you take interest in that also? That's my question. Speaker, sir, both the advice are very pertinent. I am assuring Honorable Member in both the sector regarding sign language and implementing technology for education of the physically disabled students. Both we all are working on that. This is a good advice. We will take care of that.
श्री SS आलूवालिया जी। अध्यक्ष महोदय, ये एक विषय ऐसा है कि जब आप किसी स्कूल का दौरा करें या गांव में जाएं तो हर एक दूसरे तीसरे घर में आपको ऐसे बच्चे मिल जाते हैं। और सरकार की जो नीति है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स CWSN, इसके तहत बजट में प्रावधान भी रहता है, पर स्कूलों में जाकर पता लगता है कि कितने % बच्चे वहां पर हैं। जो हमारी पहली प्रश्नकर्ता ने सवाल किया, स्कूल में जाकर पता लगता है कि बच्चों की डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट मिलता नहीं। कारण क्या है कि उन्हें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाकर उसका सर्टिफिकेट लेना होता है। मां बाप के पास उतना समय नहीं होता कि जाकर मेडिकल बोर्ड के सामने पेश हो सके। क्या सरकार इस पर गौर फरमाएगी कि ऐसे बच्चों की जांच और सर्टिफिकेट इशू करने की प्रावधान स्कूल में ही कैंप लगा के किया जाएगा? तब मैं समझता हूं सारे बच्चों को ये सुविधा मिल सकेगी। और मेरा दूसरा पार्ट है अपने सवाल का कि ऑनलाइन क्लास के लिए ये इस तरह के बच्चों को ऑनलाइन में काम करने के लिए उनकी उंगलियां या उनकी स्पीच से भी नहीं पता लगता, तो क्या उनकी स्पीच का एक रिकॉर्ड तैयारी करके, क्योंकि कंप्यूटर इज ए डिसिप्लिन स्लेव सर, वो आपकी भाषा को समझता है। एक बार आप बोले, 2 बार बोले, तोतला भी बोले और गूंगा भी इशारा करे, उसको समझता है। तो क्या उनके लिए कुछ प्रोग्राम कराएंगे और इन तरह के बच्चे के लिए एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर तैयार किया जाएगा जो ऑनलाइन क्लासेस भी कर सके? स्पीकर साहब, जैसे मैंने बड़े विनम्रता से इसको स्वीकार किया कि ये दुनिया अभी 21वीं सदी में भी भारत के लिए बहुत इनएडिक्वेट है। क्या ना, हमारी जानकारी, हमारी अवेयरनेस, पिछले 7 सालों में हमारी सरकार इस पे बहुत काम किया है। मैं सारे सजेशंस को, ये भी अच्छा सजेशन है जैसे पूर्व सदस्य ने पूछा, ये सारा विषय पे मेरे जानकारी के हिसाब से विभाग ने और विभाग से बाहर इस प्रकार की बहुत सारे चिकित्सा की दुनिया के लोग, मनोविज्ञान की शास्त्र की दुनिया के लोग उसमें बहुत काम कर रहे हैं। सारे विषय के एक वाइडर कंसल्टेंसी में हमारी नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क की काम राष्ट्रीय स्तर पे, राज्य स्तरों पे हो रहा है। इसी आयाम में भी हम कई सारे विमर्श कर रहे हैं। ये सारे विमर्श उसी दिशा में है। सबको हम समाहित करके निश्चित रूप में अपने आने वाले पाठ्यक्रम, आने वाले पेडागोजी, आने वाले मेथोडोलॉजी में लाया जाएगा। ऐसे मंत्री जी, राज्य सरकार डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए आप सलाह दे सकते हो कि स्कूल में डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लगा, सलाह दे सकते हैं, क्या दिक्कत है? महोदय गौरव गोगोई जी, राज्य सरकार को बनाना है, राज्य सरकारों को सलाह दे सकते हैं। Thank you, Honorable Speaker. First of all, let me appreciate Honorable Member of Parliament Aprita ji for raising a very sensitive question and also appreciate Honorable Minister for his frankness and his dedication to this subject. Sir, we often talk about people living with disabilities and children living with disabilities, but do we give them space in policy making? Do we give them space in our policy planning institutions? If they are given space, I'm sure we will get the necessary suggestions. So my request is that, as you Minister talked about, which is the National Curriculum Framework, there is also the National Education Policy Task Forces which is being set up in different states. अगर हर मंच में people living with disabilities और experts को स्थान दिया जाएगा, तो उस मंच में वो अपनी बात रख पाएंगे और हम भी आने वाले समय में उपयुक्त कदम उठा पाएंगे। तो यही मेरी दरख्वास्त सरकार से रहेगी। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, ये एक हेल्दी डिस्कशन सदन में हो रहा है। ऐसे बहुत सारे विषय हमारे देश में है जिसमें शायद सदन बिना विवाद की सहमत हो रहा है। मैं निश्चित रूप में गौरव गोगोई जी ने जो विषय उठाया, आज की राज्य में जो स्टेट SCF बना है, स्टेट कैरिकुलम फ्रेमवर्क बना है, इसकी विमर्श हम जिला तक भी लेके जा रहे हैं, स्टेट में नहीं, जिला तक भी लेके जा रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं इस दुनिया के लोग भी, तज्ञ और प्रभावित लोग, नीति निर्धारण से लेके ऊपर तक उसमें इन्वॉल्व हो, उसकी हमारी कोशिश है। और भी कोई सजेशन सदन की और सदस्यों के माध्यम से आएगा, उसको हम सहृदय अकोमोडेट करने के लिए तैयार हैं। क्वेश्चन नंबर 245 श्री नव कुमार सड़निया। सर, क्वेश्चन 245।
माननीय मंत्री जी। उत्तर सभा पटल पर रख दी गई। ऑनरेबल मेंबर। थैंक यू सर, आपने मुझे पूछने का मौका दिया। पिछले 8 साल में पहली बार हमको ये मौका मिला। सर, मिनिस्टर का जो रिप्लाई है उसमें हमारा जो काउंसिल है 6 शेड्यूल का, बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल, डिमा हसाओ और कार्बी आंगलॉन्ग में या स्पेशल पैकेज के अंदर टोटल 102 प्रोजेक्ट में 1170 करोड़ का पैसा दिया है और इसमें 56 प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है और 46 प्रोजेक्ट 576.57 करोड़ का ऑनगोइंग है, लेकिन इसमें डिटेल्स नहीं है। सर, मुझे इसलिए ये पूछना है, पिछले बहुत टाइम से कार्बी आंगलॉन्ग और बीटीसी में हजारों करोड़ का घोटाला होने का केस भी चला है और पार्लियामेंट में भी आया है, क्योंकि वहां कोई मॉनिटरिंग नहीं होता है। 2016 से जब दिशा कमेटी बनाया, सिर्फ मुझे इसके लिए हटा के एक राज्यसभा का एमपी को दिशा का कमेटी बन गया, चेयरमैन बना दिया, लेकिन अभी उसका टाइम खत्म हो गया, अभी हम फिर दिशा का कमेटी में आ गया है चेयरमैन। तो इसलिए मेरा मांग है इसको दिशा के अंदर लाना चाहिए। और स्टेट लेवल में जो कमेटी होता है मॉनिटरिंग का, वो भी नहीं है। और हम 5th शेड्यूल एरिया में भी घुमाए हैं, इसलिए भी इस एरिया में भी हमको बहुत सारे लोगों ने कंप्लेन किया है जो ट्राइबल सबप्लान का पैसा है वो इधर इधर दूसरा एरिया में डाइवर्ट होता है। तो स्पेशली हमारा मिनिस्टर से मुझे पहला है ये डिटेल्स डाटा हमको चाहिए और दूसरा मॉनिटरिंग के बारे में आपको क्या सोच है उसको बताना है। थैंक यू सर। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो ऑटोनोमस काउंसिल है उसके संदर्भ में पूछा है। पूरे देश में दिशा के एक गाइडलाइन है जिसमें सभी मंत्रालयों के जितने भी कार्यक्रम हैं उन सारे कार्यक्रमों की समीक्षा की जाती है और उसमें ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री का भी कामकाज की समीक्षा दिशा स्तर पर कार्यान्वयन की दृष्टि से किया जाता है। और मैं निश्चित रूप से कहूँगा कि दिशा की बैठक में आप इसकी चर्चा कर सकते हैं और इसमें अगर कहीं आपको किसी तरह की कठिनाई ऐसा लगता है तो हम यहाँ से उसके लिए गाइडलाइंस यदि आवश्यकता पड़ेगी तो अलग से देंगे। ऑनरेबल मेंबर। ठीक है, लेकिन मेरा जो 6 शेड्यूल एरिया है उसमें थोड़ा सा दिक्कत है, क्योंकि उसमें डीसी मेंबर सेक्रेटरी होता है दिशा का, लेकिन डेवलपमेंट के पार्ट में उसमें कोई पार्ट नहीं है उसका, क्योंकि ये सारा ट्रांसफर सब्जेक्ट है काउंसिल का। पिछले हमारा जो बीजेपी गवर्नमेंट सरकार बना है उसमें एक डिसीजन लिया है उन लोगों ने, जो डीसी को कुछ कुछ एरिया में उसको पावर देगा, एसओपी निकलेगा उसे, लेकिन अभी तक 1 साल हो गया एसओपी नहीं निकला है। डीएम भी हमको पूछते हैं सर हमको पता नहीं है अभी किस में हमको क्या करना है क्या बोलना है। तो हमारा मिनिस्टर से आग्रह है अगर एसओपी भी उसको ठीक तरह के बता देगा जो क्या करना है वो तो होगा। और आपसे हमारा गुजारिश है आप एक बार स्टेट गवर्नमेंट को भेजिए जो दिशा के अंदर ये टीएसपी का जो मैटर है उसको आना, उसमें 15 फाइनेंस का भी मैटर नहीं आता है क्योंकि ये पैसा काउंसिल में जाता है। और सर दूसरा हमारा क्वेश्चन है जो अभी प्रश्न नहीं था कि आपका सर एक वस्तु है जो एकलव्य मॉडल रेसिडेंस स्कूल का मेरा क्षेत्र एसटी का 4 डिस्ट्रिक्ट 5 डिस्ट्रिक्ट अभी 5 डिस्ट्रिक्ट बन गया है, तमलपुर भी बन गया है, इसमें सिर्फ एक एकलव्य मॉडल स्कूल है और उसका भी हालत खराब है। मेरा रिक्वेस्ट है एक बार मिनिस्टर को उस पर एक बार जाके विजिट करना चाहिए और बाकी जितना डिस्ट्रिक्ट है उसमें और एक एकलव्य मॉडल स्कूल जल्दी जल्दी बनाना चाहिए। इसी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में इसे हम मिनिस्टर का जवाब चाहिए। थैंक यू सर। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो पूछा है और जिसके बारे में उन्हें थोड़ी शंका है, पूरे देश में सभी जिला के माध्यम से ही एजुकेशन होती है। व्यवस्था के दृष्टि से राज्य सरकार कुछ ऑटोनोमस काउंसिल या जिला स्तरीय जो हमारे निकाय है उसके माध्यम से। तो आपने ठीक ही कहा है, जिसको जानना चाहे मैं इस संदर्भ में रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री चूँकि हमारा
इन सारे कार्यों के मामले में गाइडलाइंस जारी करता है। हम उसके साथ बात करके इसका समाधान करेंगे। दूसरा जो उन्होंने पूछा है एकलव्य मॉडल स्कूल के बारे में, उसकी जो मापदंड तय की गई है उस मापदंड के आधार पर स्वीकृति दी गई है। और तीसरा उन्होंने यह विषय जानना चाहा कि उन क्षेत्रों में जो विद्यालय है उसकी स्थिति अच्छी नहीं है और वहाँ जाना चाहिए। मैं माननीय सदस्य के साथ मिलकर के बातचीत कर लूँगा और ज़रूर जाऊँगा ताकि मैं वहाँ की वास्तविकता से रूबरू हो सकूँ और उसका कोई अगर आवश्यकता पड़ेगा उसका समाधान करें। श्री अर्जुन लाल मीणा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जो क्वेश्चन का जो विस्तृत उत्तर दिया है। मैं भी शेड्यूल 5 जो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ये जो आदि राज्य हैं शेड्यूल 5 में, वहाँ से आता हूँ और मेरा अपना संसदीय क्षेत्र उदयपुर है। उदयपुर के में इन्होंने इनके मंत्रालय के माध्यम से 2751 के तहत कितनी धनराशि दी और कितनी अभी तक खर्च हुई है पिछले 3 साल का मैं चाहता हूं कि वो उत्तर देवे और जो राशि दी है वो अभी तक खर्च हुई है नहीं हुई है। वैसे मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने मेरे अपने संसदीय क्षेत्र में 6 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल विद्यालय खोले हैं। इसके लिए मैं सरकार को और मोदी जी को और मंत्री जी को धन्यवाद जी धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, इस वैसे हमारे पास में राजस्थान में कितनी राशि उपलब्ध कराई गई है उसकी आंकड़े हैं, मैं उनको उपलब्ध करूंगा। श्री अजय रंजन चौधरी जी। सर, मंत्री जी कुछ वक्त पहले ये कह रहे थे कि दिशा कमेटी है हर डिस्ट्रिक्ट में और दिशा कमेटी से आपका सारे जानकारी लेना चाहिए क्योंकि ये हमारे लिए एक फ्रेमवर्क है सदन की तरफ से ये बनाया गया है। लेकिन मेरी खेत के साथ ये कहना पड़ता है सर, बार बार ये सदन के अंदर गुहार लगा के बावजूद आज तक मैंने पिछले 12-13 साल में कोई विषय पे, ये ट्राइबल विषय नहीं है बल्कि हर विषय पे कोई भी चाहे विषय हो जहां जहां दिशा कमेटी की देखभाल करने के अधिकार है, दिशा कमेटी की भाग लेने का, शिरकत लेने का अधिकार है, सवाल पूछने का अधिकार है, आज तक ये मीटिंग नहीं बुलाया जाता है। फिर भी मैं हुआ कि चेयरमैन भी हूँ, तो मैं ये सरकार को, ये सदन को और सर आज स्पीकर साहब आपको भी कहना चाहते हैं कि ये सर कंपलसरी कर दीजिए कि अगर कोई डिस्ट्रिक्ट में दिशा कमेटी की मीटिंग सही सलामत ना बुलाया जाए तो वहाँ फंड रिलीज करना बंद कर दीजिए, फंड रिलीज करना बंद कर दीजिए, तब ये सबक सीखेगी और हम जैसे नुमाइंदे को दिशा कमेटी की मीटिंग में बुलाने में मजबूर होगी। सर, ये मैं दरखास्त करता हूँ सर, क्योंकि मेरा डिस्ट्रिक्ट में काफी ट्राइबल है, मेरे क्षेत्र में काफी ट्राइबल है, उन लोग के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। तो इसलिए मैं सदन से आग्रह करता हूं कि इस विषय पे सारे सदन बैठ के चर्चा करे और फैसले की मजबूरन उन लोग को मजबूर करे हर स्टेट को कि वो दिशा कमेटी की मीटिंग बुलाए। Sir, many thanks for giving me the opportunity, sir. Sir, these last 2 years have really taught us that if we are thinking about overall development, then the two major sectors and most sensitive sectors are health and education both. And when we are talking about the tribal development, overall development, through you to the Honorable Minister of Tribal Affairs, I would like to, sir, ask, so that is he aware that there is a disease called sickle cell disease in tribals? It's a very critical disease, and it is genetic. It is a genetical disease which cannot be cured. Survival is very it's almost impossible, sir. और लिमिटेड होते हैं, जिनकी उम्र होती है सर, जो बच्चों को सिकल सेल होता है जेनेटिक वजह से, ट्राइबल बच्चों को, उनकी उम्र भी सीमित होती है, 20-22-25 साल तक वो जिंदा रहते हैं. बट सर, दिस कैन बी इरेडिकेटेड. देयर आर एक्सपर्ट्स, दोज हु आर कमिंग अप विद मेनी सजेशंस, जो इसको इरेडिकेट करने के लिए पूरी तरह से दावा कर रहे हैं. और मुझे जितना मालूम है कि केंद्र सरकार के पास में ये अपना एक मेमोरेंडम लेकर गए भी थे, मिले भी थे कुछ महीने पहले. So through you, I want to ask, sir. आपका प्रश्न क्या है? Yes, sir. Through you, sir. I'm just asking it, sir. Sir, I'm asking, sir. Sir, has the government been approached with such kind of any proposal? If the government admits, then when and how to implement or execute this eradication? And if no, if the government has not yet been approached by anyone, by any organization,
then will the government agree to look into this grave health issue in tribals and welcome such kind of experts for discussion and look into this matter very, very seriously immediately? Thank you, sir. अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न से संबंधित नहीं है, लेकिन माननीय सदस्य ने जो विषय उठाया है बहुत महत्वपूर्ण इस दृष्टि से है कि जनजातीय क्षेत्रों में और जनजातीय लोगों में इस तरह की समस्याएं अधिक हैं और इस विषय पर हमारा मंत्रालय बहुत संवेदनशीलता के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, क्योंकि आप जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी इस विषय पर कई बार कई देशों के भ्रमण के दौरान भी इसकी चर्चा की है और देश में भी किया है। अभी हम ICMR के साथ में स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ मिल करके 2 पार्ट में काम कर रहे हैं। एक तो रिसर्च पार्ट है और दूसरा डेटाबेस बनाने का कि किन राज्यों में किस तरह के कितने और कितनी संख्या में है, उसको हम कैसे डेटा बनाएं और उसका एक काउंसलिंग सिस्टम कैसे डेवलप करें, क्योंकि अनुवांशिक जब हम कहते हैं तो उसमें जितना अधिक जागरूकता फैलेगी उतना ही अधिक उसका समाधान निकलेगा। वो एक पक्ष है। दूसरा पक्ष ये है कि जो इससे प्रभावित है उसके लिए जो ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट सरल तरीके से कैसे उपलब्ध हो। कुछ ट्रीटमेंट है जिसको स्थानीय स्तर पर नहीं दिया जा सकता है, उसके लिए भी व्यवस्थित किया जा रहा है। उसके सभी संस्थाओं के साथ हम लगातार जितने भी देश के ऐसे महत्वपूर्ण संस्थान हैं जो रिसर्च बेस्ड है, चाहे वो एम्स हो, गंगाराम हो या अन्य देश के अन्य हिस्सों में जो अच्छे अस्पताल है या जितने रीजनल लेवल में हमारे एम्स खुले, उन सारे लोगों के साथ बातचीत हो रही है और इस पर हम लगातार काम कर रहे हैं। अभी हमारा जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उन्होंने इस संबंध में, क्योंकि आप जानते हैं कि जनजातीय क्षेत्रों के जनजातीय लोगों के विकास के लिए जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में एक SCA कंपोनेंट STC कंपोनेंट होता है। उसके माध्यम से हम सभी मंत्रालयों के साथ मिलकर के काम करते हैं। तो स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ क्लोजली हम कर रहे हैं और हमारे मंत्रालय में जो रिसोर्स गैप जहां पर आवश्यकता होती है उसको इस कार्य योजना के साथ मिला करके काम करते हैं। श्री जी माधवी। Thank you very much, sir. Sir, estimates suggest that 77% of the tribal population has no access to the internet. Has the government conduct any survey to identify the extent of the internet access to the tribal population? What is being done to improve the situation, sir? Thank you. अध्यक्ष महोदय, अभी आपको सुनकर या सदन को सुनकर खुशी होगी कि एक स्पेशल प्रोग्राम प्रारंभ किया गया है IT मिनिस्ट्री के तरफ से और उसमें लगभग 6,500 करोड़ की व्यवस्था की गई है और 7,000 गांव में इंटरनेट व्यवस्था स्पेशल तरीके से ब्रॉडबैंड कनेक्शन 4G कैसे उपलब्ध कराया जाए वो सारे ट्राइबल विलेजेस हैं। क्वेश्चन नंबर 246 श्री राजवीर सिंह, श्री भोला सिंह। क्वेश्चन नंबर 246 अध्यक्ष। माननीय मंत्री जी। Answers been placed before the House. जी धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी के उत्तर से स्पष्ट हुआ है कि हमारी सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हिमालय क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और विकास के लिए बहुत सारे कार्य कर रही है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि सरकार ने हिमालय क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और विकास पर शोध करने के लिए अब तक किन किन केंद्रीय शोध संस्थाओं की स्थापना की है और क्या सरकार उनकी प्रगति से संतुष्ट है? आदरणीय अध्यक्ष जी, जो स्कीम चलाई जाती है उसके अंदर जो संस्थाएं हैं उन संस्थाओं की स्थापना केंद्र सरकार नहीं करती है, बल्कि उसमें जो 6 राज्य हैं हिमालय के आसपास वाले, उसकी राज्य सरकारें प्रपोजल सिलेक्ट करके केंद्र के पास भेजती है। जो हमारी डिवीजन है वो उसका मुआयना करती है और उसके बाद
सरकार उनको फंड्स देती है। और अभी जो है पिछले कुछ वर्षों में उनको बढ़ाया गया है, तो 23.86 करोड़ से अब जो पैसा उस पर खर्च किया जा रहा है वो पिछले साल के मुताबिक इस साल 47.38 करोड़ है। और उसमें जो संस्थाएं हैं वो भी 117 से बढ़कर 203 हुई हैं। तो ये जो संस्थाएं हैं वो राज्य द्वारा, उसमें कुछ ट्रस्ट हैं, सोसाइटीज़ हैं और अन्य बॉडीज़ हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं जो राज्य भेजता है। और सिर्फ कुछ एक प्रदेशों के अंदर, खासतौर पे अरुणाचल और सिक्किम के अंदर जो है 90 से 90:10 का रेशो रखा जाता है, बाकी जगह 75:25 का रेशो रहता है। दयाल चंद मेघवाल। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष जी, राजस्थान भी सांस्कृतिक विरासत में कम नहीं है। विश्व में कोई भी टूरिस्ट अगर इंडिया में आता है तो राजस्थान जाने का जरूर उसका मन होता है। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना है कि जब प्रसाद योजना थी तो 2018 में राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में एक मोहनजोदड़ो है जो 5000 साल पूर्व की वहाँ की सभ्यता है कालीबंगा में, जिसको 1952 में BL लाल साहब ने उनको देखा था, माथुर साहब ने देखा था, और मैं खुद अभी भी उनसे मैं मिल के आया था। उनकी आयु 100 साल से भी ज़्यादा उनकी आयु है। उसके लिए केंद्र सरकार ने राशि जारी की थी। एक भटनेर दुर्ग है वहाँ पे, उसके लिए 3 करोड़ रुपए की राशि केंद्र सरकार ने 2018 में जारी की थी। लेकिन ASI अभी तक उसको परमिशन नहीं देती है इनके डिपार्टमेंट में, आपके डिपार्टमेंट में, क्योंकि जब वो अगर दीवारें उसकी टूट जाती तब जाके वो परमिशन देती है। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये मैं जानना चाहता हूँ कि कालीबंगा सभ्यता और मोहनजोदड़ो की जो कालीबंगा सभ्यता उसको और भटनेर दुर्ग को जब मॉनिटरिंग इसकी किस प्रकार से होती है, अगर नहीं होती है तो मॉनिटरिंग सरकार को करनी चाहिए। और मेरा आपसे आग्रह है कि जो राशि दी है क्या केंद्र सरकार उसको कब तक लगाने में सक्षम करेगी। धन्यवाद। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये प्रश्न बिल्कुल ये क्या भिन्न है, हिमालय का लेकिन ट्यूशन था और ये राजस्थान में आ गए। जी, लेकिन हिमालय से मोहनजोदड़ो तक आ जी गए। वो मतलब रेगिस्तान तक पहुंच गए। लेकिन उसमें मैं ये जरूर बताना चाहती हूँ कि ऐसी ASI की व्यवस्था है, उसमें यूनिवर्सिटी साथ लगी रहती है। और अभी राखीगढ़ी और अन्य ऐसे स्थान पाए गए हैं जिसमें धोलावीरा को इंस्क्राइब भी किया गया है। इनका जो प्रश्न है वो स्पेसिफिक कालीबंगा पर है। कालीबंगा से संबंधित जो भी उचित जानकारी होगी मैं माननीय सांसद तक पहुंचा दूंगी। और खास तौर पे इस प्रोजेक्ट को जिसको इन्होंने स्पेसिफिकली पूछा है उससे रिलेटेड सब डिटेल इन तक पहुंचा देंगे। क्वेश्चन नंबर 247 श्री कृपाल बालाजी तुमाने। क्वेश्चन नंबर 247 माननीय मंत्री जी महोदय उत्तर सभा पटल पर रखा जाए। धन्यवाद स्पीकर महोदय। मेरे संसदीय क्षेत्र रामटेक में काफ़ी लेबर होते हैं। माइनिंग में काम करने वाले लगभग 2 लाख लेबर है WCR और मॉइल में, और MIDC में भी काम करने वाले लगभग उतने ही लेबर हो गए। 2019 में 18 में घोषणा हुई थी और 19 में हमने भूमि पूजन किया था। उस समय संतोष गंगवार साहब जो उस समय के लेबर मंत्री जी थे और हमारे दूसरे केंद्रीय मंत्री नागपुर से आप जानते हैं वो भी थे। हमने भूमि पूजन का बहुत बड़ा सरकार की ओर से कार्यक्रम किया। लेकिन अध्यक्ष महोदय वो अस्पताल का काम अभी तक चालू नहीं हुआ है। सरकार ने उसके लिए पहले एक जमीन दिया था, फिर वो जमीन बदलने के लिए कहा गया, वो जमीन बदल के दूसरी जमीन MIDC के अंदर ही दी गई है इंडस्ट्रियल एरिया में। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि अस्पताल का काम क्यों रुका है और उसकी क्या कठिनाई है और आप कब तक इसको शुरू करने के लिए प्रयास करोगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, ESIC के लगभग देश भर में 57 अस्पतालों में इस समय काम पेंडिंग है। उसके अलग अलग कारण हैं। कुछ कारण तो जमीन का पोजीशन नहीं मिल पाना है, कुछ कारण वहाँ पर अभी एजेंसी के द्वारा कार्य को जो नक्शे के साथ शुरू करना है वो शुरू नहीं हो पाना है। हमने ESIC की पिछली बैठक में इसके लिए एक डैशबोर्ड का गठन किया है और अब जितने भी अस्पताल हैं ये सारे ESIC के डैशबोर्ड पे आएंगे। जिनकी भी प्रक्रियाएं लंबित पड़ी हैं उनको हमने व्यक्तिगत रूप से ही पत्र भेजा जिन सांसदों ने मुझे दिया है, और इन सब सारी कार्यवाहियों को अब हम पूरी तरीके से एक पोर्टल के माध्यम से संचालित कर रहे हैं। सप्लीमेंट्री।
शुरू हो जाएगा और लेबर को न्याय मिलेगा। मैं आज की तारीख में वहाँ पर जो अभी एक ESIC का नागपुर शहर में जो अस्पताल चल रहा है, उस अस्पताल की हालत बहुत ही खराब है। यानी वहाँ कोई व्यवस्था ही नहीं है। बेड तो 100 बेड का अस्पताल है, एक सादी सोनोग्राफी की मशीन नहीं है, एक्सरे का एक मशीन है, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। मैं माननीय स्पीकर महोदय के द्वारा थ्रू जानना चाहता हूँ कि सर, जब तक आप इस अस्पताल में जो उस अस्पताल में आप आगे सुविधा देने वाले हैं वो चालू होने तक क्या इस अस्पताल में सारी मशीनरियाँ आप देंगे? और दूसरा एक छोटा उसके साथ में मेरा सवाल है कि वहाँ पर थोड़े बहुत सारी गड़बड़ियाँ हैं, तो क्या आप उसकी, क्योंकि जो टेंडर होता है, टेंडर जिसको मिलता है उसको काम नहीं मिलता, कोई और ही काम करते रहता है, तो इस बारे में भी सरकार उसकी तरफ ध्यान देंगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अगर कोई ये विषय संज्ञान में लाए तो निश्चित रूप से उनके द्वारा लाए गए पर्टिकुलर विषय को मैं पूरी तरीके से संज्ञान में लूंगा। पूरे देश भर में ESIC के 160 अस्पताल और 18 मेडिकल कॉलेज चलते हैं। उन सब विषयों में एक लंबे समय से जो भर्तियां भी पेंडिंग थी उसको भी हम लोगों ने इस बार निकाला है। और जो राज्य सरकार के द्वारा संचालित ESIC और केंद्र सरकार के द्वारा संचालित ESIC में जो तनख्वाह का अंतर था उसके लिए भी ESIC बोर्ड के द्वारा प्रस्ताव पास किया गया है। भारत सरकार की इस योजना के द्वारा लगभग 3.5 करोड़ लाभार्थी और उनके 12 करोड़ परिवार वाले आश्रित हैं। हमारा ये मानना है कि हमारे मंत्रालय को जो ESIC की सुविधा है लोगों की सेवा के लिए है। आप जो विषय पर्टिकुलर अस्पताल के लिए मेरे संज्ञान में लाए हैं, निश्चित रूप से मैं आपको अपने कार्यालय में बुला के उसको आपकी समस्या का समाधान करूंगा। क्वेश्चन नंबर 248 श्री अशोक कुमार यादव। सदन पे रख दें। Laid on the table of the House. Question number 249, Sunita Dungal. 249. रखा गया। श्री चंद्रशेखर साहू। मान्य सदस्यगण, मुझे कुछ विभिन्न मुद्दों पर निम्नलिखित सदस्यों के स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई है। श्री प्रद्योत बोरोदोलई, मनीष तिवारी, इटी मोहम्मद बशीर, के मुरली देवन, EB डन, राजमोहन उन्नीथन, हनुमान बेनीवाल, मानिकम टेगोर, एडवोकेट अब्दुल मजीद आरिफ, गौरव गोगोई, बेनी बहनन, अधीर रंजन चौधरी, MK राघवन, थिरुमावनन, के सुरेश जी। मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी सूचना की अनुमति प्रदान नहीं की गई। शून्यकाल आज इस चर्चा के बाद शून्यकाल चलाएंगे। पहले 12 बजे चर्चा शुरू करेंगे, उसके बाद चलाएंगे। 9 व्यवस्था दे चुके हैं जो दे चुके हैं, दोबारा व्यवस्था परिवर्तन नहीं होती। सभा पटल पर रखने वाले पद अभी बताएंगे। आइटम नंबर 2 श्री अर्जुन राम मेघवाल। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं आपकी अनुमति से मेरे सहयोगी राव इंद्रजीत सिंह जी के नाम के आगे अंकित दस्तावेज जो आज लोकसभा की कार्य सूची में अंकित है, आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 3 श्री अर्जुन राम मेघवाल। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आपकी अनुमति से मैं आज की कार्य की संशोधित सूची में से क्रम संख्या 3 पर अपने नाम के आगे समक्ष उल्लेखित कागजात सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 4 श्रीमती मीनाक्षी लेखी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज के कार्य की संशोधित सूची में क्रम संख्या 4 पर अपने नाम के समक्ष उल्लेखित कागजात को सदन के पटल पर प्रस्तुत करती हूँ। आइटम नंबर 5 श्रीमती अनुपूर्णा देवी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आज आपकी अनुमति से आज की पुनरीक्षित कार्य सूची की क्रम संख्या 5 पर मेरे नाम के सामने उल्लेखित दस्तावेजों को मैं सभा पटल पर रखती हूँ। आइटम नंबर 6 डॉक्टर सुभाष सरकार। अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से आज की पुनरीक्षित कार्यसूची की क्रम संख्या 6 पर मेरे नाम के सामने उल्लिखित दस्तावेजों को मैं सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 7 महासचिव।
received from Rajya Sabha regarding nomination of Shri Jugal Singh Lokhandwala, Member Rajya Sabha, to the Committee on Welfare of Other Backward Classes. Item number 8, Shri Uday Pratap Singh. धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 8 पर अपने नाम के सम्मुख तथा सूचीबद्ध रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के 4 प्रतिवेदनों के हिंदी एवं अंग्रेजी संस्करण प्रस्तुत करता हूं। धन्यवाद। आइटम नंबर 9, डॉक्टर शशि थरूर। महोदय, मैं आज की कार्य सूची में अपने नाम के सामने यथा सूचीबद्ध संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति का 32वां, 33वां, 34वां और 35वां प्रतिवेदन हिंदी और अंग्रेजी संस्करण का प्रस्तुत करता हूं। आइटम नंबर 10, श्री मोहन भाई कुंडारिया। अध्यक्ष महोदय, मैं आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 10 पर मेरे नाम के आगे सूचीबद्ध विभाग संबंधित उद्योग संबंधी स्थायी समिति के 315 और 316 प्रतिनिवेदन प्रतिक्रिया सभा पटल पर रखने का अनुमोदन लेता हूं। 7 के संबंधित मामले सभा पटल पर रखने की अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय सदस्यों से आग्रह है कि इससे संबंधित विषय सभा पटल पर रखने की इजाजत उनको दी जाती है। सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के अध्ययन अनुदान की मांगों पर चर्चा। श्री मरगनी भरत। Sir, thank you, Honorable Speaker, sir. At the outset, I would like to thank the Honorable Minister Gadkari ji for considering Andhra Pradesh as one of the progressive states, sir. I'm so grateful to stand in this noble house to speak on demand for grants, road and transport, sir, which is led by one of the efficient ministers of this government, sir. And also, sir, he executes each and every राज्य मंत्री सर। अभी माननीय केंद्रीय मंत्री जी आ रहे हैं, राज्यसभा से भी आ रहे हैं। So thank you, sir. Sir, he executes each and every single project with meticulously planning, and executes with passion, sir. Sir, I take this opportunity to express my gratitude. Last month, the Honorable Minister Gadkari ji happened to visit to my state of Andhra Pradesh, sir, where he sanctioned and inaugurated 20,000 crore worth of road infrastructure, sir. On behalf of my pragmatic Chief Minister, Sri Y.S. Jagan Mohan Reddy ji, and my people of Andhra Pradesh, we are indeed very thankful to this government, sir. Sir, as the Honorable Minister would be knowing, as Andhra Pradesh state is the second longest sea coastline, sir, with road and infrastructure, sir. Sir, and also, sir, it is on the coastline. It is precisely proved to be bane for natural calamities, sir. Sir, and also, sir, the natural calamities like floods and the cyclones, the roads got devastated, sir. And I request through you, sir, to the Honorable Minister to grant a financial aid to the state of my Andhra Pradesh, sir. Sir, and also, sir, especially in my constituency, I would like to mention few of the points, sir, where some of the concessionaires or contractors with the shabby maintenance, the poor maintenance of the roads, sir. Sir, especially where my city, Rajamahendravaram, which is on the national highway, sir, where the city got extended towards the national highway and even crossed 5 kilometers and above to the national highway, which has more than 500,000 population as per 2011 census, sir, where the Honorable Minister has sanctioned in the last government some of the flyovers, sir, in the year, perhaps in the year 2018,
But still, sir, the execution of the flyover works, due to some technical issues, it is being procrastinated, it is being delayed. So I would like to know from this house, through you to for the minister, sir, why the works is being delayed. So one junction I would like to quote here, so I would like to name the junction that is called to be a dreadful junction, dead junction, called Morampudi Junction, sir. Morampudi Junction, where I could see on record, I'd like to keep on record, sir, where in the year, because there are many black spots, sir, we required flyovers for that black spots everywhere, because where the East Godavari district got bifurcated for the police department as a Rajahmundry urban district, sir, where I would like to mention here in this house regarding the accidents taken place in the year 2018 is somewhere around 90 accidents with a death rate of around 29 people died and injured 109. In 2019, 119 people were killed, sir, and deaths were around 42 and seriously injured were 121. In 2020, sir, 116 accidents were taken place, 36 people were killed and 115 injured, sir. Sir, likewise, the list goes on, sir, as per the traffic police records, sir. Sir, I'd like to read out the junctions also, sir, where the Rajahmundry city limits, where the national highway passes through the city limits, sir. I'd like to read out the junctions. One is Rajanagaram Junction, sir. I would like to place on record, sir, because these junctions we required flyovers and center divider lightings and also service roads and high mast lights. So I'd like to read out the junctions, sir. One is Rajanagaram Junction, sir, Diwan Cheru Junction, sir, Lala Cheru Junction, sir, Morampudi Junction, ONGC Junction, Bammuru Junction, Vemagiri Junction, Horlicks Factory Junction, Vemagiri Junction and Kadiyapalanka Junction, Burilanka Junction, Pottilanka Junction. These all the junctions where this many accidents were taken place, sir. Sir, I'd like to request to the minister to be magnanimous and sanction the flyovers wherever it is required. And last couple of months, I happened to meet the Honorable Minister, where he considered Rajamahendravaram and sanctioned a bypass road, sir. Due to some technical issues, the works are been haven't taken place up till now, sir. So I request through you to expedite the works immediately, sir. Sir, and also the laying of the roads is very highest priority, sir, and it plays a pivotal role in the growth trajectory of our country, sir. And at the same time, the road safety measures is a double priority of this government to take place, sir, because the road safety measures are not up to the mark, sir. Because when you happen to see the death toll and the accident rate, almost 11% of the world accidents are happening in our country, sir. So the government should seriously think on the road safety measures. And at the same time, the government has to see the standards of the vehicles, whether the Vehicle Act, Motor Vehicle Act of 2019, where it was passed in this house, in the parliament, sir, whether it is being implementing properly or not, the government has to monitor continuously, sir. Sir, and also, sir, my main points, and at the same time, sir, the roads has increased apparently in this past 10 years from past decades, sir, and at the same time, the number of vehicles also has increased beyond the road, sir. Sir, also, sir, but when it comes to the violation of the rules, let me put on record for young India, sir. Sir, we are all educated, and many of us in a hurry going to our respective destinations, we violate, many of us violate the rules and the traffic rules, sir. Sir, the stringent laws has to be formulated by Government of India and the Ministry to curtail the accident rate, sir. As I have one suggestion, sir. As why can't
the insurance premium may be linked with the traffic violations. Many traffic violations, the insurance premium will be very higher, and less traffic violations, the insurance premium shall be incentivized. Why can't the government plan in such a way, sir? And other hand, sir, on the other hand, there are some officers I don't want to take their names, but the below standard officers, where I told you, I mentioned right now in this house, sir, before, about the dreadful junctions and accidents, sir. Sir, who is responsible for the accidents, and who is responsible for the people who were killed brutally in the road accidents, sir? Because it was sanctioned in the year 2018, still now, up till now, it has not been started yet, sir. So who will take responsibility for this, sir? And I wanted to quote, sir. Sir, laying the roads is not that difficult, sir. But maintenance of the roads and road safety measures with the minimum revenue expenditure, with minimum accident rate, is something challenging, sir. So I'd like to request the minister to focus on this area, sir. Now, sir, please. our party has more than 10 minutes, sir. Sir, and also, sir, I'd like to make some notes, sir. I wholeheartedly appreciate the ministry to get the highest allocation of budget. It is an increase in terms of allocation of 22 to 23, with 68,000 crores hike in the absolute terms, sir. And the capital expenditure is pegged at around 1,87,000 crores, sir. And the revenue expenditure is around 11,000 and odd crores, which is quite welcoming, sir. Sir, the Honorable Finance Minister, in her budget speech also, she mentioned about one innovative program called Pradhan Mantri Gati Shakti Master Plan for express ways and rapid movement of people and goods, sir. Sir, the ministry happened to announce that around 25,000 crores is been investing with an innovative ideas. And I'd like to know how we're going to mobilize 20,000 crores, as the Honorable Minister has mentioned in her speech, sir. Sir, the House would like to know what are the innovative methods, in what way the government raised for the Pradhan Mantri Gati Shakti Master Plan, sir. Sir, I would like to give one of my suggestions, sir. So why government plan to construct, solar panelings in the middle of the roads, on the dividers, so that the renewable energy, as country has a long stretch of national highways and road structure, why can't government plan the solar panelings in middle of the roads so that the renewable energy can be produced? As per the Niti Ayog, sir, by the year end of 23, the three-wheeler... Honorable Minister, three-wheeler vehicles... is making so many suggestions. Sir. Please. Sir, as the Niti Ayog has suggested, as proposed, by the year of 2023, the three-wheeler electric vehicles has to take a major role, sir, and also the two-wheeler electric vehicles by 2025, sir. So where the power and energy comes from? Our major power is generated from the burning of the fossil fuels, especially from the thermal energy. Sir, we need to think on renewable energy. So this suggestion of erecting the solar panels in the middle of the roads, it makes a major impact, sir. So unless and until we plan the raw material, the petrol, the electricity from this renewable energy, planning to implement the electric vehicles is very challenging, sir. Sir, two more minutes, sir. I have many things to go ahead, sir. First you have gone through your constituency, then comes to general points. First yes, sir. Yes, sir. Now please conclude. Sir, and I'd like to address, so why the funds
why the funds have restricted, confined for the states in terms of the roads for the states, sir. Sir, as we all know, in the year 2017 to 18, the Government of India has allocated around about 800 crores for the state roads, sir. But we have confined and restricted to 250 crores in this budget 22 to 23, sir. We should not forget the Government of India is collecting cess on petrol and diesel, almost 33 rupees per litre, sir. Sir, for road infrastructure, where the devolution of taxes, it is not being distributed to the states. So I request through you, sir, to the Minister to distribute the funds Yes. and give us the more financial aid for the states also, sir, as a cooperative federalism. Yes, sir. please. Now, Sir, I have two more minutes, sir. Sir, when it comes to the networking of the roads, India is placed as the second second largest road networking, sir, with a network of around 64 lakh kilometers, sir. that is all on And- record. That's all on record. Now Yes, you put sir. your bullet Sir, points. 2 minutes, sir. And India is placed after United States of America, and which includes of 1.3 lakh roads of national highways and 1.8 lakh of state highways. And under the dynamic leadership of the Prime Minister, we will certainly cross and will be Yes. there in the Now, top Sri S.T. spot, sir. Hassan. Sir, I have 2 minutes, sir. Kindly No, no. give us, sir. And we have already taken more than 20 minutes. Please. Sir, sir, as we all know that, sir, the Nitin Gadkari ji is the best person to know about our road system than anyone in our country, sir. Sir, I would like to say S.T. about Hassan, the please. issues relating to my state, sir. I've already spoken about your constituency, state, general, everything. Please, 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 please. Now, S.T. Hassan, please. Then now, NH 516E has declared as Green National Highway Corridor. It falls in my constituency. I wish to know the progress of R&R and steps taken to release the money for R&R, sir. And also, sir, the Schedule 13 of AB Reorganization Act mentions mandates to construct a rapid road connectivity from Amravati to Hyderabad and important cities in Telangana, which is the roads to the important cities in Telangana, sir, which is a progress. What is the progress of this? Kindly may explain. And also 33 ROB and RUBs are going to be constructed under Setu Bharatam in Andhra Pradesh, sir. The details may be given, sir. Yes. Sir, the final 2 points, sir. Sir, the Bhogapuram to Bhogapuram 6-lane road, sir, which reduces the distance for Visakhapatnam port and even for Chhattisgarh and Orissa, sir. And the highway, if we expedite the highway at the earliest, and the Government of India also proposed Bhogapuram airport now also, S.T. sir. Hassan, please. Sir, the final point, sir. Final No, please, point, please. Sir. Sir, there are more than 450 black spots identified in Andhra Pradesh, sir. The S.T. national Hassan. बहुत बहुत शुक्रिया सर। Yes, please. आपने मुझे No, you are not obeying the directions of the. Greenfield Highway at Krishnapatnam Port, sir, with an estimated cost of 462 crores. And also from Nellore to Krishnapatnam Port with an estimated cost of 360 crores, sir. What is the present status of the above roads and whether there is any cost and time overrun by this, sir? Sir, ADB has crossed 3,000, has approved 3,500 crores loan to the Visakhapatnam and Yes, Chennai Hassan, corridor, please, sir. please. I would like to. बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपने मुझे सड़क परिवहन और राज्य मार्ग पे बोलने का मौका दिया। सर, मैं कुछ महत्वपूर्ण समस्याओं को आपके माध्यम से मंत्री जी को, सरकार को बताना चाहता हूं। सर, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेसवे हाईवे जो दिल्ली से लखनऊ जाता है, मंत्री जी मेरे ख्याल से 25 साल होगा इसे बनते हुए, आज तक ये कंप्लीट नहीं हुआ। और इतना इंपॉर्टेंट हाईवे है, आज भी 6-7 जगहों के ऊपर इसमें कार्य नहीं हो पा रहा, बड़ी बड़ी लाइनें लग जाती हैं। मेरठ तक तो एक्सप्रेसवे बन गया है, मेरठ के आगे बहुत समस्याएं हैं। और एक समस्या मंत्री जी खास तौर से कटरा के ऊपर है,
जहां पर शाहजहांपुर से पहले ओवरब्रिज नहीं बन पाया है और वहां पे तकरीबन एक एक घंटे 2-2 घंटे के जाम लगा करते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको प्रायोरिटी पे देखते हुए इस इम्पोर्टेंट हाईवे को जल्द से जल्द बनाने की कृपा करें। मेरा दूसरा हाईवे जिसको मैं आपको बताना चाहता हूं, मंत्री जी, एक रोड मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक बड़ापुर एक इलाका है, बड़ा कस्बा है, इसके बीच में से एक रोड जाती है और ये रोड आगे कोटद्वार से ये बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम को जाती है। आपको ये जान के हैरत होगी कि ये बीच में जो रोड जा रही है ये कुछ जगहों के ऊपर 9.5 फीट या 10 फीट की है केवल। अगर 2 गाड़ियां आमने सामने आ जाएं तो जाम लग जाते हैं। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इस बढ़ापुर बस्ती का बाईपास बनना बहुत आवश्यक है ताकि सारे श्रद्धालु, ये रास्ता भी शॉर्ट है बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम का, ताकि सारे श्रद्धालु बहुत जल्दी अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचे और काम पूरा करें। मंत्री जी, एक हाईवे जाता है मुरादाबाद से काशीपुर होता हुआ और आगे गढ़वाल तक। इस हाईवे के ऊपर विश्व प्रसिद्ध एक उद्यान है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसमें तमाम दुनिया से लोग पर्यटक आते हैं। मुरादाबाद से लेके काशीपुर तक रोड इतनी खराब हो गई है कि अगर उसमें आप 20 से या 30 किलोमीटर की रफ्तार से ज्यादा नहीं चल सकते। बाहर के पर्यटक क्या इंप्रेशन लेके जाएंगे? आपने ये सैंक्शन कर दिया है, 4 लेन करने की बात करी है। बीच में एक बहुत संकरा पुल पड़ता है जिसपे एक तरफ से ही ट्रैफिक पास होता है और वहां पर भी बहुत लंबे जाम लग जाते हैं। आपने पास किया है 4 लेन, लेकिन न जाने कुछ वजहों से वो आगे काम हो नहीं पा रहा है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको प्रायोरिटी पे लेते हुए इस काम को करा दिया जाए ताकि जो फॉरेन पर्यटक आते हैं वो आसानी से कॉर्बेट नेशनल पार्क भी जा सके और आगे रानी खेत वगैरह भी वो जाकर घूम सके। बहुत इंपॉर्टेंट हाईवे है, अब बहुत बुरी हालात के अंदर है। मेरी ये 3 डिमांड्स हैं आपके लिए। मैं समझता हूं कि आप इसको प्रायोरिटी पे लेते हुए जल्द से जल्द समाधान करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट श्री सुनील ततेकरे। Sir, thank you very much for giving me an opportunity. One second. Those members who would like to lay the written speeches on the table of the House, the Honorable Speaker is allowed to lay the written speeches on the table of the House. Yes, Sri Sunil. There are a lot of expectations of the Konkan people for long since pending Mumbai-Goa highway, that is especially from Panvel to Palaspa to Goa, Panji. Especially the first part, Palaspa to Indapur, 8-10 years that work is in a progress. But unfortunately the bituminous part was there, and due to heavy rain like Kerala in Konkan also, this bituminous road get every year damaged. So I urge Honorable Gadkari ji for making this road concrete, and in the presence of Mr. Sharad Pawar ji. So I would like to urge for that. Last 12 years we are waiting for that, especially Konkani people from Raigad, Ratnagiri, Sindhudurga and going up to the Goa. They are traveling on that road. So especially that road should be taken on the priority. Another thing is from Indapur to Mahad, especially in the Mahad, where there was a lot of flood in the last year because of the huge filling for the road. The water logging is being there. Old Savitri Bridge is not yet dismantled there. So that is why it was caused for the heavy flood in the Mahad and Mad that area. So I would like to urge for the minister for that also. Near Polatpur, even then underpass is there, 30 feet road is being digged and people are getting harassed. So that work is also there. Especially I would like to urge one road which is going to Chhatrapati Shivaji Maharaj Historical Fort. That is the capital of the Chhatrapati Shivaji Maharaj Empire. Hence, considering about the fact to make National Highway NH 166F going towards the Raigad Fort as an historical path by considering beautification point, historical signboards, monuments showing history of the Chhatrapati Shivaji Maharaj and importance of the Raigad Fort. I would like to urge for that, especially for beautification spot at the entry point and exit point of the tunnel in the Kashedi Ghat on the National Highway 66. That is also important. One another thing is most important. When I became the member of parliament of this house, provided VUP
at near Avashi to Gunde near in Lote MIDC. 35,000 workers are working in the Lote MIDC. About 15 to 20 villages are there in Gunshi area. I had requested on the site even also, and even in estimate committee also, to sanction that particular portion therein. Another thing, one national highway was announced, Worker to Alibag, in my Raigad district capital, the place. That is not yet being considered therein. That is the most important. Another thing, one road passing through my district, Murbad, Karjat, Khopoli, 80% work is being completed. So heavy loaded vehicles are traveling along that. 60, 70 years old bridges are there. When they will collapse, I don't know. One sad incident happened near Savitri River in 4 years past. Same incidents can be repeated therein. So I would like to urge to get those bridges also completed so that these things cannot be happen repeatedly in my district. Especially 2 highways, national highways are being announced by the central government. Out of that, 80% work is being done. I would like to urge in my parliamentary constituency, one road goes from Wakand to Khopoli, Paradi and Pedli. Both the villages require the bypass therein. So those 2 bypass were also sent in the second phase for the approval. Another thing, one road goes from Pune to Dighi. That is also a port. Pune is also an educational hub in the Maharashtra. So 2 bypasses are required near Mangaon and near Indapur also. So that should be also considered on priority basis. That is what I am requesting therein. Okay. Another thing, sir, I would like to request one thing, especially this Paraspa to Indapur. We are harassed. I am staying over that. And due to heavy rain, always thousands of lakhs of people are going to the Konkan and especially to the Goa. So that road is also likely to be important. Another thing, from JNPT, one of the first port which is giving the maximum to the government of India. So that port is making a lot of traffic therein. So that road also, especially from JNPT to Paraspa, that goes to Karjat and to the Murbad, that is also being required. So I would like to request Honorable Minister through the August House, Honorable Gadkarji is from the Maharashtra. I know him since last so many years. I worked with him as an MLA. When I was Minister of State in my cabinet, Gadkarji was also President of BJP in the national level. So many things we have done with each other. So I would like to urge, especially for this Konkan highway, for that. Thank you very much, sir. Thank you, Shri Chandrasekhar Prasad ji. अध्यक्ष महोदय, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के तहत अनुदान की मांगों पर बहस इस चर्चा में भाग लेने का जो आपने अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। अध्यक्ष महोदय, वित्त वर्ष 2022-23 के लिए राजमार्ग मंत्रालय पर लगभग 2 लाख करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। इस आवंटन में से 67% NHAI को दिया गया है। इसके बाद सड़कों और पुलों के लिए 64.573 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। PM गति शक्ति मास्टर प्लान में NH नेटवर्क में 25,000 किलोमीटर तक विस्तार की परिकल्पना की गई है। वित्त पोषण किए नवीन तरीकों के माध्यम से अलग से 20,000 करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे। इसका परिणाम निश्चित रूप से सुखद होगा। देश में NH निर्माण की गति 2020-21 में रिकॉर्ड 37 किलोमीटर प्रतिदिन छू गई है। यह सभी कदम स्वागत योग्य है। अध्यक्ष महोदय, हमारे आदरणीय गडकरी जी NH के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छा प्रयास भी कर रहे हैं। बिहार में नीतीश बाबू की सरकार ने भी सड़कों के क्षेत्र में सराहनीय काम किया है और बहुत सारे टोला तक को संपर्क सूत्र से जोड़ दिया गया है। बिहार के इस कार्य को और आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरत है कि भारत सरकार और कुछ आर्थिक मदद करे। आदरणीय गडकरी जी ने से मैं एक मांग पुनः करता हूं, जहानाबाद से अरवल जाने वाली रोड पर अंडरपास NH 110 के ऊपर ओवर ब्रिज बनाने के लिए हम कई एक बार आग्रह किया है, लेकिन विभिन्न कारणों से उसको नकारा जा रहा है। हम फिर से आग्रह करते हैं कि जहानाबाद में जो 110 पर अंडरपास है उस पर फ्लाई ओवर बनाया जाए।
अध्यक्ष महोदय, पीएम पैकेज में उन अन्य योजनाओं के माध्यम से बिहार को काफ़ी अच्छी संख्या में एनएच के निर्माण और चौड़ीकरण की स्वीकृति मिली है। वहाँ एनएच के काफ़ी सारे काम चल रहे हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र जहानाबाद में NH 83 एवं NH 110 पर काम चल रहा है। यह एक सराहनीय कार्य है और एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे 119D बनने जा रहा है। इसके लिए हम पूरे बिहार की जनता और जहानाबाद संसदीय क्षेत्र की जनता की ओर से माननीय प्रधानमंत्री और गडकरी जी को धन्यवाद देते हैं। NH को बड़े पैमाने पर बनाने के लिए संसदीय क्षेत्र से आने वाले जो समस्याएं हैं उसके ऊपर भी बहुत सारे बात है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। रोड एक्सीडेंट भारत की एक बड़ी त्रासदी बनकर उभरी है। भारत के 3% GDP सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए लोगों की वजह से कम हो जाती है। आंकड़े बताते हैं कि प्रति वर्ष करीब 1.5 लाख लोग सड़क दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक दुनिया में सड़क हादसों में होने वाली मौतों में 10% अकेले भारत की है। मरने वालों में युवाओं की संख्या ज़्यादा है, जो और भी गंभीर बात है। मरने वालों में 65% 18 से 35 वर्ष के लोग होते हैं। यह भी एक संवेदनशील बात है। महोदय, तमाम कदम उठाए जाने के बावजूद सड़क दुर्घटनाएं और उनसे होने वाली मौतों पर अंकुश नहीं लगाया जा सका है। बढ़ती आबादी और वाहनों की बढ़ती संख्या के अनुपात में आधारभूत ढांचा बनाने में कमी इसका एक बड़ा कारण है। महोदय, इसके साथ ही गलत तरीके से ओवरटेक करना, शराब पीकर गाड़ी चलाना, रेड लाइट जंप करना, गाड़ी चलाते समय मोबाइल का उपयोग करना, हेलमेट और सीट बेल्ट का प्रयोग न करना जैसे कारणों से सड़क दुर्घटनाओं में बड़ी संख्या में लोगों की मौतें हो रही है। सड़कों में गड्ढे से भी बड़ी संख्या में सड़क दुर्घटनाएं और मौतें होती हैं। 2013 से 17 के बीच सड़कों पर बने गड्ढों के कारण हुई दुर्घटनाओं के चलते 14,926 लोगों की जान से हाथ धोना पड़ा है। महोदय, इसके अलावा कुछ और विषय है जिस पर केंद्र सरकार की ओर ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ। राजमार्गों के निर्माण के समय गुणवत्ता को बनाए रखना देश हित में एवं समाज हित में है। ऐसी शिकायतें मिलती है कि NH की कुछ परियोजनाओं में क्वालिटी कंट्रोल सुनिश्चित नहीं किया जाता है। जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन का पालन करते हुए राजमार्ग मंत्रालय को स्थानीय सांसदों को भी कहीं न कहीं से उसमें सहभागिता करानी चाहिए। राजमार्गों निर्माण की गुणवत्ता मेंटेनेंस करने में कहीं न कहीं पकड़ होनी चाहिए और सड़क के संबंधित अनेक परियोजनाओं को पूरी होने के बाद भी राज्य सरकारों को केंद्र सरकार से धन का इंतजार करना, यह भी एक बहुत संवेदनशील बात है। इस पर ध्यान देना होगा क्योंकि बिहार सहित देश के अन्य राज्य सरकारों के पास संसाधन सीमित है और अगर उन्हें समय पर फंड मिल जाता है तो परियोजनाएं जल्दी पूरी हो सकती है। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अंत में मैं केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के तहत अनुदान की मांगों का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं और माननीय मंत्री और प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। श्री M.K. विष्णु कुमार जी। Thank you, Chairperson. I am here to, first of all, thank to Madam Sonia ji and Sri Rahul ji for allowing me to speak on demands on grants for roadways and highways, road transport and highways. It is a very important subject. It is not a subject that can be neglected because your government is asking almost 2 lakh crores. In 2021-22, it was 1.35 lakh crores. In 2020 and 21, it was 98 crores. Why there is so much of escalation? And the government has not come clean with what are the new projects this year this road transport is going to take. Because there is almost 65,000 crores, you are asking more. For that, what was the work done in the previous year? And how many kilometers of road you are going to relay or newly lay? This kind of clarity is not there in your statement. And to achieve $5 trillion Indian economy,
this road transport, road network is very, very important. Honorable Chairperson, I would like to say the Treasury bench is very, very proud in claiming themselves as the second largest in the world of covering 63.5 lakh kilometers of roads coverage. This is second in the world, no doubt. The first stands United States of America, their beloved friend Trump was there. Now, I would like to say one more important point. See, overnight you cannot lay a road. It was the foundation of Congress party, government, the previous government, the Panchashil principle by Nehru, by Indira ji, by Rajiv ji, by Madam Sonia ji and Dr. Manmohan Singh. These governments have laid a strong foundation. That is why India is today second largest in road networks, covering 63.5 lakh kilometers network. Second to the United States of America. Why I will say a calculation, simple calculation. Your Bharatmala project, your main project, flagship project of Prime Minister, it is covering 34,500 kilometers to be laid in the span of 5 years at the cost of 5 lakh crores. But till now, I am very sorry to say, Honorable Chairperson, this government is able to complete only 6,900 kilometers of road out of 34,500 kilometers in this period of 5 years. They are supposed to finish by 2024. Only 35% of work has been completed. That is why I am saying it is a foundation of the previous government. This government is standing number 2. India is standing number 2 in the world. But unfortunately, ironically, what is the quality? Germany is number 1. According to your data, not my data. Germany is number 1. United States of America is number 14. We are standing number 44 out of 160 countries. There is no independent evaluation of the road quality. Look at the quality of the roads. It is pathetic. But the amount of money being spent is huge. Nowhere near the expectation of the common man. Almost 1 point out of 2 lakh crores that they demand, 1.87 lakh crores is coming from the capital expenditure. Only 11,500 crores is the revenue expenditure. At this point of time, I would like to say one more important thing. What is the road safety that we are having? Out of 2 lakh crores that they are demanding, only 356 crores are being spent on road safety. 1.67% of the total budget. Whereas USA is spending 6% of their budget. So this thing, more number of fatalities, road accidents, because of the speed of the vehicles have increased, number of vehicles have increased, and the poor quality of road with no safety and precautions being taken. Unfortunately, we are losing a lot of valuable lives of the common man. So this thing has to be considered very seriously by this government. NHAI, Nahai, is taking almost 1.35 lakh crores of your total budget of 2 lakh crores. When NHAI is functioning very well, according to you, I am saying the office is very big, the directors are very good, they're responding very well, but the project is getting delayed, undue delay is of the NHAI's capacity. When NHAI is there, another company act, private limited company called National Highways Connectivity Limited or Logistics Limited, NHLL, Logistics Limited, which they explained that this company act, new company is being formed only for the connectivity of the ports. They are giving only 1,000 crores. If you say for the better efficiency, a new company is being formed, why then you burden NHA with 1.35 lakh crores? Because they are unable to complete the projects in time. What happens is mainly because of the online tender, people sitting in somewhere without analyzing the real picture of the road that to be laid, they are quoting, they are participating in tender being awarded. But when they come to the field, then there are so many problems like forest clearance, environmental clearance, availability of raw material, water, local problem, all these things come. There is no quick exit policy from NHA. And very unfortunate thing, in my own Arani Parliament constituency, one road from Dindivanam to Krishnagiri that is being laid for more than 10 years.
The contractor says, I am ready to leave, I am not able to work. There is so much of escalation. As I said earlier, why there is no so much from 1.35 lakh, suddenly you are allotting 2 lakh crores. But what is the new project you are bringing? There is no clarity. There is no white paper. Finally, the contractors, you know what they do? They go into the arbitration. They are unable to complete. They go into the arbitration and they manage to get the justice and more 100 crores, 200 crores demand from the NHA. Apart from allotting funds for laying the roads, the penalty, instead of collecting from the contractors, the NHA is giving back. So in this house, I request the Honorable Minister to give a white paper. How many projects are being stalled like that? How many contractors are being paid the arbitration fees? And how many projects the contractors have been changed? Because main problem with the NHA is delay. In Arani, one overbridge is there, Kutteripata Bridge. That is being there for almost 10 years. The project is feasibility report, everything is over. Till now, we do not know where the project director is there. They are not responding in time. When we approach them also, they are saying here and there, they are giving some stories. Yes, Unfortunately, till now, the overbridge is not completed. So many vital accidents are happening. Yes, so apart from the last important point, their main thing is PMGSY, Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana. India lives in villages. Grama Sadak means village road. Village road, their minimum qualification, Honorable Minister Sir, please, they are asking minimum 7.5 meters width. In our village roads, normally not less than 5.5 meters width. It's only 6 meters. So what is the difference? Where village road they will get 7.5, 7.5 meters width? No, 6 meters is sufficient. 6 meters. No, sir. In my constituency, there is almost 10 districts. There is zero proposal for a PMGSY. Zero proposal. You check it from Tamil Nadu website. No district, 10 districts, they are giving zero proposal for PMGSY because initially they were 5 kilometers from between ODR, MDR, the connecting link roads. It may be even 1 kilometer, the villages. So they say the PMGSY has plenty of funds. Yes, more crores are there. How many other crores we can spend? No. Unfortunately, when the proposal is there, they are saying that it means referred to NABARD. They are saying it is being referred to the highways. Then these are the small issues. These are major issues. Village roads, PMGSY has to be really scrutinized because it's a dream project, and we are also being asked to suggest. Unfortunately, there is no inaction, zero action. Thank you. So last point, sir. Last point. In my Arni parliamentary constituency also, there is one road called Chennai Kanyakumari Industrial Corridor, Express Corridor. Very unfortunate, very poor condition laying. So many trees are being uprooted. Minimum thing is, if one tree is uprooted, it has to be replanted almost 5 times. Afforestation has to be there. Okay. Who is there to monitor? Very poor culverts are there. The thickness is very, very pathetic. Where is the system? Where is the quality? Where is the check system? Where is the quality checking mechanism? There is no answer at all. So all these things has to be corrected. Thank you. And finally, sir, one last demand, sir, from my constituency. Yes. For the entire state of Tamil Nadu. We are talking about roadways. In olden days, almost 1,500 years back, a king called Rajaraja Cholan, he, with the help of road, Silk Road, there are several kings that ruled India, but only one king who ruled far away from India, even outside India, Asian countries. Yes. In Cambodia, we have Angkor Wat temple. In Tamil Nadu, the Tanjavur big temple is there. So such a very big king is there. King was there. So you also named his name in Bombay port for the port trust, the port. So in that king's statue in the parliament, if you install, the Tamil Nadu will be very grateful, sir. Thank you very much, sir. Thank you very much, Sri Tapir Gauji. Without looking any piece of paper, he is putting all the statistics. Fine. Thank you, Honorable Chairman, sir. आज मैं यहाँ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे डिमांड फॉर ग्रांट को समर्थन करने के लिए यहाँ खड़ा हुआ हूँ। आज मुझे बहुत अच्छा लगा, नितिन गडकरी जी के जगह में आज जनरल रिटायर बीके सिंह साहब है, जिसको इस सड़क निर्माण के बारे में इनका एंटायर आर्मी लाइफ में इन्होंने जो महसूस किया है, आज वो इस पद पे है, तो मेरा भाषण से उसको असर पड़ना चाहिए देश का हित में।
मैं आज ये कहना चाहता हूं ऑनरेबल चेयरमैन सर, ये नितिन गडकरी साहब और मोदी जी के नेतृत्व में नितिन गडकरी साहब का नाम मैंने बदल दिया हूं स्पाइडर मैन। मकरा जाल, हिंदुस्तान का हर कोने में स्पाइडर जैसे जाल बिछाता है, वैसे नितिन गडकरी साहब ने जाल बिछा के रखा है। सड़कों का जाल बिछा के रखा है। तो इस व्यक्ति को, इसका लीडरशिप में आज मैं एक चीज यहां कहना चाहूंगा ऑनरेबल चेयरमैन सर, इफ यू रिमेंबर देयर वाज ए प्लानिंग कमीशन बिफोर नीति आयोग। प्लानिंग कमीशन में ही पूर्वोत्तर राज्यों के और हिमालय प्रदेशों का एक नीति था कि हम बॉर्डर के और सड़कें नहीं बनाना चाहिए। विष्णु कुमार, ये बीके सिंह साहब इज फुल्ली अवेयर ऑफ इट। यस प्लीज। हमारा जम्मू कश्मीर में हो, उत्तराखंड में हो, लद्दाख में हो, हिमाचल में हो, सिक्किम में हो, अरुणाचल प्रदेश में हो, नीति आयोग में ही एक कानून था कि हम बॉर्डर के और सड़कें नहीं बनाना चाहिए। जैसे मोदी जी आने के बाद और नितिन गडकरी जी इस मिनिस्ट्री को संभालने का बाद आज अरुणाचल प्रदेश में पूरा इंटरनेशनल मैकमोहन लाइन तक 2 लेन की सड़कें बन रहा है। आज बीके सिंह साहब के सामने मैं उदाहरण के तौर पे मैं बताना चाहता हूं, भगत सिंह कुशेहारी गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र, नितिन गडकरी जब अध्यक्ष थे उस समय एक कमिटी बनाया था कि इंडो चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट को विजिट करके आइए। जसीमत से मलारी से पैदल जाके हम लोअर रिमकिम में 2 डेज में पहुंचा था बीके सिंह साहब। वहां से हम बोराहती वैली वहां तक हम पहुंचा और हम गुरुदोंगमर लेक सिक्किम में पहुंचा था और तागा से हम डेमसोक तक बिना सड़के हम पहुंचे थे। आज मोदी जी के नेतृत्व में और बीके सिंह साहब और हमारा स्पाइडर मैन नितिन गडकरी साहब का नेतृत्व में तागा से डेमसोक तक सड़कें बना दिया है और मलारी से आप अपर रिमकिम तक सड़कें पहुंच गए हैं और उत्तराखंड ये में कालाफानी वैली तक सड़कें पहुंचा है। मैं कालाफानी वैली तक भी पैदल जाके आया हूं, जिसको हम जानता था कि कालापानी मतलब अंडमान निकोबार आइलैंड, लेकिन यहां नेपाल और इंडिया तिब्बत बॉर्डर में एक वैली है जहां हमारा डिस्प्यूट था, उसमें एक जगह है कालापानी, वहां तक सड़कें पहुंचा है। तो इसलिए मैं नितिन गडकरी साहब को स्पाइडर मैन का नाम से मैं नाम दिया जाता हूं ऑनरेबल चेयरमैन साहब। आज पीएम गति शक्ति के आधार पे, इस नियम के आधार पे आज पूर्वोत्तर राज्यों में ऑनरेबल चेयरमैन साहब, यू विल सरप्राइज टू नो अरुणाचल प्रदेश में रिसेंटली, अब मुझे ये गाड़ी का नाम ही सुना नहीं था और देखा भी नहीं था, लेकिन अरुणाचल प्रदेश हमारा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में फरारी कार और लोबर्गी कार, पोर्शे कार, नेग्लोरिन और ओडी कार का रैली होता है अरुणाचल प्रदेश में। ये हमारा मोदी जी का और नितिन गडकरी जी का नेतृत्व में जैसे सड़कें बनाया, मेरा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी अरुणाचल, ईस्टर्न अरुणाचल में ये सब सारा कार रैली 6 डिस्ट्रिक्ट्स में कवर होकर रैली हुआ करता है, तब जाके लोग महसूस होता है मोदी है तो मुमकिन है, गडकरी है तो मुमकिन है। गडकरी जी ने 6 किलोमीटर लॉन्ग सड़कें बनाया हमारा दिबांग नदी के ये में, जिसके लिए हम 3 दिन लग के अगला डिस्ट्रिक्ट में पहुंचा जाता था। इसलिए मैं चेयरमैन साहब, आज जैसे हमारा मोदी साहब और नितिन जी ने इस 2,42,020 करोड़ का जो बजट प्रोविजन रख के इस देश का दिशा दशा नक्शा को बदलने का जो तैयारी है, इसको मैं आज समर्थन करने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ। आज मैं बजट का बारे में
और देश का बारे में गहराई में मैं जितना भी बोलूं उसके लिए समय नहीं हमको मिलेंगे। इसलिए मैं अपना अरुणाचल की ओर बीके सिंह साहब को लेके जाता हूं। अरुणाचल भी आपका कर्म भूमि है। इस कर्म भूमि को हम कैसे आगे ले जा सकता है? बीके सिंह साहब एंड ऑनरेबल चेयरमैन सर, Arunachal have projected a frontier highway along the Megbon line. एक बार टेंडर हुआ, कैंसिल हुआ, अभी और टेंडर प्लेस हुआ, इसलिए अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे एंड अलोंग द तिब्बत चाइना एंड द म्यांमार, इसका एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। ये केवल अरुणाचल प्रदेश के लिए नहीं है, ये देश का सिक्योरिटी के लिए और देश का सुरक्षा के लिए ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोड है कि हम अलोंग द मेकबोन लाइन एक सड़क प्रपोजल दिया गया है। और ऑनरेबल चेयरमैन सर, मैं फ्रंटियर हाईवे जो उसके नीचे में बहुत सा ऐसा जगह है जहां मेन वैलीज में सड़कें बनाया है, 2 लेन बनाया है और एडवांस लैंडिंग ग्राउंड भी बनाया है, और एडवांस लैंडिंग ग्राउंड भी बनाना है, वो अलग सब्जेक्ट है। आज में एक बहुत बड़ा सेंसिटिव, अगर हमारा ओपोनेंट, हमारा ऊपर वाला जो देश के लोग सुनेंगे तो इसको तरफ जाएंगे। ऑनरेबल चेयरमैन साहब, आपका माध्यम से मैं बीके सिंह साहब को बताना चाहूंगा, ये इन दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट में मिपी टू अंडेला पास ये सड़क बनाना जरूरी है। और मालिनी से बालुआ और अनिनी से अंगुला पास, ये सिक्योरिटी का डिमांड है, आईटीबीपी का भी डिमांड है, आर्मी का भी डिमांड है इन दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट में, जहां फ्रीक्वेंट इनकर्शंस होने का जो खबर आते रहता है। और एक सेंसिटिव जगह है चेयरमैन साहब, इन द ईस्टर्न सेक्टर, इन द ट्राई जंक्शन, सागलागाम बोल के एक जगह है, सागलागाम से हादीगरा पास, जिसको ऑनरेबल मिनिस्टर बीके सिंह साहब अच्छा से जानता है, और सागलागाम से गलाई तागरू पास, और सागलागाम से वालोंग 1962 वार में जहां हमारा हेवी लॉस मिलिट्रीली हुआ, उस जगह में हम अलोंग द मेकबोन लाइन उस सड़क अगर बनाएंगे तो केवल अरुणाचल का नहीं है, ये देश का सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा अच्छा होगा। और यिंगक्योंग से बीसिंग, ऑनरेबल चेयरमैन सर, 2017 में बीसिंग में ही चाइना ने सड़क बनाना शुरू किया था, उसमें हमारा इंडियन आर्मी ने रुका दिया। यिंगक्योंग से बीसिंग, ये आर्मी का भी डिमांड है, आईटीबी का भी डिमांड है, और देश का भी ये डिमांड है कि इस सड़क को बनाना चाहिए। और एक सड़क है, ऑनरेबल मेंबर प्लीज ऑनरेबल चेयरमैन सर, स्टिल पांगो टू जोरगिंग का ऑपोजिट जो है गिनसिंग एयरपोर्ट है, निनसिंग एयरपोर्ट, जहां जिंगपिंग ने लैंडिंग हुआ था। एक पहाड़ का इस तरफ में जोरगिंग है, 97 किलोमीटर। इंडियन आर्मी एंड आईटीबीपी आर वर्किंग फॉर 10 days to reach that Jorging, a sensitive outpost where 7 Chinese citizens has reached up to that extent and Indian army has arrested it. Yes, now समाप्त कीजिए प्लीज। सर, मैं इतना दूर से आया हूं, अच्छा, 1-2 मिनट सर। ये पांगो टू जोरगिंग एंड जोरगिंग ते मोनीगांव अलोंग द बॉर्डर टूरिस्ट मेसुका, ये बीके सिंह साहब ये इस चीज को भी ध्यान दीजिएगा। और सिंगा टू अनिनी एंड मीगिंग टू पायुम, हवाई टू विजयनगर, कोलोरियांग टू ताकसिंग। एंड मैंने लास्ट टाइम भी एक रिक्वेस्ट किया था कि तवांग से बाया भूटान होके गुवाहाटी का सड़कें बनाना चाहिए था फॉर सिक्योरिटी रीजन, तो भूटान वाले नहीं मान रहे, तो इसका एक ऑल्टरनेटिव है शेरगांव टू शेरगेलेमू, मंडला, पुडुंग, नागाजीजी, मुक्तू एंड तवांग। द शॉर्टेस्ट वे टू रीच तवांग फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इन फ्यूचर। एंड सर, एक और रोड है अरुणाचल इंडस्ट्रियल रोड अलोंग द फुट हिल्स, असम अरुणाचल बॉर्डर से। नितिन गडकरी जी का इनिशिएटिव से ये सड़क बनाना था, डीपीआर सारा सब तैयार हो गया। इसके लिए इसको भी अरुणाचल इंडस्ट्रियल रोड
भूटान बॉर्डर टू नेपाल नागालैंड बॉर्डर तक सड़कें एक इंडस्ट्रियल रोड बनाना है, इसके लिए भी गडकरी साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। एट द एंड सर, विथ योर परमिशन फॉर फ्यू सेकेंड, एक इस नेशनल हाईवे एंड NSI DCL में मैं मिनिस्ट्री को एक चीज जानना चाहता हूं, जब आप में इस चीज को बताएंगे। जैसे टेंडर होता है नेशनल हाईवे में या NSI DCL में, एज पर द CBC गाइडलाइन द लोएस्ट बिडर शुड बी ऑफर टू फॉर द कंस्ट्रक्शन। सर इसमें क्या है, -27, -30, दैट मीन्स 100 रुपया का काम को 50 रुपीज से आप सड़क के कैसे बनाएंगे? देयर इज ए चांस ऑफ कॉम्प्रोमाइज ऑन द क्वालिटी ऑफ द रोड। समाप्त कीजिए। सर इन कंक्लूजन, साथ में फॉरेस्ट क्लियरेंस, CBC फॉरेस्ट क्लियरेंस दैट रियली डिलेड द प्रोजेक्ट स्पेशली इन माउंटेनियस एरिया। धन्यवाद। इसके लिए इस चीज को और ऑनरेबल मिनिस्टर देखे सो दैट स्मूथली कंस्ट्रक्शन वर्क काम चले। तो इसलिए मैं ऑनरेबल चेयरमैन सर आपको भी धन्यवाद देता हूं कि स्पाइडर नेट की तरह जो सड़कें बना रहा है, इसको और आगे बनाएंगे और गति शक्ति के साथ देश आगे बढ़ेंगे, पूर्वोत्तर राज्य भी आगे बढ़ेंगे, हिमालय भी आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। Thank you very much, Hasnain Masoodi. I would like to, one second, I request honorable members to abide by Rule 349. It is very clear. A member shall not leave the seat immediately after his speech. And so many directions, rules are there. Please observe it. And honorable members, please do not have any conversation with the official box. It's only the prerogative of the ministers. Please. Yes, Hasnain Masoodi ji. So this. जनाब, मुझे डिमांड्स फॉर ग्रांट्स मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज में बोलने का मौका देने के लिए बहुत शुक्रिया। तो बड़ा अच्छा होता अगर मिनिस्टर साहब यहाँ तशरीफ रखते तो, और वो तो यहाँ तारीफ ही बटोरते, हर एक उनकी तारीफ ही करता, लेकिन किसी वजह से वो नहीं है। लेकिन हमारे लिए वीके सिंह साहब भी काफ़ी हैं जम्मू कश्मीर के लिए, क्योंकि उनका जितना अनुभव है जम्मू कश्मीर के बारे में किसी और का नहीं होगा। तो जनाब, इस साल जो प्रोविजन रखा गया है तकरीबन 2 लाख करोड़ रुपए का, वो तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मुझे लगता है कि 5% जो टोटल एक्सपेंडिचर है उसका क्लेम कर रहे हैं ये जो रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज, और ये तीसरे नंबर पर है। मुझे लगता है कि डिफेंस और जो कंज्यूमर अफेयर्स के बाद ये तीसरे नंबर पर है जिस पर इतना एक्सपेंडिचर हो रहा है। तो और एक्सपेंडिचर को ध्यान में रखते हुए भी बड़े एम्बिशियस प्रोग्राम्स हैं, बड़े एम्बिशियस प्लान्स हैं। भारतमाला का प्रोग्राम है और बाकी 25,000 किलोमीटर नेशनल हाईवेज का भी प्रोग्राम है, जो कैपेक्स के तहत जो और एडिशनल ग्रांट्स दिए गए हैं स्टेट्स को भी, और उसके लिए प्रोविजन रखा गया है। तो जनाब, कुछ विषय हैं, कुछ सेक्टर्स हैं जो चिंता का सबब है। एक तो ये कि क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, जैसे पहले भी जिक्र किया गया, रोड क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है जितनी ये बाकी में, और कहा गया कि 44वें नंबर पर रोड क्वालिटी में है, जबकि जर्मनी पहले नंबर पर है। तो उस तरफ ध्यान देने की तवज्जो है कि क्यों ये जो मेंटेनेंस का कॉस्ट है वो क्यों बढ़ता जा रहा है। दूसरी बात जनाब है जो जेस्टेशन पीरियड है। आमतौर पर जहां भी रोड बनाने का काम शुरू किया जाता है तो जो उसके टारगेट्स होते हैं, बेंचमार्क्स होते हैं, उनको एडर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि पहले देरी होती है वो साइट क्लियरेंस में। वो भी एक बड़ा विषय है, वो भी बड़ा एक प्रॉब्लम है। मुझे मेरे मुशाहिदे में ये आया है कि कहीं पर रोड अगर सैंक्शन भी हो तो लोग नहीं आते हैं कि वो रोड बनाने के लिए, क्योंकि डिपार्टमेंटली कुछ परेशानियां हैं जिनमें ठेकेदार वगैरह वो आगे आते नहीं है रोड बनाने के। अभी हमारे मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में भी अनंतनाग से छत्ताबल का रोड हुआ, तो हमें तकरीबन 1 साल इंतजार करना पड़ा कि कोई आए और वो रोड, इस रोड का वो कंस्ट्रक्शन करे। तो वो उस तरफ तवज्जो देनी चाहिए ताकि जो जेस्टेशन जो बनाने का जो पीरियड है, जो पीरियड जनाब। उस तीसरी बात यह है कि स्टेट का जहां तक है, क्योंकि इसमें स्टेट का भी रखा गया है कि स्टेट सेक्टर में कितना और सेंट्रल सेक्टर में कितना होगा। स्टेट रोड्स के लिए भी प्रोविजन रखा गया है और सेंट्रल में भी, लेकिन CRF जो है वो रिलीज नहीं होता है, उसमें बड़ी देरी लगती है, जिस वजह से वो वहीं का वहीं रहता है, जो भी प्लान होता है, जो भी वहां का रोड बनाने का प्रोग्राम होता है। तो जनाब ये मोटे मोटे पर है जो चुनौतियां हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज
जो डैश है, डायरेक्शन है एंड द काइंड ऑफ कमिटमेंट द मिनिस्टर हैज, तो उसको सब अप्रिशिएट करते हैं। अभी श्रीनगर तशरीफ लाए थे, वहां पर अभी उन्होंने इफ्ताह किया 2 रोड्स का, तो हम भी शामिल थे उसमें। तो वहां भी उनके नोटिस में लाए गए थे कि कुछ चैलेंज जो हमारे स्टेट जम्मू कश्मीर को है रोड के हवाले से। सर, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारा NH-44 का। ये 3 महीनों में कोई 1.5 महीना NH-44 जो कि एक शाहराग है, जो कि एक लाइफलाइन है बिटवीन जम्मू एंड श्रीनगर, वो बंद रही। और सारा अगर आप जनाब देखेंगे रोड्स पर जो एक्सीडेंट्स होते हैं उसमें कैजुअलिटीज जो होती हैं, जो फेटल एक्सीडेंट्स होते हैं, उसमें आपको यही रोड, या तो डोडा वाला रोड या ये NH-44 वाला रोड, ये सबसे आगे है सारे मुल्क में। कितने फेटल एक्सीडेंट्स होते हैं। अब कैसे काम चलेगा जब आप एक जो मेन लाइन है, लाइफ लाइन जो है, वो रहेगी कोई मिल मिला के 3 महीने में 1.5 महीने बंद रहेगी। तो मैंने ये तजवीज़ दी मिनिस्टर साहब को ये की थी कि आप ये एलिवेटेड रोड बनाइए बिटवीन रामबन एंड बानियाल। जनरल साहब जानते हैं, तो वही सबसे बड़ा सेक्टर है जिस सेक्टर में ये नहीं कि हुआ नहीं कुछ, 2 चनानी की टनल बन गई, चाहे काजीगुंड की टनल बन गई, बहुत कुछ हुआ आगे, लेकिन इस सेक्टर को आप एलिवेटेड बनाइए। एक तो आप डिस्टर्ब कर रहे हैं हिल्स को, हर आए दिन वो हिल्स सॉइल इरोजन हो रहा है, हिल की जा रही है। तो दूसरी बात यह कि उस तरफ सर 5 टनल्स की, क्योंकि आप जानते हैं, टोपोग्राफी जानते हैं आप, 5 टनल्स की जनाब जरूरत है इमीडिएटली, जिसकी तरफ मिनिस्टर साहब तवज्जो देंगे। एक जनाब है देसा कापरन, इससे क्या होगा, डोडा का जो आप जानते हैं कास्तीगढ़ का इलाका, वो सारा जुड़ जाएगा कश्मीर के साथ, वैली के साथ, और देसा कापरन उस पर पहले ही शुरुआत हो गई है। मुझे लगता है कि उस पर फोकस करने की जरूरत है। तो जनाब एक लहंद और एक ऐसा ही एक है जाजरन का टनल। देखिए अभी आप डिलिमिटेशन का ये बना रहे हैं प्रोग्राम के, नहीं हम किसी और कारण से राजौरी पुंछ को मिलाएंगे अनंतनाग के साथ, साउथ के साथ, जबकि 6 महीने रोड ही बंद रहता है। आप खुद जानते हैं 11,000 फुट के करीब, 11,000 फुट ऊंचाई वाले वहां पर जो हिमालयी सिलसिला है पीर पंचाल का, तो वहां पर जरूरत है कि ये जो जाजरन वाला टनल है, फिर ये पहले उसमें मुझे लगता है टेंडर शुरू हुआ है, उसमें इनिशियल वर्क हुआ है और DPR वगैरह बना हुआ है, लेकिन सुस्त से काम चल रहा है। तो जनाब राजधानी, आज जानते हैं गुरेज कितनी कठिनाई है, आप खुद रहे हैं वहाँ, खुद देखा आपने कि कितनी कठिनाई है बांडीपुरा से गुरेज। और गुरेज तो एक पेशेंट के लिए हेलीकॉप्टर भेजना पड़ता है। अभी वहां पर जनाब रिक्रूटमेंट थी क्लर्क्स की, उस रिक्रूटमेंट के लिए वहां से बच्चों को उठाना पड़ा हेलीकॉप्टर के जरिए ताकि वो उसमें पार्टिसिपेट करें। सो इतनी मुश्किल है। और अगर आप जब ये बनाएंगे आप ये जाजरन वाला, ये राजधानी वाला, तो उसके बाद साधना पास, यू नो अगेन बिटवीन टीटवाल एंड कपवारा, हाउ मेनी एक्सीडेंट्स हुई, रोड एक्सीडेंट हुई कम अक्रॉस, कितनी जाने जाती हैं साधना पास पर। तो जनाब इस टनल पर तवज्जो देने की जरूरत है। और ये देसा का आपने तो वो बड़ा ही महत्व है, तो और टनल्स पर तो काम हो रहा है। तो इन एरियाज में जनाब, इन एरियाज में ताकि रोड कनेक्टिविटी जम्मू कश्मीर जैसे इलाके में और ज्यादा हो, सारा हिली है, सब जो लोअर हिमालयाज हैं, पीर पंचाल का सिलसिला है, ताकि और ज्यादा यातायात हो, ट्रांसपोर्ट बन जाए और ज्यादा बढ़ जाए। क्योंकि अभी एक बड़ी समस्या है कि रेल नहीं जाती है। तो जनाब आप जब NH-44 3 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 1.5 महीने के लिए बंद रहा, तो सारा फ्रूट जो है 6 करोड़ के करीब बॉक्सेस है, वही पड़ते हैं, माल वही सड़ता है, और फिर टैरिफ जो उसका लेने का है, फेयर जो है वो उसमें भी बढ़ोतरी होती है। yes. और मैंने 2-4 रोड्स के लिए बारे में बोलता हूँ, तो मिनिस्टर साहब यहाँ पर, तो उससे मुझे और ज्यादा मदद मिलेगी, ये समझेंगे मैं क्या कह रहा हूँ। तो एक है जनाब ये देसा कापरन वाली रोड, जिसका मैंने जिक्र किया, पहले टनल और उसके बाद और फिर लहमदजन से बटनूर, ये जनाब पहलगाम से जाएगा त्राल इलाके में। इससे जो अमरनाथ यात्रा है और यातायात है वो ठीक हो जाएगा। ये बिल्कुल कोलर के साथ शुरू हो जाएगी, त्राल वैली में जाएगी और फिर वहां से पश्तून ख्रीव वाला रोड। तो इससे ये सारा इलाका 25 किलोमीटर नजदीक आ जाएगा। तो जनाब लतपोरा से पांथाचौक तक बाईपास NH-44 का, क्योंकि इसी पर आर्मी का आपका है, जो भी आर्मी इंस्टॉलेशन वही है, और जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है वहीं पर है, जो भी इंडस्ट्रियल स्टेट है, सीमेंट फैक्ट्रीज हैं, माइनिंग हो रही है, वो इसी रोड पर हो रही है। तो इस जरूरत है कि इसको हम कन्वर्ट करें एक बाईपास, NH-44 बाईपास। थैंक यू सर। और संगम लासीपुरा, तो मिनिस्टर साहब मुझसे एग्री कर रहे हैं, वो तो दिलचस्पी से सुन रहे।
संगम लासीपुरा, जनाब संगम से जो ट्रॉलर्स बड़े बड़े ट्रॉलर जाते हैं, लासीपुरा इंडस्ट्रियल एरिया है, तो उसके लिए जरूरत है कि वो रोड उसको उसका स्टेटस बढ़ाया जाए। और मुझे वादा किया मिनिस्टर साहब ने कि ये भारत माला के तहत इसके लिए फंड्स प्रोवाइड करेंगे ताकि निर्भर न हो स्टेट। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मसूदी जी उसमें बस जनाब बहुत शुक्रिया जनाब। तो मुझे ये उम्मीद है कि ये सारा जो मेरी जो मैंने रिक्वेस्ट की, लेकिन इसी तरह जनाब 7,270 करोड़ रुपए आपने रोड सेफ्टी पर, मेरे ख्याल में बहुत कम है। ओके, सुशील कुमार सिंह जी। और किसी तरह से कनेक्ट कीजिए इसको, क्या नाम है, जो कैजुअलिटीज होती हैं उनके जो डिपेंडेंट्स होते हैं उनका कोई प्रोविजन रख लीजिए। बहुत शुक्रिया जी। सुशील कुमार सिंह जी। सभापति जी, आपको धन्यवाद करते हुए मैं सड़क मंत्रालय और राजमार्ग मंत्रालय के अनुदान मांगों पर हो रही चर्चा के समर्थन के लिए खड़ा हुआ हूं। महोदय, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि इस मंत्रालय के काम की जितनी चर्चा की जाए, इस मंत्रालय की जितनी प्रशंसा की जाए वो कम होगा। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय मंत्री गडकरी जी और साथ साथ राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह साहब, इनके नेतृत्व में इस मंत्रालय के माध्यम से देश के अंदर सड़क निर्माण के क्षेत्र में देश के इस कोने से लेकर उस कोने तक, यानी हर क्षेत्र में जिस तरह से तेज गति से काम हुआ है उसकी प्रशंसा पूरा देश करता है, सारे लोग करते हैं। यहाँ तक कि विपक्ष के भी मेरे साथी इसकी आलोचना नहीं करते, इसकी शिकायत नहीं करते, लेकिन चूंकि काम हो रहा है इसलिए हमारे विपक्ष के भाई भी कोई नई मांग रखते हैं, कोई नया सुझाव देते हैं, ताकि जब देश में इतना काम हो रहा है सड़क के क्षेत्र में तो उनके इलाके में भी अच्छी सड़कें बन जाए। इस बात के लिए मैं विशेष तौर पर आदरणीय गडकरी जी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। महोदय, हमारे पूर्व के कई वक्ताओं ने आंकड़ों के साथ बड़े विस्तार में चीज़ों को लोकसभा के अंदर रखा है। न तो मैं उन आंकड़ों को दोहराना चाहता हूं और न मैं बड़े विस्तार में जाना चाहता हूं, इसलिए कि हर तरफ जब प्रशंसा ही प्रशंसा है तो फिर उसमें लोकसभा के समय के महत्व को समझते हुए जी उस प्रशंसा सुनने के मंत्री इधर नहीं है। फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑनवर्ड्स उन तक बात पहुंच जाएगी सर, उन तक बात पहुंच जाएगी। और हमारे जनरल वीके सिंह साहब तो हैं, लेकिन मैं ज्यादा नहीं 2-3 बातें कहना चाहूंगा आपके माध्यम से। नंबर 1, एक नेशनल हाईवे है हमारे बिहार के अंदर जिसका नंबर है 139 जो बिहार की राजधानी पटने से शुरू होती है और बिहार के कई जिलों पटना, अरवल, औरंगाबाद होते हुए झारखंड की सीमा में प्रवेश करती है और उसके बाद झारखंड के पलामू जिले में जाकर वो समाप्त होती है। ये जो सड़क है महोदय, वो सीधे सीधे तौर पर 3 राज्यों को जोड़ती है। बिहार को सीधे सीधे झारखंड और छत्तीसगढ़ से जोड़ने वाली इस महत्वपूर्ण सड़क के 4 लेनिंग का प्रस्ताव मैंने काफी पहले मंत्रालय को भी दिया और बिहार सरकार से भी आग्रह किया, लिखित रूप में भी। मेरे ही आग्रह पर बिहार सरकार ने इस सड़क के 4 लेनिंग का प्रस्ताव भी केंद्रीय मंत्रिमंडल को भेजा है, भारत सरकार को भेजा है। जहां तक इस सड़क पर पीसीयू का सवाल है, पैसेंजर कार यूनिट का सवाल है, जो क्राइटेरिया है भारत सरकार के सड़कों के 4 लेनिंग करने का वो 10,000 है, लेकिन इस सड़क पर पीसीयू 12,000 है और यदि अभी अभी सर्वे किया जाए तो ये पीसीयू इसका 1.5 यानी 18,000 के आसपास हो जाएगा। महोदय, इस सड़क पर
2 चक्के की सवारी, साइकिल से लेकर बाइक और फिर अनेक चक्कों वाली सवारियां, पैसेंजर गाड़ियां, मालवाहक गाड़ियां और साथ साथ 4 व्हीलर। इतना दबाव है इस सड़क पर कि हम लोग जब अपने जिला मुख्यालय औरंगाबाद से पटने जाते हैं, जो मात्र 140 किलोमीटर है, 4 घंटे लगते हैं महोदय। हम लोग जब अपने शहर से झारखंड या कलकत्ता या दिल्ली के लिए आते हैं तो 4 लेन है, एवरेज स्पीड होता है 100 किलोमीटर 1 घंटे में, लेकिन जब पटना जाते हैं तो यही एवरेज 35 किलोमीटर हो जाता है। एक्सीडेंट भी बहुत बड़ी संख्या में हो रही है, चूंकि इतनी भीड़ है इस सड़क पर, इतना रश है कि दुर्घटना होना स्वाभाविक है। तो मेरा निवेदन यह होगा और मैं आशा करूंगा कि जब जवाब आए माननीय मंत्री जी का तो मुझे खुशी होगी इस बात की कि उस जवाब में ये घोषणा हो कि इस सड़क को 4 लेन किया जाएगा। चूंकि सारा क्राइटेरिया यह सड़क फुलफिल करता है, कोई इफ बट नहीं है, कोई कारण नहीं है कि यह सड़क 4 लेन ना हो। महोदय, इसके साथ साथ 2 और सुझाव हैं, कोई नई मांग नहीं है। दिल्ली से कोलकाता जो सड़क जाती है, नेशनल हाईवे 19, वाराणसी से धनबाद तक अभी 6 लेनिंग का काम तेज गति से शुरू हुआ है माननीय मंत्री जी की देखरेख में, उनकी समीक्षा के बाद। वरना कई वर्षों से ये काम बहुत विलंबित था, लटका हुआ था। अभी मुझे खुशी हो रही है ये बताते हुए कि इसमें तेज गति से काम शुरू हुआ है, लेकिन वर्तमान में सड़क थोड़ी खराब है। सासाराम टोल से लेकर डोभी एक जगह है जो दिल्ली से करीब करीब 1020वें किलोमीटर पर होगा। इस बीच में सड़क थोड़ी अच्छी नहीं है। ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहना चाहूँगा कि इसकी स्थिति को बहाल किया जाए और इस मंत्रालय की माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मंत्री जी की जो छवि है और इस मंत्रालय की जो छवि है उसके अनुरूप ये सड़क हो। क्योंकि गया से वाराणसी जाने में एक व्यक्ति को 4 जगह टोल देना पड़ता है। 4 जगह टोल देकर अगर उसको उसके मुताबिक उसके लायक सड़क ना मिले तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता सुनने में। इसलिए मेरा निवेदन होगा, आग्रह होगा कि इसकी स्थिति को अच्छी की जाए। साथ साथ एक बात और कहना चाहूँगा कि पहले से ही इस मंत्रालय में बहुत बड़ी संख्या में अच्छी गुणवत्ता वाली सड़कों का निर्माण हो रहा था, लेकिन इस बार की बजट में हमारे प्रधानमंत्री जी के निर्देश के तहत जिस प्रकार ज्यादा बजट इस मंत्रालय को दिया गया है तो लोगों की उम्मीद भी जग गई है। और हमारे क्षेत्र से गुजरने वाली एक नई सड़क का ऐलान हुआ है, उसकी घोषणा हुई है। वाराणसी से कोलकाता एक बिल्कुल नया ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट के साथ इस सड़क का निर्माण करने की घोषणा मंत्रालय ने किया है, जिसपे 24,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मैं इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और ये कहना चाहता हूं कि इसका भी निर्माण कार्य जल्दी से जल्दी शुरू किया जाए। बड़ी खुशी की लहर है हमारे इलाके में, साथ साथ झारखंड के इलाके में भी, बंगाल के लोगों में भी। और अंतिम बात कहते हुए पुनः एक बार ये निवेदन कि NH 139 पटना, अरवल, औरंगाबाद, हरिहरगंज से लेकर पड़वा मोड़ पलामू जिले में एक जगह है झारखंड में, इस सड़क को निश्चित रूप से 4 लेन करने की घोषणा सुनने के लिए मैं आशान्वित हूं। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। श्री P. वेलुस्वामी। Thank you, Chairperson sir. In India, majority road infrastructure is being used for transporting 60% of goods, 85% for passenger traffic, but in reality, 2% of the road network carry around 40% of total road traffic. As on March 2019, our country is having 1.3 lakhs kilometers of national highways and 1.8 lakhs kilometers of state highways.
Sir, a portion of cess collected on petrol and diesel has been earmarked for the development of national highways and state highways, and the amount pending in the fund is non-lapsable. The funds are being transferred to NHAI and the state UT governments for the development of road, infrastructure and other projects like ports, railway track and airports. For 2022-23, the transfer from CRIF towards the ministry is estimated at rupees 1,59,616 crores. This is 61% more than revised transfer in 2021-22, rupees 99,239 crores. Sir, the Kodaikanal-Munnar Road, old SH18, was located in my Tindikal Parliament constituency at spread over the district of Tamil Nadu and Idukki district in Kerala. The road is situated on an elevation of 2,480 meters, 8,140 feet. It was one of the highest roads in India. South of Himalayas prior to its close in 1990. The old road is disparate condition, not usable for any kind of transport due to damages and overgrown vegetation in most of the areas. The project to be taken on CRF scheme. Sir, while the NHAI is developing 3,500 kilometers of national highways in Tamil Nadu, it has completed only 125 kilometers of project length. The ministry should take steps to speed up the work of remaining 2,214 kilometers of ongoing project on our footing. To speed up the 4-lane project under Pardhamala includes 7.3 kilometer elevated 4-lane bridge connecting the Pandian Hotel junction with Settikulam and widening the existing 30.4 kilometer 2 lanes into 4 lanes from Settikulam to Nattam on the NS 785. Sir, last point. There is a major junction in Trichy-Tindikal highway at Silapadi, kilometer 417.2, which was built by NHAI to provide an underpass for the benefit the local people at Silapadi crossing at Silapadi. Thank you, sir. Next, Shri Devji Patel ji. धन्यवाद सभापति महोदय। सभापति महोदय, मैं भारत सरकार द्वारा बजट में पेश की गई सड़क परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय के अनुदान मांगों के समर्थन के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं धन्यवाद देता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय नितिन गडकरी जी और विराजमान श्री वीके सिंह साहब को। इन्होंने विगत 7 साल में सड़कों को परिवहन के लिए जिस विशेष रूप से जोर दिया और एक जाल पूरे भारत के अंदर बिछाया। सभापति जी, मैं याद करता हूं सम्मानीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी को, जिन्होंने प्रधानमंत्री सड़क योजना शुरू की और हमारे गांवों को जोड़ा। मैं एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता हूं। अध्यक्ष जी, उस टाइम पे काली सड़क हम देखते थे और मैं वैसे मेरा निवास अहमदाबाद है। अहमदाबाद से मैं सांचौर जब आता था तो एक बार हम ये सोचते थे बीच में होल्ड करें और उसके बाद में हम आगे प्रवास करें, लेकिन अटल जी ने उस समय भी जो गुजरात का नेशनल हाईवे बनाया और बाद में अभी गडकरी जी ने और आदरणीय मोदी जी ने जो पूरे देश में हाईवे के निर्माण का कार्य किया, वो एक भारत की जो परिकल्पना थी वो हमारे सामने पेश की। मेरे क्षेत्र के कई लोग प्रवासी है। अध्यक्ष जी, हमने जब यहां पे सामने में विपक्ष में बैठा था और कई बार मैं मांग करता था, जहां ना पहुंचे रेलगाड़ी वहां पहुंचे मारवाड़ी। हम लोग वहां पहुंच गए थे, लेकिन वापस आने के लिए हमारे पास में रेलगाड़ी नहीं थी। मैं धन्यवाद देता हूं, मोदी जी की सरकार आई 2014 में, और 2014 में सरकार आने के बाद में नेशनल हाईवे जो बनना शुरू हुआ, अब रेलगाड़ी की हमारे वहां पे कम चर्चा करते हैं। बाई रोड वहां से निकलते हैं और सीधे हमारे क्षेत्र में आ जाते हैं। यहाँ पे अपना काम निपटा के वो वहां पे वापस अपने कर्म भूमि में पहुंच के वहां पे व्यापार और व्यवसाय करना उन्होंने शुरू कर दिया। इसके लिए भी मैं इनको धन्यवाद दूंगा। आंकड़ों में ज्यादा मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन
मैं ये जरूर धन्यवाद दूंगा कि पिछले साल के मुकाबले 68,000 करोड़ जो ज्यादा दिए हैं उस पर थोड़ी सी नजर मेरे क्षेत्र की भी है। वो वीके सिंह साहब को जरूर मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उसमें कुछ हिस्सा हमारा रख लें तो शायद हमारा और उद्धार हो जाएगा। उसमें चूरू को भी ले लीजिएगा। इसके साथ साथ में जो जीरो फ्यूल पॉलिसी, सभापति महोदय, मुझे बहुत खुशी होती है आज जो गाड़ियां आनी शुरू हुई 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर जो इलेक्ट्रिक से चलती है, और अगर सड़क अच्छी होगी तो उसके अंदर आने जाने में भी जो फ्यूल की बर्बादी हो रही थी उससे भी हमें बहुत फायदा होगा। जैसे गडकरी जी खड़े होते थे और उन्होंने जो आंकड़े दिए कि भाई 50 पैसे में ये चलेगा, 1 रुपए में चलेगा, और आज सही मायने में भारत के अंदर वो सारे फ्यूल को नीचे लाने का कार्य भी इस मंत्रालय ने किया है। इसके लिए भी मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। एक जो नया विषय आया है नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसके तहत 60 किलोमीटर की 8 परियोजनाओं के कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं 22-23 में, और आगे और इस पे कार्य कर रहे हैं। मैं उसके लिए भी गडकरी जी को धन्यवाद दूंगा, क्योंकि ये जो नेशनल रोपवे है इसके माध्यम से पर्यटन की दृष्टि से भी अगर हम देखने जाएं तो उसमें भी बहुत बढ़ावा मिलेगा। और मेरे राजस्थान में जैसे आज दिन में भी एक विषय चला था कि पर्यटन की दृष्टि से जो भी बाहर से आता है वो राजस्थान के अंदर पर्यटन के मार्ग से होते हुए गुजरना पसंद करता है। और मेरे वहां पे तो एक माउंट आबू है जो राजस्थान का कश्मीर कहलाया जाता है। अध्यक्ष जी, वो जो माउंट आबू है वैसा ही एक मिनी माउंट आबू मेरे रानीवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में जसवंतपुरा का फोर्ट है, और पास में ही जालोर का एक फोर्ट है जहां पे केंद्र सरकार ने पैसे दिए थे, लेकिन शायद कोई पैसे टेंडर आमंत्रित करते हैं उसमें नहीं आ रहे, शायद कहीं कुछ धन की कमी है। तो मैं वीके सिंह साहब से जरूर निवेदन करूंगा कि उसको भी लिया जाए, ताकि पर्यटन की दृष्टि से मेरे वहां के जो लोग हैं उनको भी कुछ ना कुछ लाभ मिले। क्योंकि जालोर के अंदर इतनी बड़ी कोई इंडस्ट्रीज वगैरह नहीं है, हम लोग प्रवास के तौर पे ज्यादातर डिपेंडेंट है। तो इस पे जरूर मैं आपका ध्यान दिलवाना चाहूंगा। साथ ही मैं मेरे क्षेत्र की कुछ विषय जो है मैं मंत्री महोदय के सामने रखना चाहूंगा। सभापति महोदय, उदयपुर के अंदर जब हमारे वहां पे एक नेशनल हाईवे का उद्घाटन हुआ था, तब सम्मानीय गडकरी जी और उद्घाटन करने आए थे। तब एक सैद्धांतिक रूप से उन्होंने एक घोषणा भी की थी कि मेरे वहां पे रोहित से लेकर सांचौर, जालोर, करड़ा होते हुए उसको नेशनल हाईवे बनाया जाएगा। क्योंकि एकदम पाकिस्तान से सटा हुआ सांचौर विधानसभा क्षेत्र है, एक साइड में गुजरात पूरा बॉर्डर लगता है। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा, मंत्री जी लिखेंगे तो थोड़ा मैं निवेदन कर लूं सर, क्योंकि ये मंत्री जी 68,000 में कुछ हिस्सा बन जाए तो काम हो जाएगा मेरा। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि जो घोषणा उस समय पे थोड़ी हुई थी उसके अंदर रोहित से करड़ा होते हुए सांचौर जो नेशनल मार्ग है उसको गति शक्ति में आप समावेश करें, तो ये जो मेरा क्षेत्र है इसकी 5 विधानसभा, इस 5 विधानसभा से होते हुए ये क्षेत्र से ये राज्य मार्ग, हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो बहुत काम आएगा। और जिससे मेरा संभाग जुड़ता है, जिससे मेरी राजस्थान की राजधानी जुड़ती है, और जिससे दिल्ली जो राजधानी है वो भी जुड़ती है। और मैं आपको इतना 100% गारंटी देता हूं कि उस मार्ग पे आप फिर बाद में उसको और बढ़ा के 6 लाइन करने का प्रस्ताव रखेंगे, क्योंकि इतना ट्रैफिक वहां से गुजरता है। ये जरूर मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा। इसके साथ ही सांचौर के अंदर एक ब्लैक स्पॉट है, जैसे गडकरी जी ने कहा था कि सांसदों को सुझाव से ब्लैक स्पॉट चयनित किए जाए, और जो ब्लैक स्पॉट है जहां पे ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं उन एक्सीडेंट को वहां से खत्म किया जाए। आपने पहले एक ब्लैक स्पॉट मैंने जरूर आपको बताया था, उस पर आपने ब्रिज दे दिया। अभी एक रानीवाड़ा सांचौर 4 रास्ता है। मंत्री महोदय, ज्यादा तो नहीं लेकिन 15 दिन में एक एक्सीडेंट जरूर वहां होता है और एक जान वहां चली जाती है। मैंने कई बार अधिकारियों से निवेदन किया है कि इसको ब्लैक स्पॉट घोषित करके वहां पे एक ब्रिज बनाया जाए। आप एलिवेटेड बनाएंगे तो आपको धन्यवाद है, क्योंकि वहां पे बाजार भी मुख्य बाजार है। अगर ये ब्लैक स्पॉट की जगह पे ब्रिज बन जाएगा तो शायद वहां के जो हमारे निवासी हैं उनकी जान नहीं जाएगी, उससे उनको जान से हाथ नहीं धोना पड़ेगा। एक और मेरा रोड है अध्यक्ष जी, NH 168 जो गुजरात के अंदर है, वहां से जेल्डा एक गांव आता है,
गुजरात के अंदर डीसा धानेरा के आगे झेलडा से लेके सिरोही जो मेरा लोकसभा क्षेत्र है उसके अगर वहां पे एनएच मिलाया जाए और उसमें भी रेवदर और मंडार दो बड़े कस्बे आ रहे हैं। अध्यक्ष जी, उन बड़े कस्बों के बीच में से ये हाईवे निकलता है और उसके माध्यम से कई बार कई लोगों की जान गई है। कई छोटे बच्चे जो स्कूल में जाते हैं उन बच्चे वो बड़ी जो ट्रक्स और बड़े जो ट्रैफिक के जो व्हीकल्स है उनकी चपेट में आके बच्चों को जान से हाथ धोना पड़ता है। अगर इसको बाईपास करेंगे तो ये भी एक बड़ा, क्योंकि कांडला जाने के लिए वो एक राजमार्ग है और कांडला जब वहां से निकलते हैं तो बड़े बड़े जो पोर्ट के लिए जो भी कंसाइनमेंट है वो वहीं से निकलते हैं, तो इसको एक बनाना बहुत जरूरी है। जेलडा से लेके सिरोही मार्ग तक वाया रेवदर और मंडार बाईपास। एक विषय जरूर मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा, केंद्रीय सड़क निधि के तहत भी मंत्री जी मैंने यहाँ बहुत प्रस्ताव भेजे हैं। भीनमाल, पुनासा, मीठीबेरी, सिरोही कालंदी, रामसिंह रोड, ये सारे प्रस्ताव मेरे यहाँ पे पड़े हैं और मुझे पूर्ण आशा है, आशा ही नहीं आपसे तो विश्वास, और जैसा भी सुशील सिंह जी ने कहा ऐसा पूर्ण विश्वास है साहब। ज्यादा लंबा भाषण हम नहीं, उसको भी हम शॉर्ट कर देंगे। हमें तो ये छोटी छोटी सड़कें अगर मिल जाएगी तो इसमें हमारा उद्धार हो जाएगा और हमारा जो क्षेत्र है वो क्षेत्र सही मायने में एक विकास के पथ पे चलने लगेगा। क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा, रेगिस्तानी क्षेत्र है, किसान से जुड़ा हुआ पूरा क्षेत्र है, लेकिन किसानों को ये छोटी सड़कें अगर मिल जाती है तो उससे किसानों को बहुत लाभ मिलता है और किसान के बच्चे जो व्यापार करना चाहते हैं और व्यापार करने के लिए कहीं भी छोटे कस्बे में जाना चाहते हैं वो वहां पे जाके काम कर सकते हैं। एक मंत्री जी से मैं जरूर निवेदन करना चाहूंगा और मैं उसके लिए सरकार को और सबको धन्यवाद दूंगा कि मेरे क्षेत्र से एक बहुत बड़ी भारतमाला परियोजना निकाली है। भारतमाला परियोजना निकाली तब तो अध्यक्ष महोदय वो विकास के काम आएगी, लेकिन उसमें सभापति जी एक समस्या, सभापति जी भारतमाला की बात करते घंटी मत मारो आप। मैं आपसे निवेदन करता हूं, भारतमाला जो है वो भारतमाला हमारे लिए एक आफत ये हो गई सभापति जी, किसान को बहला के जो भूमाफिया थे उन्होंने डीएलसी का रेट बढ़ने दे दिया। डीएलसी मीन्स डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी, और विधानसभा के अंदर 1 मिनट लगेगा सर, 1 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा इसमें। डीएलसी का मतलब हो गया डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी, और विधानसभा के अंदर गहलोत सरकार ने उसकी डीएलसी घटा दी। यहां से नितिन गडकरी जी ने भी गहलोत सरकार से कहा था कि आप जो पैसा किसान को भारतमाला परियोजना के तहत देना है वो आप लिख के भिजवाइए, हम पैसा देने को तैयार है, लेकिन वहां की सरकार वो पैसा नहीं दे रही है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि उस डीएलसी के लिए कुछ ना कुछ किया जाए, क्योंकि किसान बर्बाद हो रहा है। 8 लाख की जमीन मंत्री महोदय 25,000 रुपए उसको डीएलसी मिल रही है, ये किसान के लिए सरासर अन्याय। अगर आप चाहें तो उसको निकाल के देख सकते हैं, किसान एकदम बर्बादी की ओर जा रहा है। और उसके साथ में मंत्री जी पास में 10-10 मीटर की जमीन आपने ले रखी है, मैं उसमें आपसे सिर्फ एक सर्विस रोड मांग रहा हूं जिससे ट्रैक्टर चल सके। क्योंकि हाँ कंक्लूड ही कर रहा हूं सर, इससे आगे कोई पन्ना नहीं है। समाप्त हिंदी में समाप्त वही कर रहा हूं सर। मैं आपसे यही निवेदन करूंगा मंत्री जी कि पास में 10 मीटर की जो आपकी लैंड पड़ी हुई है वो किसी काम की नहीं है। अगर उस लैंड में किसान का ट्रैक्टर लेके वो अपने खेत में जाएगा तो दूसरे किसान से झगड़ा नहीं होगा और वो किसान अपने जमीन की बुआई कर सकेगा, और अन्नदाता जो हमें अन्न देता है वो अन्नदाता भी सुखी हो जाएगा। ये जरूर मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा। इसी के साथ में आपने सभापति महोदय बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ऑनरेबल मेंबर श्री रविंद्रनाथ। Sir, thank you for the opportunity, sir. Sir, let me first of all acknowledge the fact that we have an immensely future-savvy Minister of Road Transport who embraces innovative, at the same time, sustainable mode of infrastructure development aligned with the vision of our Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji. We must appreciate our Minister Sri Gadkari ji's innovative conception or fast transforming the Ministry of Road Transport and Highways as the leading engine of growth. Sir, having recognized the significance of this sector in nation building, our Honorable Prime Minister Sri Modi ji's envisioned that PM Gati Shakti Master Plan to bring about synergy between infrastructure and logistics across the length and breadth of India. Sir, through the PM Gati Shakti Master Plan, our national highways network will be an expansion of by 25,000 kilometers in 2022-23.
with an outlay of 20,000 crores. Similarly, the Bharatmala project, with a project outlay of 5.35 lakh crore, was launched by our government, aimed at bringing smoother connectivity across the nation with improved roads and net and infrastructure. It is quite encouraging to see 1,34,015 crore allocation towards Nahai, which also includes the Bharatmala Pariyojana and is the highest ever allocation, standing at 67% among the major heads. I am hopeful that states like Tamil Nadu, with a strong industrial and agricultural base, will receive its due share in the allocation. Sir, I wish to request the southern districts of Tamil Nadu may be paid more attention while sanctioning projects, as it will help in the economic advancement of this region. Sir, in my Theni parliamentary constituency, the pre-construction work of the 4-lane section of NH 85 between Uslambati to Bodinayagnur is pending approval of the Land Acquisition Committee. I wish to request Honourable Minister to kindly intervene to ensure the speedy sanction on and clearance for this project. As an extension of the above NH 85 project, I request the government to sanction a fresh DPR for the 25-kilometer greenfield project connecting this NH 85 from Uslambati to NH 7 in Madurai, which passes through the new AIM sanction in Madurai, so that the entire project get upgraded as a utility corridor. Similarly, sir, there is a NH 183 from Dindigul to Kumali passing through my Theni constituency, which is operating a 2-lane highways. However, over the years, the traffic along with NH has increased manifold with over 20,000 PCU, passenger car unit, per day, sir. With increased traffic, major accidents along this line has become routine. 10 black spots have been reported along this road. Sir, it is my humble request that Honourable Minister may kindly sanction a new greenfield 4-lane project connecting Dindigul to Kumali through Theni district. Sir, with this region being located along active tourist circuit and with the famous pilgrim sites of Palani and Sabarimala critically dependent on this inadequate roadway for 2 minutes, and connectivity between Kerala and Tamil Nadu. A new 4-lane will significantly help in providing the much needed logistic connectivity alongside economic development of the region. And I also wish to mention here that several projects have been stalled or delayed indefinitely. In my Theni parliamentary constituency itself, Sakulathmettu road project remains a dream for more than 4 decades, pending approval of Forest Department. Sir, I am of the opinion that development should be sustainable and should not be at the cost of destroying our environment. However, our Honourable Prime Minister Sri Narendra Modiji's envisaged more innovative techniques should be smartly integrated to balance infrastructural landscape with environmental protection. I wish to congratulate our Honourable Minister of Road Transport and Highways, Sri Gadkariji, 1 minute, that are the innovative novel elevated National Highway 44 passing through the Pench Tiger Reserve in Madhya Pradesh. Sir, important, sir, if needed. Please conclude. Benefiting not only humans in the region, but also helping to protect animals thriving through the NH44. On the similar lines, I wish to request sanctioning DPR for the National Highway Connectivity NH 183 in Tamil Nadu and NH 185 in Kerala, benefiting both people as well as the wild animals in this region. Sir, I wish to suggest that much higher share may be allocated to heads like maintenance and road safety that would increase the lifespan of roads as well as the motorists. Similarly, contemporary technologies, including artificial intelligence, may be incorporated to improve the efficiency of the existing transportation infrastructure through real-time traffic flow management. With this, I wish to conclude by extending my support
for the demand for grants for the Ministry of Road Transport and National Highways for the period 22-23. Thank you very much. Honourable Member Srimati Pratibha Singh ji. Thank you, sir, for giving me the opportunity to talk on National Highway. I represent the state of Himachal Pradesh and come from a constituency where this work is going on. But I would like to highlight certain points which I feel during my tour the people told me their grievances, and whatever has to be done, it has to be brought to the notice of Government of India. And the state of Himachal Pradesh is renowned for its natural beauty, and roads are very vital infrastructure for rapid economic growth of the state. The development of important sectors of economy such as agriculture, horticulture, industry and forestry depends on efficient road network. In the absence of any other suitable viable economic modes of transportation like railways, airways, waterways, roads play a vital role in boosting the economy of the hill states like Himachal Pradesh. Thus, it is vital for economic development of the state. Easily availability, adaptability to individual needs and the cost saving are some of the factors which go in favor of road transport. Road transport also acts as a feeder service to railways, shipping and air traffic. The NHAI has embarked on developing the following roads under 4-lane projects in Himachal Pradesh, in which the work is in progress. Parwanu, Solan, Shimla, Dhali, National Highway 22, National Highway 05, and Swarghat, Mandi, Manali, National Highway 21. The major benefits for 4-laning, broadening the national ways are, it reduces the length of the road, it reduces constant travelling time, and it will create access to better healthcare facilities for the people. It will reduce the number of road accidents and ensure free flow of traffic. It shall economize the fuel consumption and wear and tear by 50%, thus increasing efficiency. It will substantially use environmental pollution. Speaker, sir, through you, I would like to bring to notice of the government that I would like to raise some of the very important issues pertaining to the outgoing 4-laning work on national highways in Himachal Pradesh in this August House. The pace of the ongoing 4-laning work is much slow, and with much pace it will be extremely difficult to complete such economically and strategically important projects on time. During recent visit of my parliamentary constituency, local people have raised many grievances and demands with respect on the ongoing 4-lane work, which I would like to present through you in this August House. The major grievances and demands raised by them are hereby summarized as: the ongoing 4-lane work has led to change in the orientation of national highway in many parts of the stretch. Therefore, the local roads have been completely delineated from the national highways, due to which the general public are suffering a lot, as the work is being delayed, and I suggest that it should be timely done. The old age accessibility has been hampered, besides massive soil erosion in view of the vertical cutting of the hillsides, dumping of debris down the hill and felling of thousands of trees has caused irreparable damage. It has created unnecessary problem of water logging, blockades and traffic jams to general public. Therefore, it is requested through you, sir, that some concrete way out should be formulated by developing road services to connect the village local roads to newly 4-laned national highway to provide hassle-free accessibility to local population and villages in public interest. Sir, about the compensation also, I would like to state in the House that the
Other major issues in the compensation provided in lieu of land acquisition to the affected parties. Roads undoubtedly are the lifeline of the hills, but the four-laning projects across the state has brought misery to thousands of people who were uprooted and lost their livelihood. Only the circle rate has been taken into consideration and not only the market rate. Other factors like market value, commercial viability, productivity have not been taken into account while working out the compensation. Another important factor, sir, is tourism. I would like to state that the tourism industry is the backbone of Himachal Pradesh. The tourism sector of Himachal Pradesh contributes 7% of the state GDP. Domestic tourist inflow in the state reached 16.83 million in 2019, when foreign tourist arrival reached to 3,83,000. As of December 2019, there were 3,679 registered hotels in the state. A significant rise was noticed in the domestic as well as foreign tourist inflow during last few years, but there is a sharp decrease of 81% in the tourist arrival up to December 2020. Roads remain the main mode of transport in Himachal Pradesh. As you know, there is no air connectivity or rail line as such, so our people depend on the roads, so this should be given priority. The geography of Himachal Pradesh presents considerable challenge to the development of transport infrastructure. Nevertheless, the state has made significant progress in road connectivity in the last few decades, thanks to our Congress governments. But the frequent log jams, blockades due to cutting off extravagant excavation works due to four-laning work on national highways has impacted badly in the tourism industry. Reckless cutting of hills for four-lane project has become a bane of the tourism industry in Himachal Pradesh. Frequent landslides on national highways resulting in traffic blockage and even accidents were making tourists wary of visiting the state. Roads are full of potholes. There has been reports of the key Parwanu, Shimla, Kiritpur, Manali highways being hit by landslides, spelling doom to the tourism industry. Reports of landslides and disruption of traffic on key highways are logging the headlines in newspaper and electronic media. As a result, the tourists have been forced to cancel their bookings. The occupancy in hotels, which was about 60 to 70% before the four-lane work started, has come down to 10 to 20%. Stakeholders are not taken into confidence before planning and execution of the four-lane projects. Alternative routes are not carved out while existing routes are not maintained properly, discouraging the tourists from visiting the state. Hotel occupancy as a result went down badly, and the bad road condition and landslides had the worst impact on the adventure tourism in tribal areas and higher hills, as traveling were turned as a nightmare. Further, demolition of illegal constructions by administration also earned a bad name for the tourist industry. Fearing inconvenience, tourists were apprehensive of visiting Simla, Manali, Dharamshala and other parts of Himachal Pradesh. Economy and loss of livelihood. There has been substantial loss of livelihood considering the immense tourism potential in the state, especially Mandi, Kullu, Manali and Simla areas. The land along the roadside has highly commercial values for hotels, restaurants and eco-resorts, many of which has been wiped off to make the way for the project. Tenants between Sundarnagar and Manali, which falls in my constituency, who fall in the category of livelihood losers.
have not been taken into account and identified. Such people have not just been uprooted or displaced, but even have lost their livelihood. The muck and debris management and the environment hazards is also a very important issue, sir. I should bring it to the notice of this August House. There has been intense environmental violations in the outgoing four-laning project of national highways. The dumping of debris is being done in an unscientific manner, with the results that loose debris has made its way into water bodies. While constructing the roads, it is necessary that it cannot be at the cost of environment. The principle of substantial development cannot be avoided. At the end, I would like to draw your attention to some important issues in my parliamentary constituency, in specific pertaining to the national highways of Himachal Pradesh for consideration and urgent action by the Ministry of Road Transport and Highways. One point is, sir, that Bhuntar Bridge at Kullu is required to be constructed urgently to ensure all-weather connectivity to the international tourist destination Manali. The state government has already sent an estimate to the ministry for obtaining necessary sanction, which may please be expedited. Another bridge over Tirthan River at Daman at Sanj, Luri, Ani, Jalori, Banjar Out Road is required to be constructed urgently to ensure all-weather connectivity and smooth flow of traffic, because this area comes and there is heavy snowfall in this area. So by making this tunnel, it will be a good connectivity to those areas. In the end, sir, I would like to say that traffic on Sanj, Luri, Ani, Jalori, Banjar Out Road remains suspended for months during the winter season due to heavy snowfall on Jalori Pass, situated at an altitude of around 2,500 meters. The proposal of providing year-round connectivity by constructing a tunnel under the Jalori Pass has been moving at a snail's pace. Matters needed to be prioritized by the ministry for early construction of the tunnel. Chandigarh-Manali Mandi Road has strategic economic, but I'm just ending it, sir, economic for the state, as it connects the world-famous tourist destination of Kullu and Manali with the national capital. Four-laning of this road is underway, but the existing road is badly damaged, causing lot of inconvenience and discomfort to the road users. The National Highway needs to prioritize its maintenance or war footing for the benefit of public at large. Adequate measures to be taken to grant compensation for land acquisition as per prevailing market rates. 2 times is equal to circle rate into 2, 4 times circle rate into 4. This is factor 1 and factor 2. Just I'm ending it, sir. The government may be directed to increase the pace of work so that the project is completed well in time, within the time limit, and the directions may be given to for the proper maintenance and regular repairing of the roads to facilitate commuters. There could be proper debris muck management so that to preserve the environment and ecology. Way-wide amenities should be developed along the roads to facilitate commuters and tourists and to provide livelihood to generate employment to the local people. Thank you. Provision of service road to connect the old road, village road in the national highway may be done. This should be intense monitoring on ongoing 4-line lane. Adequate measures and relief should be provided to these households who have been affected during land acquisition and 4-laning, but their land did not come in the right way. So these are some of the major issues, sir. I would like that the government takes notice, and it should be done at a faster pace so that the work is completed. I think Honourable Minister is noted everything. Thank you, sir. Thank you. Honourable Member Sri A. Marif. Thank you, Speaker, sir. I stand here
on behalf of CPIM on demands of grants of the Ministry of Road Transport and National Highways. Sir, I take this opportunity to acknowledge the interest shown by the Honourable Minister Nitin Gadkari ji for the development of national highways in state of Kerala in a time-bound manner. Unfortunately, he is not present here. Sir, road transport is vital for the development of the country and has an important role in our economic growth and the employment generation. However, unfortunately, this government is adopting a policy of reducing its share drastically and excessively, relying on the private sector for the development of roads in all projects are implemented in built on operate and transfer BOOT mode. Sir, by doing this, the entire burden is passed on to the travellers in the form of tolls to be paid for using these roads. And what is the end result of this, sir? Result is that the private companies are looting the people for years and years, and there is no transparency in the amount collected as tolls. Sir, as per agreement made by the NHI with the private players after the construction cost is recovered, the toll rates are to be reduced to 40%. But what is happening in the reality, sir? Every now and then the rates are hiked, and the whims and fancies of the companies and NHI and central government remaining mute spectators. Sir, I challenge the government to come up with a white paper on the toll collected so far as part of various projects in the country and bring the facts before the people. Once the toll booth is constructed, and it will never shut, the collection of toll will continue to the end of the world. For example, sir, the toll booths constructed in Marid near Ernakulam is established three or four decades before, but the toll collection is continuing till this date. The amount collected more than the 10,000 times multiple than the amount for bid construction. I request to check it. Due to the time constraints, I am not going to the quality of the roads, which has already mentioned by the Dr. Vishnu ji and others. I would like to know what is the mechanism prevailing in the checking the quality of roads and constructed by the NHIs. Sir, I would like to request some changes about the PMJ's road stipulations. PMJ's road to be modified as the basis of density of population and the land availability of the states. I request you to relax the strict stipulation of PMJ's roads in Kerala concerned. I request you to relax the width of the roads to 4-meter width and a length of 1 kilometer Kerala is concerned due to the density of populations. And the allotted amount for the road safety is very low and it should be increased, enhanced. Sir, I'm proud to say, government in Kerala has taken a bold decision not to collect tolls for bridges built using state government's fund way back in 2019, and toll collection for about 29 bridges were stopped. Sir, so I urge the union government to stop collecting the tolls for at least small projects so that people are not overburdened. So domestic uses, definitely domestic uses. Sir, coming to the road development in Kerala, the ruling LDF government is making all efforts to develop both coastal highway and hill highway by its own using the funds available through Kerala Infrastructure Investment Fund Board. But not only that, the central government is ready to financially assist the Kerala government for these highways, but it is finding fault with the funds raised under the KIFBI. With the support of central government, the state government would be able to bring the more development, and hence I urge the government, the Honourable Minister, to devote more funds for the state government's projects. Sir, regarding the widening of National Highway 66 passing through Kerala, a number of problems with the currently approved designs have been already brought to the notice of the Honourable Minister. Sir, one of the major demands is related to the construction of great separator in Karunagapalli town in Kollam district in my parliament constituency. Sir, Karunagapalli is a major trade center in southern Kerala, with shops and trade centers spread in both sides of the national highway for more than a kilometer. And it is near to the very famous Amardanandamai Mutt. Sir, hospitals, schools, government offices also were spread in both sides of the roads.
Sir, the proposed construction of a grade separator will literally divide the town, making the difficult to the traveling of people from one side to another, badly affecting the prospects of the future development of the town. With the construction of the first bowstring arch type bridge in Valiyazhikal is near the Karnagapalli. So, hence, I demand for the Honorable Minister urgently intervene for changing the approved design for grade separator and instead consider the construction of an elevated highway in the form of open flyover in Karnagapalli. Sir, another important stretch is the Arur-Thoravur part of the NH66. One second. Please. Where no concrete decision has been taken regarding the design. I request the government you to put the design in NHI's website for the people acknowledgement for as early as possible. There is an urgent need to complete the NHI highway widening Kerala in war-footing manner so the movement of vehicles would become easy. Thank you, sir. Thank you. Honorable Doni Sali. Thank you very much, Chairperson, sir. Allowing me to speak on the demand and grants on Ministry of Surface Transport and Highways. Sir, ये एक ऐसा मंत्रालय है कि वाकई जिसने देश में बहुत काम किया है और मैं अपनी तरफ से व्यक्तिगत तौर पर भी इस डिपार्टमेंट के मिनिस्टर्स को कॉम्प्लीमेंट देना चाहूंगा कि बहुत अच्छा काम इस मंत्रालय ने पिछले कई वर्षों में लगातार किया है और जब भी सांसदों की कोई समस्या होती है तो इस मंत्रालय के मिनिस्टर जो हैं नितिन गडकरी साहब, वो आज हाउस में नहीं है, वो हमेशा सीरियसली टेकअप करते हैं सर। और सरकार का भी मैं समझता हूं कि ये एक प्रायोरिटी वाला मंत्रालय है। जो एलोकेशन इस साल हुआ तकरीबन 68,000 करोड़ रुपए का, जो कि ऑलमोस्ट 52% ज्यादा है पिछले साल के एलोकेशन से इस मंत्रालय को। लेकिन उसके साथ साथ जो मैं देख रहा था डॉक्यूमेंट्स, चिंता का विषय भी आता है कि एनएचएआई तकरीबन 3,38,000 करोड़ रुपए के कर्जे में है। वो आने वाले वक्त में कैसे उससे निकला जाए, यह भी एक बड़ा चिंता का विषय है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि नेशनल हाईवेज तो बन रहे हैं, लेकिन राज्यों के अंदर स्टेट हाईवेज की स्थिति बड़ी खराब है। और आपके डिपार्टमेंट का जो एलोकेशन है, जो भारत वाला परियोजना के तहत जो स्टेट पीडब्ल्यूडीज जिस पर काम करती हैं, वो एलोकेशन बहुत ना की बराबर है। आपके डिपार्टमेंट ने खुद उसकी जो सीमा तय करी, उससे मैं समझता हूं 10% भी आपने एलोकेशन नहीं किया। केवल शायद 200 करोड़ रुपए, अगर मेरा आंकड़ा सही है तो किया है, जो कि होना चाहिए कम से कम 5 से 6 हजार करोड़ रुपए का एलोकेशन होना चाहिए था। 3 गुना बजट इस मंत्रालय का 2016-17 के बाद एलोकेशन बढ़ा है, लेकिन जो सड़क बनाने की, हाईवे बनाने की जो रफ्तार है, वो उस रफ्तार से नहीं बढ़ी है। पैसा एलोकेशन 3 गुना हुआ है, लेकिन जो हाईवे बनाने की रफ्तार है उसमें काफी डिस्पैरिटी है। केवल 63% ही हम 2016-17 से और अब का अगर मिलान करें तो वो होता है। माननीय सभापति महोदय, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन दिक्कत यह है कि वहां पर जितने अधिकारी जाते हैं वो ज्यादातर डेपुटेशन पे जाते हैं। और हमने देखा पिछले दिनों
काफी समय तक एनएचएआई के चेयरमैन की पोस्ट खाली रही है। काफी लंबे समय से आज भी कई इंपॉर्टेंट पोस्ट जो हैं, वहां मेंबर्स की पोस्ट जो हैं वो खाली हैं। मेरी आपके माध्यम से सरकार से यह अपील है, माननीय मंत्री जी से, जनरल वीके सिंह साहब यहां बैठे हैं, कि आप रिक्रूटमेंट जो करें एनएचएआई में, वो डायरेक्ट अगर रिक्रूटमेंट हो, जनरल मैनेजर के लेवल पर रिक्रूटमेंट बहुत कम हो रहा है अगर हो, और जो डायरेक्ट अगर अफसरों का रिक्रूटमेंट होगा तो उनकी लॉयल्टी अपने डिपार्टमेंट के लिए ज्यादा होती है, बजाय इसके कि कोई किराएदार किसी घर में जाए, उसको मालूम है 11 महीने बाद या तो दोबारा रिन्यूअल एग्रीमेंट होना या मुझे 3 साल रहना और उसके बाद निकल जाना है। मैं तो सर देसी आदमी हूं, देसी भाषा का प्रयोग करता हूं, इसलिए अगर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा तो उसकी लॉयल्टी जाहिर सी बात है कि ज्यादा होगी। एक जो सभापति महोदय, एक जो संज्ञान में बात आई मेंटेनेंस की, सड़क बनाना आसान है, हाईवे बनाना आसान है, लेकिन उसका मेंटेनेंस और जिस जनता के लिए आप बना रहे हैं, खासतौर से उस इलाके की जनता जहां पर जो सर्विस रोड्स बनती हैं, उनकी स्थिति बहुत दयनीय, बहुत खराब है। और मुझे ताज्जुब हुआ रिपोर्ट देख करके, डॉक्यूमेंट्स देख करके, कि जो मेंटेनेंस का एलोकेशन था उसका 18, 19 और 19-20 में उसका सिर्फ 60% उपयोग हुआ। मतलब आप हजारों करोड़ रुपए बड़ा हाईवे बनाना है तो आप इस्तेमाल करेंगे, बड़ा काम लेने के लिए बड़े कंपनीज आ जाएंगी, लेकिन छोटा मोटा काम करने के लिए, मेंटेनेंस के लिए आपके पास या तो लोग आ नहीं रहे काम करने के लिए, या आप करना नहीं चाहते। सभापति महोदय, जैसा कि मैंने पहले कहा कि जैसे इस साल का टारगेट आपका 12,000 किलोमीटर का था हाईवेज बनाने का, लेकिन इस महीने की 10 तारीख तक वो आंकड़ा सिर्फ 8,278 किलोमीटर है। तो आप कहीं ना कहीं फंड्स आपको मिल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी बीच में है। और मैं समझता हूं वो एक ये भी है कि पिछले दिनों एनएचएआई में जो इंपॉर्टेंट पोस्ट थी वो खाली रही थी, जबकि पिछले वर्ष का अच्छा आंकड़ा था। मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए सभापति महोदय, मैं अपनी क्षेत्र की कुछ समस्याओं से अवगत कराना चाहता हूं। मेरठ गढ़ बाईपास बन रहा है, नेशनल हाईवे 709A। सर मैं 2 मिनट लूंगा अपनी बात खत्म करने में। वहां पर हम क्या देखते हैं कि मैंने पहले भी कहा कि हम योजनाएं बनाते हैं, लेकिन योजनाओं में डीपीआर बनाते वक्त अगर जनप्रतिनिधियों से सुझाव मांगे जाएं तो शायद बहुत आसानी से लंबी योजनाएं इंप्लीमेंट होंगी। लेकिन हम क्या होता है कि जब हाईवे बन जाता है या बनने लगता है तब एमपी एमएलए को पता चलता है। अब मेरे यहां मैं गया था पिछले हफ्ते इसी हाईवे पे, ये जो नया बाईपास बनना है सर, ये 3 राज्यों को जोड़ता है और मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के 30 गांव इससे प्रभावित हैं। मथुरा से हस्तिनापुर जाने वाले तीर्थयात्री सब इस रास्ते को लेते हैं जो कुचेसर चौपला से होकर के जो है शाहपुर और किठौड़ मार्ग को जोड़ता है। लेकिन आबादी के बिल्कुल मिला हुआ ये नया बाईपास बन रहा है। मैं गया विजिट पे, मैं चाहूंगा मंत्री जी आप भी जाइए। मतलब आबादी है और आबादी से लगा हुआ बिल्कुल हाईवे आप बना रहे, जबकि जंगल खाली पड़ा है। उसको जब डीपीआर बनना था थोड़ा और आगे लिया जा सकता था। मेरी आपके माध्यम से डिमांड है, जो वहां के लोगों की डिमांड है, कि इस हाईवे ये जो रास्ता है कुचेसर चौपला से श्यामपुर किठौड़ मार्ग, जो कि 30-35 गांवों से जुड़ा हुआ, वहां पर उतरने और चढ़ने के लिए जो है कट नहीं दिया है। मैं आपको पत्र भी सौंपूंगा, वहां पर कट मिलना चाहिए, वरना लोग फिर किठौड़ में कस्बे में निकल के जाएंगे, उनको कोई फायदा इससे नहीं होगा। जमीन उन गांव के लोगों की जा रही है, लेकिन फायदा उनको नहीं होगा, खाली दूर से आने वाले लोग ऊपर से चले जाएंगे। मैं प्लीज बस 1 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। एक मैटर और है, जैसे हम लोग हाईवे सेकंड प्लीज सर 1 मिनट में हाईवे बनाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन क्या है कि हमारे जो फास्टैग्स हैं, मैं कल भी गया, कल मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी गया और आया हूं, पता नहीं क्या है। माननीय मंत्री जी ने पिछले साल 18 मार्च को मेरे एक सवाल के जवाब में यहां ऐलान किया था कि अगले
एक साल के अंदर सारे टोल प्लाजा खत्म कर दिए जाएंगे, बल्कि जनता ने सोचा शायद फ्री होने वाला है, लेकिन ये था कि जीपीएस गाड़ियों में लगाएंगे और कहीं कोई टोल प्लाजा नहीं होंगे। लेकिन फास्टैग काम नहीं करते। आप जो टोल के जो चलाते हैं उनको आप कहिए कि वो मशीन जो है ऐसी लेटेस्ट लाएं कि कम से कम फ्री एक्सेस हो। और गजरौला के अंदर एक जो हाईवे बन रहा है, ये यहाँ पर कुछ लोग डिमांड कर रहे हैं। खैर, मतलब एक ये और देखिए कि कई बार क्या होता है, प्रेशर में आके जनप्रतिनिधियों के हम लोग ऐसी जगह कट दे देते हैं जहां पर एक्सीडेंट होने के बहुत चांसेस होते हैं। ऐसे किसी दबाव में नहीं आना चाहिए, क्योंकि जो ब्लैक स्पॉट्स हैं उन पर किसी भी कीमत पर किसी एक की भी जान जाती है तो हम लोग उसके लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। प्लीज 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 मिस्टर यादव कंटिन्यू। माननीय सभापति महोदय, आज सड़क परिवहन और राज्य मंत्रालय के वित्तीय वर्ष 2022-23 के केंद्रीय बजट अनुमान मांगों के समर्थन में अपनी बात रखने के लिए खड़ा हूं और इस पर आपने मुझे अवसर दिया, उसके लिए विशेष तौर पर आभार व्यक्त करता हूं। महोदय, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय नितिन गडकरी जी, माननीय जनरल बीके सिंह के प्रति बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जो निश्चित तौर पे कम समय में बहुत बड़ा काम किया है और देश की एक नया स्वरूप और नया तस्वीर बनाने का काम किया है अपने कामों के माध्यम से। मैं इतिहास के पन्नों में ले जाना चाहता हूं आपके माध्यम से सदन का। महोदय, वर्ष 1950-51 में भारत में 19,800 किलोमीटर राष्ट्रीय मार्ग थे और वर्ष 2020-2014 में बढ़ करके 92,000 किलोमीटर हुआ और महोदय 2021 में ये बढ़ करके 1,41,000 किलोमीटर अधिक हो गया। महोदय, सरकार की प्रतिबद्धता देखिए और काम करने की क्षमता देखिए। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का और नितिन गडकरी साहब, बीके सिंह का विजन देखने का काम कीजिए। यानी महोदय 63 साल में 73,000 किलोमीटर राजमार्ग का निर्माण हुआ, वहीं माननीय मोदी जी की सरकार में 8 सालों में 50,000 किलोमीटर का निर्माण हुआ और मैं समझता हूं कि एक अपने आप में इतिहास बनाने का काम किया है। महोदय, यूपीए के 10 साल के सरकार, माननीय कांग्रेस पार्टी के बहुत माननीय सदस्य बता रहे थे। महोदय, मैं कुछ आंकड़ा देना चाहता हूं। यूपीए के 10 साल के शासनकाल में 1,54,000 किलोमीटर 1,54,000 करोड़ की राशि से कुल 50,000 किलोमीटर एनएच का निर्माण हुआ। वहीं हमारी एनडीए की सरकार में 2022-23 में यानी केवल एक साल में 25,000 किलोमीटर एनएच का निर्माण हुआ, जिस पर 1,99,000 करोड़ बजटीय प्रावधान रखने का काम किया जा रहा है। ये बजटीय पिछले साल के मुकाबले 52% अधिक है। महोदय, एक विजन देखिए सरकार की और प्रतिबद्धता देखिए। जहां 2014-15 में प्रतिदिन 12 किलोमीटर एनएच का निर्माण हो रहा था, वो बढ़ करके 20-21 में लगभग 36.5 किलोमीटर प्रतिदिन एनएच का निर्माण हो रहा है। एक गति भी देखने का काम कीजिए। महोदय, इन आंकड़ों के माध्यम से देश की सरकारों का न तो मैं कोई आलोचना करना चाहता हूं जो पूर्ववर्ती सरकार है, न अपनी सरकार का बहुत प्रशंसा करना चाहता हूं, क्योंकि हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को राजनीति से दूर रखना चाहिए और देश का इंफ्रास्ट्रक्चर किसी दल के विचारधारा नहीं बल्कि देश के विकास का मार्ग होता है। ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की सोच है। महोदय, आजादी के अमृत महोत्सव के अमृत काल में लाल किला के प्राचीर से माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देश में 100 लाख करोड़ की पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान की घोषणा करते हुए कहा था कि अमृत काल के इस दशक में पीएम गति शक्ति भारत के
भारत का कायाकल्प करने का काम करेगा और इस पर काम भी चालू हो गया है। भारत में अत्याधुनिक विश्व स्तरीय हॉलिस्टिक और इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए आजाद भारत में पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने नेशनल मास्टर प्लान बनाया है और इस देश में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी का विकास होगा। देश में गांव तक आर्थिक गतिविधियां तेज होगी और रोजगार के भरपूर अवसर भी पैदा होगा। पीएम गति शक्ति को बढ़ावा देने के लिए 7 कारक को चुना है। सड़क मार्ग, रेल मार्ग, हवाई मार्ग, विमानपत्तन, माल परिवहन, जल मार्ग और लॉजिस्टिक संरचना का निर्माण करने का निर्णय लिया है। महोदय, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और अन्य संस्थानों ने एस्टिमेटेड किया है कि भारत सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर अगर 1 रुपया खर्च करती है तो इसका मल्टीप्लायर इम्पैक्ट यह होता है कि देश के जीडीपी में 2.5 से 3.5 रुपए की वृद्धि होती है। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट से लॉजिस्टिक कॉस्ट घटेगा। भारत में लॉजिस्टिक कॉस्ट 13 से 14% अभी है महोदय, इसको 8% तक लाने का सरकार प्रयास कर रही है। इससे वैश्विक बाजार में भारत का माल सस्ता होगा और निर्यात बढ़ेगा। भारत की अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर और $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में पीएम गति शक्ति का महत्वपूर्ण रोल निभाने का काम करेगा। आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी ने महोदय, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से समाज के भलाई के लिए सामाजिक न्याय जरूरी है, उसी अवधारणा के तहत उसी तरह से देश को संतुलित के लिए विकास जरूरी है। महोदय, पीएम गति शक्ति के लास्ट माइल कनेक्टिविटी टू लास्ट पर्सन डेवलपमेंट एंड लैंड्स टू पोर्ट टू लैंड के लिए विश्व स्तरीय और आधुनिक मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा। स्टार्टअप का एक इकोसिस्टम गांव से लेकर पोर्ट तक विकसित होगा और इस अवसर पर मैं युग पुरुष माननीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी नमन करना चाहता हूं, जो नया भारत के निर्माण के लिए आजादी के बाद पहली बार स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत 4 लेन सड़क और ग्रामीण भारत के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की शुरुआत की थी और उसी का नींव का परिणाम है क्या सड़कों को दियारा में सड़कों को लंबाई के मामले में विश्व स्तरीय जो आकलन किया गया है उसमें अमेरिका के बाद दूसरा स्थान भारत का होता है। महोदय, गति शक्ति के तहत डोंट वांट एनीथिंग फॉर योर कॉन्स्टिट्यूएंसी? माई यू वांट डू यू वांट एनीथिंग फॉर योर कॉन्स्टिट्यूएंसी? या प्लीज पीएम महोदय, गति शक्ति के तहत पर्वतमाला, सागरमाला, भारतमाला, हाईवेज, वाटरवेज, रोपवेज, रेलवेवेज, इकोनॉमिक कॉरिडोर और डिफेंस कॉरिडोर को तेजी से निर्माण से देश के सभी राज्यों का विकास हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि इस पॉलिसी के तहत बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में तेजी से सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है महोदय। और पर्यटन के दृष्टिकोण से उत्तराखंड, कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश अन्य बॉर्डर इलाकों में भी तेजी से काम हो रहा है। राम जानकी मार्ग, अयोध्या मार्ग, बुद्धा सर्किट मार्ग निर्माण से धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है। मैं तो अनुरोध करूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी का, यहाँ बैठे हुए माननीय मंत्री जी का मैं अनुरोध करूंगा और मांग भी करता हूं कि सभी 12 ज्योतिर्लिंग को 4 लाइन से जो नहीं जुड़े हुए उनको जोड़ने का काम कीजिए और महादेव सर्किट निर्माण को भी कराने का काम कीजिए। अतः मैं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, अपने मंत्री जी का और सभी सांसदों के मैं ये साधुवाद देना चाहता हूं कि वो हमेशा सांसदों कहते हैं, चाहे वो किसी पार्टी का हो, इस पार्टी का हो या उस पार्टी का हो, या आप स्वयं ही कभी निराश नहीं होंगे। प्रोजेक्ट लाओ, 80% जमीन क्लियरेंस लाओ, सैंक्शन ले जाओ, पैसे की कोई कमी नहीं है। महोदय, इस चर्चा के माध्यम से मैं अपने संसदीय क्षेत्र जो आप बोल रहे थे उस पर पॉइंट पर रहा हूं।
कुछ मुद्दों को उठाना चाहता हूं। माननीय महोदय, हमारे क्षेत्र में that is why I allotted for your constituency. Now you are coming after time. Please conclude. Okay, just I'm concluding. रामनगर कन्हौली पटना रिंग रोड, नंबर 1 रामनगर कन्हौली पटना रिंग रोड 6 लेन परियोजना में मनेर हमारे संसदीय क्षेत्र का एक बहुत इंपॉर्टेंट भाग है, विधानसभा है। शेरपुर में गंगा नदी का पुल का निर्माण होना है, जो नीतिगत फैसला ले लिया गया है। उस पुल से दानापुर जो दियारा का इलाका है, बहुत गरीब लोग रहते हैं, करीब 75 से 70 हजार की आबादी है। दियारा में दोनों तरफ रैम्प देने का अनुरोध माननीय मंत्री जी को मैंने आग्रह किया है। मैं पुनः आग्रह करता हूं कि उस पर आगे की कार्रवाई किया जाए। नंबर 2, राष्ट्रीय मार्ग 30 के अनीसाबाद से 0 माइल के बीच रामकृष्णा नगर, खेमनीचक और जगनपुरा में फ्लाईओवर का निर्माण कार्य कराने की कृपा की जाए, जिसकी स्वीकृति संभवतः आपने दे भी दिया है, मगर अभी तक काम नहीं हो पा रहा है। मेरा अनुरोध होगा कि उस काम पर भी ध्यान दिया जाए। 2-3 पॉइंट है सर, मैं अपने 1 मिनट में बात समाप्त करूंगा। Finish it within a minute. राष्ट्रीय राजमार्ग 30 से अनीसाबाद 0 माइल के बीच दोनों तरफ सर्विस लेन का निर्माण कराया जाए। राष्ट्रीय मार्ग 139 औरंगाबाद से पटना को 4 लेन में परिवर्तन किया जाए, जैसा कि माननीय पूर्व सदस्य सुशील सिंह जी ने भी कहा। रामनगर कन्हौली से 6 लेन राष्ट्रीय मार्ग में बेलदारी चक के पास कंसारी गांव के पास अंडरपास का निर्माण करवाया जाए, जो बहुत ही आवश्यक है। पटना बक्सर राष्ट्रीय राजमार्ग के लद अलाइनमेंट नथुपुर भुसौला को NS39 का पार्ट बनाकर 4 लेन सड़क का निर्माण, ताकि अनीसाबाद एम्स जो हॉस्पिटल है फुलवारी तक बाईपास सड़क का निर्माण हो सके, जिससे अनीसाबाद से फुलवारी एम्स तक लगने वाला जो महाजाम है उससे मुक्ति मिल सके। पटना डोभी NS30 से हनुमान के पास लास्ट पॉइंट से बस लास्ट NS30 के मसौड़ी पुनपुन सेक्शन का निर्माण कार्य जल्दी कराया जाए, जो काम प्रोग्रेस में है उसको थोड़ा जल्दी कराया जाए। और अंत में पटना गया डोभी NS83 के नौदौल में सर्विस लेन का निर्माण करवाया जाए। ये मेरे संसदीय क्षेत्र से जुड़ा हुआ मामला था, जिसका आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करवा रहा हूं। अंत में पुनः मैं इस बजट का समर्थन करते हुए, अनुदान मांग का समर्थन करते हुए और आपको विशेष धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत धन्यवाद सर। महोदय, थैंक यू। आपने मुझे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुदान मांगों पर चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय, आज पूरा देश देख रहा है, और कोई भी देश विश्व के अंदर वो विकसित विकासशील देश वही कहलाता है जहां सड़कों का जाल बिछा हो। आजादी के 70 साल बाद अभी भी कई गांव, कई इलाके ऐसे जो सड़कों से नहीं जुड़े। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भी आई, आपका केंद्र का पैसा भी अलग अलग योजनाओं में स्टेट के अंदर जाता है। लेकिन दुख इस बात का है कि लंबी चौड़ी बात करने के बाद भी आज भी आजाद भारत, जिसको आजादी की 75वीं वर्षगांठ हम मनाने को जा रहे हैं, आज भी कई ढाणियां, कई गांव ऐसे हैं जो सड़कों से दूर है। हम रेगिस्तान के इस मारवाड़ के उस इलाके से आते हैं जहां सड़क को बहुत अलग तरीके से देखा जाए। समझ में आज भी कई ढाणियां, कई गांव ऐसे हैं जहां अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जाए तो उनको ले जाने के लिए कोई साधनों की व्यवस्था नहीं होती और लोग रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। ये मेरी दिल्ली की सरकार से भी मांग रहेगी कि ये देश विकसित देश जब तक नहीं कहलाएगा, जब तक प्रत्येक गांव ढाणी देश की सड़कों से नहीं जुड़ेगी। एक हमारी एक बड़ी योजना है, वैसे सड़क मंत्रालय का मामला नहीं, वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की है कि गांवों को तो आपने जोड़ दिया, लेकिन ढाणियां अभी बाकी है। लेकिन चूंकि सड़क पे बात चल रही तो मैं ये भी मांग करूंगा कि उस योजना को भी जोड़ के देश की प्रत्येक ढाणी जहां आबादी 50 से 100 हो, उनको भी सड़क से जोड़ें। स्टेट को आप पैसा दें, कई स्टेट पैसा देने की स्थिति, दिल्ली उनकी मदद करें। समझ महोदय, अब की बार विगत वर्ष की तुलना में 68,000 करोड़ का बजट अधिक मिला, तो हम उम्मीद करेंगे कि मंत्री जी राजस्थान का विशेष ध्यान रखेंगे। मंत्री महोदय नितिन गडकरी जी और जनरल वीके सिंह साहब जो यहाँ विराजे हैं, नितिन गडकरी जी ने भी जो कोरोना काल के अंदर कई सड़कों का लोकार्पण किया देश के अंदर, वीसी के माध्यम से हम लोग उपस्थित हुए और उस समय कई घोषणाएं भी करी थी। दुर्भाग्य इस बात का है कि उनकी घोषणाओं को 2-2 साल हो गए समझ महोदय, लेकिन वो धरातल पर नहीं आई। क्या कारण है कि मंत्री जी ने जो घोषणाएं करी वो काम भी नहीं हो रहा है। वो घोषणाएं उन्होंने वीसी के माध्यम से दिल्ली से करी थी, हम लोग उसमें जुड़े थे, कुछ हमने डिमांड रखी थी,
लेकिन दुर्भाग्य इस बात का कि दिल्ली के मंत्री की घोषणा का धरातल पे नहीं आना इस ओर इंगित करता है कि कहीं मंत्री जी की कम तो नहीं चल रही देश के अंदर। आज मंत्री जी यहाँ पे नहीं, लोकसभा के अंदर हर कोई कह रहा है कि भाई मंत्री जी यहाँ क्यों नहीं है। हम एक मिनट, ये सुन रहे, बड़े वाले नहीं सुन रहे ना, वो भी सुन रहे हैं अपने चेंबर। तो यहाँ आना चाहिए ना, फिर मजा तो यहाँ आता जब यहाँ होता है। हम तो चाहते हैं शपथ महोदय और चूंकि मंत्री जी ने, सबने मंत्री जी की तारीफ करी, तो हो सकता है सरकार को तकलीफ हो जाए, मंत्री जी की तारीफ क्यों हो रही इतनी ज्यादा। अब सरकार तो सरकार के हिसाब से सोचती है, इसलिए हो सकता है कि जो घोषणाएं उन्होंने करी पूरी। मैं चाहूंगा कि मंत्री जी ने जो घोषणाएं लोकार्पण के समय और सांसदों को, चाहे वो विपक्ष के थे पक्ष के थे, सब सांसद, उनका बड़ा मन है, ये सही बात है। जो भी उनके पास जाता है वो उसका काम करने का प्रयास करते हैं, पॉजिटिव है। लेकिन खाली बातों से क्या होगा, हमें काम चाहिए। चुनाव आ जाएंगे, बातों से वोट थोड़ी मिलेंगे, वहां काम करना पड़ेगा। तो उससे, उद्घाटन से, बातों से काम नहीं होता। मैं यही कहना चाह रहा हूँ, काम कर दो। शपथ महोदय, मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा, जब राज्य मंत्री जी यहाँ बैठे हैं वो मेरी बात भावना वहां तक पहुंचाएंगे। तो विकास के आधारभूत ढांचा मजबूत करने के नाम पर सबसे अधिक जोर सड़कों के विकास पर दिया जाता है। सरकार तो अपने विकास की उपलब्धियों, सड़कें बनने की उपलब्धियां गिनाते नहीं थक रही, लेकिन इन सड़कों पर सुरक्षा उपायों को लेकर वैसी गंभीरता नहीं दिखाई देती जैसी दिखाई जानी चाहिए। यही वजह कि राजमार्गों पर सबसे अधिक जानलेवा दुर्घटनाएं होती देखी जाती है। हाल ही में एक जो साल था, करीब 3 महीने लॉकडाउन के होने के बाद भी केवल 2020 में ही सड़क हादसों में 47,984 लोगों ने अपनी जान गंवाई। समझ महोदय, फरवरी 2022 में उत्तराखंड और राजस्थान के अंदर 5 बड़े हादसे हुए। इसका ये प्रमाण है कि पहाड़ों की सड़कें वैसे भी मैदानी इलाकों की अपेक्षा ज्यादा खतरनाक दुर्घटना संभावित मानी जाती है, मगर प्राय देखा जाता है कि उन पर किनारों की तरफ दुर्घटना के वक्त सुरक्षा के लिए लोहे की बाड़ वगैरह लगाने की जरूरत नहीं समझी जाती, जिसकी वजह से जरा संतुलन खोते ही गाड़ियां गहरी खाई के अंदर गिर जाती है। समझ महोदय, राजमार्गों का निर्माण, उन पर गति सीमा आबाद रखी गई, मगर सड़कों के किनारे अक्सर खुले छोड़ दिए गए, जिसके चलते न सिर्फ उन पर आवारा पशु अचानक आ पहुंचते हैं, इनकी वजह से तेज रफ्तार की गाड़ियां संतुलन को दुर्घटना हो जाती है, बल्कि बरसात वगैरह की वजह से अगर किसी गाड़ी का पहिया चूक से भी मिट्टी पर पहुंच जाए तो फिसल कर दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। फिर भी कई राजमार्गों का विकास इस तरह हुआ है कि कई कई कस्बे, गांव वगैरह के बीच से होकर जब वो गुजरते तो लगता ही नहीं कि वो राजमार्ग के सामान्य सड़कों की तरह लगता है। अक्सर जोखिम भरा काम है। लंबे समय से मांग की जा रही कि राजमार्गों का विकास करते समय उन पर सुरक्षा व्यवस्था भी पुख्ता होनी चाहिए, ताकि उन पर होने वाली दुर्घटनाओं को रोका जा सके, मगर अफसोस है कि अभी तक इस दिशा में गंभीरता ध्यान नहीं दिया। समझ महोदय, क्वालिटी कंट्रोल की भी बात करूंगा। क्वालिटी कंट्रोल बना रखा है, चाहे स्टेट के अंदर हो, देश के अंदर हो। हम जब मांग करते हैं तो जांच के लिए भी आप इंजीनियर भेजते हो, क्योंकि इंजीनियर की जांच करेगा। तो आज तक हमने कोई ठेकेदारों को, इंजीनियरों को जेल जाते नहीं देखा। करोड़ों अरबों रुपए लगा के जो सड़क बनाई जाती है, 5 साल की उसकी गारंटी भी होती है, लेकिन 1 साल बाद ही वो सड़क, चाहे सीआरएफ से बनी, चाहे आपका स्टेट हाईवे हो, चाहे नेशनल हाईवे हो, उनमें गड्ढे पड़ जाते हैं। और कई जगह तो ऐसी हालात होती है कि 3 दिन बाद ही डामर उखड़ जाता है, और क्वालिटी कंट्रोल की टीम बाद जाती है तो कागजों के अंदर सारा रफा दफा मामला हो जाता है। तो मैं चाहूंगा कि क्वालिटी कंट्रोल की जो जांच हो, क्वालिटी की जो जांच हो, वो मजबूत तरीके से, और अगर बदमाशी कोई करे, घोटाला घपला करे, कोई इंजीनियर दोषी हो, ठेकेदार दोषी, उसको सजा मिले, ये मैं मांग करना चाहूंगा। टोल की बात करूंगा संबंध में, टोल टैक्स। अखबारों की माने तो एक्सप्रेस वे और नेशनल हाईवे पर अप्रैल से टोल टैक्स की दरों में 10% की वृद्धि की जा सकती है, ऐसा कह रहे हो सकता है। आए दिन हम ये भी पढ़ते हैं कि सरकार ने डीजल, पेट्रोल, एक्साइज ड्यूटी, रोड सेस बढ़ाया। आप रोड, ये सब सुनकर लगता है कि शायद ही कोई देश होगा जिसमें केवल सड़क पर चलने के लिए यात्री को 3 लेयर का टैक्स देना पड़े। ये हिंदुस्तान वर्ल्ड में पहला देश है जहां 3 तरह का टैक्स आम जनता को देना पड़ता है। रोड सेस, रोड टैक्स और टोल टैक्स। अगर लंबी दूरी की बात करता तो ऐसी बहुत ही कम ऐसी सड़कें जिनमें टोल टैक्स वाली सड़कें ना हो। सरकार की तरफ से प्रति लीटर डीजल, पेट्रोल, रोड सेस लिया जाता है, जिससे सड़क, ब्रिज, अंडरपास, सड़क से जुड़े बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता है। सरकार इसे पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल करने वाले वसूलती है। भारत में एक उपभोक्ता हर लीटर डीजल, पेट्रोल खरीदने में 10 रुपए रोड सेस देता है। इतना सेस देने के बाद भी उपभोक्ता को हर राजमार्ग पर फिर से टोल देना पड़ता है। इतना टोल देने के उपरांत भी कोई एक यात्री गड्ढे और जाम की समस्या निजात नहीं पा सकता। सौद राजमार्गों को विकास, एक्सप्रेस जैसी चौड़ी सड़कों का मकसद भी वाहनों की सरल आवाजाही सुनिश्चित करना था, लेकिन निजी कंपनियों को सड़कों पर वाहनों से टोल टैक्स वसूलने की जिस तरह की खुली छूट दी है, उस पर कई बार तो भारत के नियंत्रक मामले का परीक्षक सीएजी ने भी सवाल उठाए। कई मामलों में खुद सरकार ने राजमार्गों का विकास करने वाली निजी कंपनियों को टोल वसूलने के निर्देश ज्यादा समय दे दिया। यातायात को सुचारू के मकसद से निर्मित की गई सड़कों को तैयार करने वाली कंपनियां बरसों से टोल वसूलती रही,
जबकि कई जगहों पर इन सड़कों को बनाने में आया खर्च और मुनाफा काफी पहले वसूला जा चुका है। एक रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश के बाद तीसरा ऐसा राज्य है जहां हाईवे पर गाड़ी चलाना महंगा पड़ रहा है। मैं सभापति महोदय सरकार से मांग करूंगा कि टोल आप हर योजना आम आदमी, गरीब आदमी तक पहुंच रहे हो, तो कोई ऐसी योजना लाए कि हिंदुस्तान की जनता को टोल नहीं देना पड़े, देश टोल मुक्त हो। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान के अंदर भी टोल फ्री की बात करी थी, पिछली बार स्टेट गवर्नमेंट ने स्टेट हाईवे टोल फ्री किए थे। मैं मांग करता हूं कि देश को टोल फ्री करके पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाकर आप ले जा रहे हो 100 पार। यूपीए के समय जब बढ़ता बढ़ता पेट्रोल डीजल 100 पार चला गया, कैसे कोई व्यक्ति गाड़ी चला पाएगा? कैसे गरीब आदमी ये सोचेगा मैं गाड़ी लेके सड़क पर चलूं? अगर चारों महानगरों के अंदर एक ट्रक वाला ट्रक लेके जाता है सभापति महोदय, तो उसको 25,000 रुपए का टोल देके वापस वो अपने घर आता, पूरे देश का जब चक्कर लगाता। तो ये दुर्भाग्य की बात है। सभापति महोदय, एक आध मिनट में मेरी बात समाप्त कर, तो कुछ मेरे सुझाव भी है। मैं मांग करना चाहूंगा कि टोल मुक्त देश हो। 2018 में राष्ट्रीय राजमार्ग 1,40,843, 2019 में 1,37,191, 20 में 1,16,496 सड़क दुर्घटना हुई। मंत्री जी इसको लेकर चिंतित है, परंतु राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क दुर्घटना रोकना बहुत बड़ा चैलेंज का काम है। लेकिन मेरा आग्रह कि ब्लैक स्पॉट जो चिन्हित कर लेंगे उन्हें जो चिन्हित जाए उसे सुधारने की सख्त करना चाहिए। मैं जानना चाहूंगा कि राजस्थान से गुजर रहे जयपुर, किशनगढ़, गुरुग्राम, जयपुर रिंग, जयपुर महुआ तथा जयपुर टोंक देवली आदि राजस्थान में स्थित टोल से उक्त राजमार्ग के निर्माण से लागत से अधिक टोल। बस लास्ट 1 मिनट में मेरे सुझाव देता हूँ साहब, प्लीज कंक्लूड, मार्ग को टोल मुक्त करेंगे, ये हमारी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का मुद्दा भी है। सभापति महोदय, मैं सारे ये 1 मिनट के अंदर में एक भारतमाला की बात करूंगा। भारतमाला परियोजना निश्चित रूप से एक अच्छी परियोजना लेके आए थे। 1 मिनट सर सुनो, आज प्लीज कंक्लूड। आप तो सुनो, 4 मिनट। A good speaker must finish within a stipulated time with all points. भारतमाला के बाद I think that you are a good speaker. और उसके बाद समाप्त। 1 मिनट सर, भारतमाला परियोजना के अंदर मेरा निवेदन रहेगा कि मंत्री जी से मिले, जनरल साहब से भी मिले। इन मतलब राजस्थान के अंदर हमारे जालोर से आने वाले माननीय सांसद भी कह रहे थे कि पंजाब, हरियाणा और दूसरे राज्यों के अंदर जो भारतमाला में जमीन एक्वायर की, उनको मुआवजा ज्यादा मिला और हमें मुआवजा कम मिला। इसलिए भारतमाला परियोजना के अंदर किसानों की जो जमीन अधिकृत की है उनको ज्यादा मुआवजा स्टेट गवर्नमेंट से बात करके दिया जाए। अब मेरे सुझाव 1-2 सुझाव मैं देता हूँ साहब। 1 सेकंड, ये लीजिए आप। श्रीमती नवनीत राणा, 1 मिनट साहब, 1 मिनट सुझाव मेरे, 1 मिनट प्रमुख जो मेरी मांग है। नवनीत राणा प्लीज, अध्यक्ष महोदय, सुझाव राणा जी। Nothing will go on record except Rana. Your problem is not at all you are finishing, na? Yeah. Always you are. No, this is not fair. I allotted 3 times. In spite of that, you are not able to finish your speech. आधा मिनट। Okay, 1 minute. हाँ मैंने प्रमुख CRF के माध्यम से मेरे नागौर जिले तो अधिक राशि का आवंटन किया जाए। सड़कों की दृष्टि से अभी काफी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। मोदी जी, नागौर में अजमेर नागौर राष्ट्रीय राजमार्ग उद्यान, आप 1 मिनट देख लेना। कुचेरा नगर पालिका क्षेत्र के बाहर बने बाईपास पर खजवाना ग्राम के चौराहे पर बहुत दुर्घटनाएं होती है। तो यहाँ पर फ्लाईओवर बनाए जाए। साथ ही नागौर से जोधपुर जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग नागौर जिले की भाखरो तथा खींवसर के पदम से चौराहे पर जहाँ दर्जनों दुर्घटनाएं हो गई, दर्जनों लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इन दोनों स्थानों पर भी जल्द से जल्द फ्लाईओवर बनाया जाए। नागौर से जोधपुर, बीकानेर, अजमेर तक जाने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर ब्लॉक स्पॉट को चिन्हित जल्द से जल्द करके ग्रामीण सड़कों को जोड़ने वाले स्थानों पर इलेक्ट्रिक इंडिकेशन लगाया जाए। सभापति महोदय, मेरी मांग है कि दिसंबर 2020 में मंत्री जी राजस्थान से जुड़ी परियोजनाओं को लोकार्पण के, अब 1 मिनट होने दो, लोकार्पण के दौरान नागौर शहर में बीकानेर रेलवे क्रॉसिंग से बीकानेर राष्ट्रीय राजमार्ग गोगलाव की तरफ 6.2 किलोमीटर 4 लेन सड़क में डिवाइडर, रोड लाइट आदि के लिए 18 करोड़ से अधिक का कार्य स्वीकृत किया। उसकी वित्तीय स्वीकृति जल्द से जल्द जारी की जाए। प्लीज 1 मिनट बताता हूं, 1 मिनट साहब। No, nothing will go on record except राजा Rana. साहब, आप आज ऐसे कैसे हो रहे हो? बिल्कुल। You start, please. You start. अध्यक्ष महोदय, Mrs. Rana, please you start. अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहनी वाले भैया, सर आपका हो गया सर। Please you हाँ सर, sir, this is so difficult to speak in between like this. Thank you sir. Thank you so much, Adhyaksh Mahoday. Demand for roads, transport and highways, उसके लिए यहाँ पर सभी अपने अपने क्षेत्र के हाईवे के परेशानी और इसके लिए लेके आ रहे हैं। कुछ वक्ता हमारे कॉलीग अभी पीछे कुछ बोल रहे थे, उत्तर प्रदेश से BSP को बिलोंग करते हैं। ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है, हमारे मंत्री महोदय यहाँ पर बैठे हैं, जहां पर कोई भी इशू रिलेटेड रोड, हाईवेज, नेशनल को लेके आप जाइए, मंत्री महोदय गडकरी साहब, हमारे
वीके सिंह सर हमारे मंत्री, ये आपको पॉजिटिव रिस्पांस देके आपकी बात सुनते हैं। नेशनल में है तो किस तरीके से इसे करना है, स्टेट से नेशनल करना है तो किस योजना से इसको काम करके लाना है। ये एक ही डिपार्टमेंट है जहां पे बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी से काम किया जाता है। और पिछले 7 वर्षों में जो अमरावती, जिस क्षेत्र को मैं बिलोंग करती हूँ महाराष्ट्र में, आज भी हम महाराष्ट्र में बहुत सारी रोडों की दिक्कत हमें आती हैं, पर मुझे लगता है ये डिपार्टमेंट पिछले 7 वर्षों में जो तरीके से अमरावती के इंटरनल बाहर के जो रोड्स हैं ये डिपार्टमेंट ने किए। आज अमरावती, कोई भी बड़ा पॉलिटिकल आई या कोई भी बड़ा व्यक्ति हमारे अमरावती डिस्ट्रिक्ट में एंटर करता है तो वो देख के उसका दिल खुश हो जाता है कि ये रोड सेंटर से बने हुए हैं और इस तरीके से इसकी रोड की तैयारी ये डिपार्टमेंट ने की है। सर, मैं आपसे विनती करना चाहूंगी, हमारा नेर, यवतमाल, बन्नेरा, अमरावती, अचलपुर, धारनी, ये जो रोड मेजर स्टेट हाईवे है 14 है, पर इसकी पिछले 3 वर्षों से वहां के नागरिकों की, डिपार्टमेंट की और हमारे सभी लोक प्रतिनिधि, वहां के एमपीज हों, हमारे एमएलएज हों, हमारे क्षेत्र के एमएलएज हों, कंटिन्यू इसका फॉलोअप ले रहे हैं कि इसे नेशनल हाईवे घोषित कीजिए, क्योंकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास फंड नहीं है। इस रोड पे सुबह से लेकर शाम तक कितने एक्सीडेंट्स होते हैं, क्योंकि इसे 4 लाइन करना बहुत आवश्यक है। और मेरे ट्राइबल क्षेत्र को भी ये जोड़ने का काम करता है, अमरावती के शहर को जोड़ने का काम करता है। और अचलपुर जो क्षेत्र आता है वहां पर अगर आपने ध्यान देके इंफॉर्मेशन ली तो पूरे रोड पूरा खराब है। तो मैं आपसे विनती करूंगी कि इसे नेशनल हाईवे घोषित करके इसका काम जल्द से जल्द शुरू किया जाए, जिससे हमारे क्षेत्र के और हमारे क्षेत्र को लग के जो यवतमाल डिस्ट्रिक्ट है उस डिस्ट्रिक्ट को भी इसका फायदा पहुंचे। सर, पिछली बार जब नेशनल हाईवे के लोकार्पण के लिए हमारे गडकरी साहब हमारे डिस्ट्रिक्ट में आए थे तो उन्हें हमें आग्रह किया था, उनको, हमारे क्षेत्र के लोगों ने और एज ए लोक प्रतिनिधि हमने, कि नागपुर अमरावती ऐसे एक मेट्रो ऑन रोड चलाई जाए जिससे हमारी जो बस की जो ट्रांसपोर्ट है उसमें ज्यादा लोग ना ट्रैवल करते हुए इजी हो और 1.5-2 घंटे में 1 से 1.25 घंटे में वो अमरावती और अमरावती से चांदूर बाजार अमरावती हो। सर ने स्टेट से अनाउंस किया है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी मंत्री महोदय जी कि उसका भी काम जल्द से जल्द, उसका प्रपोजल महाराष्ट्र से बुला के उसका भी काम इम्प्लीमेंटेशन किया तो वहां के हमारे ग्रामीण क्षेत्र को, तालुकों को जोड़ने का ये काम है। मेरे मेलघाट में घटांग जो रोड है, जो एरिया पड़ता है भांडुम, रास्ता मध्य प्रदेश को लग के है। और मध्य प्रदेश में सर सबसे बड़ी बात, अभी 4 दिन हम हमारे क्षेत्र में, आदिवासी क्षेत्र में थे और 4 दिन वहां पे थी। जब बॉर्डर क्रॉस करते हैं हम एमपी से महाराष्ट्र को और महाराष्ट्र से एमपी को, तो ये कोई अननोन व्यक्ति भी पहचान जाएगा कि अभी हम महाराष्ट्र में और अभी हम मध्य प्रदेश में, क्योंकि हमारे महाराष्ट्र के रोड में खड्डे हैं कि खड्डों में रोड है यही पता नहीं लगता हमारे वो बॉर्डर पे। और मध्य प्रदेश में जैसे आएंगे तो वो फ्लाइट जैसी स्मूथली गाड़ी चढ़ती है, गांव के अंदर भी और गांव के बाहर भी। तो मैं आपसे विनती करूंगी सर, कि वो मेरा ट्राइबल क्षेत्र है और ट्राइबल क्षेत्र में जो रोड्स की बहुत बड़ी आवश्यकता है। अगर एक आधी इमरजेंसी कोई आ जाती है गांव से, तो गांव से प्लेन रोड तक जाने के लिए, एरिया जाने के लिए, मुझे लगता है बहुत बार जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनकी मृत्यु वो दौरान ही हो जाती, क्योंकि इतने रोड खराब हैं कि उसकी मरम्मत भी कर नहीं पाती है। तो मैं आपसे विनती करूंगी ऐसे रोडों को ध्यान देके उस पे काम हमें करना बहुत जरूरी है। और बन्नेरा रोड का फ्लाईओवर है सर, हमारे विधानसभा क्षेत्र आता है अमरावती में, अमरावती डिस्ट्रिक्ट में। वहां के फ्लाईओवर के इस बाजू भी 4 लाइन बना है और उस बाजू भी 4 लाइन बना है, पर फ्लाईओवर 2 वेज है, 2 लाइन है। और जिसके लिए हमने पिछले 3 सालों से कंटिन्यू उसका फॉलोअप ले रहे हैं अपने डिपार्टमेंट से, और उसके लिए हमारे डिपार्टमेंट ने भी, जो महाराष्ट्र डिपार्टमेंट ने 75 करोड़ का प्रपोजल हमने यहाँ पर सेंड किया है। अगर उसका काम करेंगे 4 वे से 2 वे में आने के लिए, एक्सीडेंट की जो क्लैशेस होने के चांसेस इतने ज्यादा बढ़े हुए हैं और डेवलपमेंट हम कर रहे हैं, तो बीच का पार्ट अगर डेवलपमेंट से बाजू रखते हैं तो मुझे लगता है वो प्रॉब्लमेटिक। सर, it is very genuine demands what I'm asking Minister sir, just last 2-3 minutes more। तो उसका भी काम अगर आप कराएंगे। अमरावती में एक ओवरब्रिज का काम शुरू है सर, चित्रा चौक से हमारी लाल खड़ी है, वो सब एरिया का भाग है, उसका काम इतना धीमी गति से शुरू है। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है और इतनी ट्रैफिक वाला एरिया है, पूरा बाजार भरता है, बहुत पुराना बाजार है। अगर उसका काम थोड़ा स्पीडी कर दिया जाए तो वहां के लोगों को इस काम का लाभ लेने में बहुत ज्यादा सुविधाएं होंगी।
सर एक प्रपोजल हमने दिया था दस्तूर नगर, लालखेड़ी और भानखेड़ा और चांदूर रेलवे, जो नागपुर रोड को नागपुर को शहर को जोड़ने का काम करता है, उसके ऊपर भी अगर थोड़ा सा हमने ध्यान दिया सर तो हम बहुत सारी चीजें कर पाएंगे। और ट्राइबल एरिया पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है सर। और मैंने बहुत सारे स्पीकर्स को भी बोलते हुए सुना। यस सर, सर आई अग्री टू ऑल योर दिस थिंग ऑर्डर्स फ्रॉम द चेयर सर। बस आपको मैं सर रिक्वेस्ट करूंगी, आपको अमरावती के बारे में बहुत ज्यादा अच्छे से पता है सर, तो आप थोड़ा सा इंटरेस्ट लेंगे तो ये बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है मेरे। अमरावती यवतमाल नेर रोड हो गया है, चांदूर बाजार अमरावती का जो रोड है, भानखेड़ा टू चांदूर रेलवे रोड है, और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में जो डिफरेंस है उसे खत्म करने का जो एक ये है वो हमने करना चाहिए। इतनी मैं मांग आपके माध्यम से चेयरपर्सन मंत्री महोदय जी को करती हूँ। और ये सब डिटेल्स में सर आपके पास फॉलोअप करने के लिए भी आऊंगी और ये सब चीजें जल्द से जल्द पूरी होंगी, इतनी रिक्वेस्ट भी आपसे करती हूँ। थैंक यू। Thank you. Honorable Member Sri Krishneri Srinivas ji. Thank you, Speaker sir, for giving me the opportunity. Sir, I congratulate Gadkari ji and VK Singh ji and their team for being able to get 5% of the total budget allocated to the ministry, road transport and highways. Sir, this is the first time in the history 5% of the budget is allocated to the ministry, and it's a great achievement, sir. In this regard, I thank them. And also, sir, the decision of the ministry not to borrow or take loans for this financial year is much welcomed, sir. And sir, the allotment for road safety, sir. In road safety in this country is a priority issue, sir, because there are a lot of road accidents happening in our country, and it is the highest in the world, sir. When compared to other countries, the road accidents are very high, and many people are dying due to this road accidents, sir. But the budget allocated by the ministry towards the road safety is just 0.2%, sir, of the total budget, which is 229 crore, which is very less, sir. So I request the ministry to take care of the road safety issues and allocate more budget for road safety issues, so that, because human life is very valuable, sir, and I think we should protect the human life. So road accidents should not happen. So I think more budget should be allocated for this road safety, sir. Also the national highway maintenance, sir. Sir, the budget allocated for the national highway maintenance is just 1.24% of the total budget of the ministry, sir. Sir, this is just 40% of the requirement of the highway maintenance, sir. There is 60% more required for just maintaining the highways, sir. If the highways are not good, even though you build world-class highways, if the maintenance is not good, the vehicle maintenance will be more, the accidents will be more, and also the whatever freight total average which is in the world, it is very high in India when compared to the other countries. So if you want to reduce that freight average per kilometer, you have to maintain the roads well. So I request the Honorable Minister through you to allocate more sufficient, not more, sufficient budget for the national highway maintenance, sir. And also coming to my state, Andhra Pradesh, sir. Sir, there are 433 black spots identified in our state, sir. Out of that, only 76 black spots are clear, sir. This is causing to road accidents, sir. This is a major concern. So I request the Honorable Minister through you to clear the rest of the black spots. Only out of 433, only 76 have been cleared. I urge the Minister through you to clear the black spots and see to that safety is ensured, sir. And also, sir, there are nearly 37 delayed projects in the state of Andhra Pradesh, sir. 37 delayed projects worth 10,000 crores, sir. I request the Minister to immediately fast-track the projects and finish them immediately, sir. And also thank Honorable Gadkari ji for inaugurating nearly 31 projects, nearly 21 projects, sir. 21 projects worth 11,000 crores, and also 31 projects worth nearly 10,000 crores. Recently, last month, when he came to Vijayawada, sir, in the total Andhra Pradesh,
nearly the total sum up of the projects he has inaugurated or already he has laid foundation is worth nearly 21,000 crores, sir, and many other projects which have been already laid foundation stone are in pipeline. I thank the ministry, especially Gadkari ji, for supporting us very well from the beginning after the state is bifurcated and for building the new Andhra Pradesh, sir. And also one or two issues pertaining to the state, sir. NH30, sir. This starts from Vijayawada, my constituency, and it goes up to Uttarakhand, sir. See, Andhra Pradesh, Telangana, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Uttarakhand, sir. And this is one of the longest highways in the country, sir. This is ending near in Ibrahimpatnam, Vijayawada, sir. Last time when Mr. Chandrababu Naidu, our leader, was the chief minister, he thought of connecting this highway to the present state capital, Amaravati, which is just 10 to 12 kilometers away from the ending point of the highway, sir, NH number 30, sir. It will just cost not so much, sir. It will just few hundred crores, not even 300-400 crores it will cost, sir. We have actually laid a foundation stone for the project, sir. It is 3.2 kilometers the bridge on River Krishna and some 3-4 kilometers the road. It will connect the state capital to the NH, sir. So we request the minister to accept our proposal and sanction the proposal, sir. NH30 from Ibrahimpatnam to our state capital Amaravati should be expanded, sir. And also one more thing, sir. The Vijayawada-Hyderabad highway is one of the highway number 65, sir. NH number new 65, old NH9, sir. This is one of the busiest highways in this country, sir. So it is only 4 lanes, sir. So we request the minister to immediately expand it to 6 lane with service roads, sir. And also actually, while the state is bifurcated in 2014, sir, as per the AP State Reorganization Act, which is promised, a greenfield expressway from Vijayawada to Hyderabad and the new one point. Last point, I'll conclude. Yes. 1 minute. So the greenfield expressway is being promised for the state from Amaravati, the present capital, Amaravati, whatever the new capital, Amaravati to Hyderabad, sir. So I request the minister to initiate the project immediately, sir. Greenfield express highway from Amaravati, Vijayawada to Hyderabad, sir. The last point, sir, only my suggestion to the ministry. Actually, the promoting the electric vehicles, EV vehicles in this country is much welcomed and much appreciated, sir. But, sir, as of today, 70% of the thermal projects or power plants are coal-fired, sir. This is causing a lot of pollution. Yes. And it will take nearly 15 years to come to a stage where the pollution is less, sir. So I request the minister also to, especially in the commercial vehicles, sir, because the capex is also very high to buy a electric commercial vehicle. I request the ministry to look into that the CNG commercial vehicle manufacturing is also supported and promoted by the ministry, sir. This will actually be useful for the country for lessening the pollution, for lessening the cost of the commercial vehicle operation, and also the capex will be less for this CNG vehicle, sir. I request the minister to see the proposal, look into the proposal of, my suggestion to look into the proposal of CNG vehicles also. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you. Honourable Member, Sri N.K. Premin. Thank you, Mr. Chairperson, sir. Sir, though I belongs to the opposition benches and vehemently opposing the policies and programs of the government, most of the policies of the government, I do hereby stand to support the demands for grants for the Ministry of Road Transport and Highways. Why? Because of the performance of the ministry under the leadership of Sri Nitin Gadkari ji, the wonderful performance done by the ministry and the National Highway Authority of India in strengthening the road infrastructure in the country. Sir, at the same time, I would like to make a reservation regarding the absence of the Honorable Minister, Sri Nitin Gadkari ji, because he is demanding 1,99,000 crores of rupees from this House. And he is the minister who is responsible for demanding this amount from the House. The House has to sanction such a big amount, 1,99,107.71 crores of rupees have to be granted by this House. But unfortunately, the cabinet minister who is responsible
sole responsibility is with him, but unfortunately he is missing the day in which the debate has initiated, and today also he is missing. This is quite unfortunate. This is against the conventions and practice of this House. Please kindly direct the Honorable Cabinet Minister. Yes, MOS. I fully honor the Honorable V.K. Singh. He is capable for replying. He is competent to reply. But the Cabinet Minister is the minister who is representing the Cabinet and making the demand, and he is coming to the House demanding such a huge amount from this House. Definitely. No, we could not insist. No. Then we will also speak from the online. Ramendranji, we could not insist to the minister. Pardon? We could not insist. But this is, I am telling that this is the parliamentary ethics. This is the collective responsibility of the Cabinet. This has to be done. This was the previous convention of this House. Yes, I am not saying that throughout the time the minister should be there. We fully congratulate the Honorable Minister for his wonderful performance. We will see the Cabinet Minister or MOS available here. MOS is competent to make the demands, but my point is regarding the parliamentary ethics and the collective responsibility of the Cabinet. The Cabinet Minister has to come, make the demand. Let him go. But unfortunately, his absence in the House is quite unfortunate. That I want to make mention. And government side replies from government side. Yes, day before yesterday also I pointed out this matter to the Honorable Speaker. V.K. Singh, he is fully here. He is attending the entire debate. I fully congratulate him also. Yes. This is a question of the propriety and ethic and the conventions and the precedents of this House. Okay. I want to make a point. So thank you. So don't take this time out of... No. Oh, please. No. This is I just making. Otherwise, I could don't lose his time. Yeah, sir. No. Please. Okay, Prime Minister. Sir. Railway is the third largest network in the world, and the road is the second largest road network in the world. And we are having. I'm not going to the statistics, but 5.89 million kilometers of road. So the road network transports 64.5% of all goods in the country and 90% of the total passengers in the traffic. The total budget allocation for Ministry of Road Transport and Highway, I already mentioned 1,99 point something crores of rupees for the financial year 2022-23. So this is 68% increase compared to the revised estimate of the previous year. This is absolutely appreciable thing, and I fully congratulate the government for having such an increase in the road infrastructure. Sir, the road transport is one of the most cost-effective and convenient modes of transportation in India, both for freight and passengers, as it has high potential penetration level with door-to-door delivery. Importance of road infrastructure is widely recognized as a potent means of socio-economic integration, and it's vital for the economic development of the country. So much importance and significance should be given to the road infrastructure because it is being applicable to all the people of this country, both in the freight traffic as well as in the passenger traffic. So the ambitious plan of this ministry is to construct 25,000 kilometers of national highway for the financial year 2022-23. The Prime Minister's Gati Shakti Master Plan is the flagship program of the government to facilitate the faster movement of the goods and the people. In all these sense, if you examine, the infrastructure is given much significance and importance in the budget for the financial year 2022-23. So once again, I want to place it on record my appreciation and congratulations to the government for this Ministry of Transport and Highways. At the same time, when I congratulate and appreciate, I would like to make some concerns and apprehensions on my part. I fully support most of the observations, critical observations made by Mr. Vishnu Kumar, Honorable MP from the opposition side from the Congress, that he has made so many reservations and concerns. I fully support this. Number one is the performance of the consultancy. Sir, kindly see, the NAHI, the National Highway Authority of India, is entrusting the entire work with the consultancy. And the consultancy is the sole supreme authority regarding the construction of the entire work. And the plan, design, alignment, everything is being made by the consultancy.
Sir, when you appoint the consultancy, the quality of the consultancy has to be looked into. And also, I would like to urge upon the government to draw the attention of the Honorable Minister. These consultancies are not consulting with the members of Parliament. We are not being taken into confidence. At least the consultancy has to take into the confidence of the people's representative before finalizing the alignment plan and all these things, at least the people's representative have to be taken into to be consulted. But unfortunately, the consultancies are under the impression that they are above all these things. Whatever the decisions of the consultancy, that will be approved. That is not the good thing, because we are mingling with the people, we are living with the people, we know the difficulties on the ground level regarding the alignment, evacuation and all these things. We are well aware, we are living with the people, but unfortunately, most of these consultancies is not transparent in making the plan, alignment and structure and all these things. So kindly give a direction to the consultancies to have consultation with the people representatives before finalizing the alignment and plan and all these things. I can very well cite an example also. See, now in National Highway 66 in my constituency and in the state of Kerala, now you are constructing this the 4-lane traffic, but what you are doing, retaining earthen wall is being constructed in the junctions. For example, in my constituency, Paripalli, Chatanur, Kottayam, and even in Karunagapalli, my learned friend's constituency, you are constructing big walls like China walls and having a small underpassage. The entire urban area is being lost. That means, suppose if it is elevated highway on pillars, then the urban area or the town area will be protected. The consultancy have nothing. When we have discussed with the people, when the officials, they are saying that it is 10 times greater estimate than that of the retaining earthen walls. So if that be the case, the state should also share the expenses. So this concern has to be addressed. That is number one. And the consultancy should not be the supreme authority. They should also consult with the people's representative before finalizing it. And the second one is regarding the maintenance and repair. So the national highway, the advance contract has to be given. My suggestion is annual maintenance contract has to be given so as to maintain the national highways in a proper way. An annual maintenance contract has to be provided. That is the second concern or suggestion which I would like to make. And the third one is regarding the quality of the work. See, regarding the quality of the work, we know that the Prime Minister's Gramin Sadak Yojana, 3-tier or 3-level inspection or super surveillance is there. Similarly, in the case of the national highway roads also, the quality of the work has to be relooked, it should be reviewed, and some accountability has to be made regarding the national highways. Immediately after the repair and maintenance, within 3 months, the road is being dilapidated. We have so many examples, experience as far as the national highway is concerned. So such a mechanism, a new mechanism has to be evolved so as to have the good quality in maintaining the roads. And the third point is regarding the delay in the completion of projects by NAHAI. Sir, what is the structure of the NAHAI? The National Highway Authority of India, very minimal people is there. There is no manpower in the National Highway Authority of India. Everything is being outsourced. They are having no responsibility. Everything is outsourced. They have no manpower. There are no expertise people in the National Highway Authority of India. Lack of manpower is one of the major problems which National Highway Authority of India is facing. That is why the Comptroller and Auditor General of India has made a very stringent critical observation regarding the procedural inefficiencies of the National Highway Authority of India. Procedural inefficiencies of National Highway Authority of India has been noted by the Comptroller and Auditor General of India. Sir, that has to be looked into. I'm talking about general points. That has to be looked into. That is the another concern which I would like to express when I congratulate you. And regarding the cost overrun also, because the high estimate. Sir, what is the estimate of 1 kilometer road? It is higher. The maximum estimate is being provided. If you are providing such an estimate, even the rural roads can also be constructed in the best way. See, kindly have a review or relook
into the estimate which we are providing and the cost of the road which is being constructed, that has to be compared and that has to be examined. The quantum of work and the estimate which is being provided is disproportionate. That is another concern which I would like to make. And these are the concerns and apprehensions, and along with the last point regarding the vehicular safety also. That also, in that aspect also, Ministry is doing good job. Sir, we want to have a strong, stringent policy committed to improve the automobile safety ecosystem. Sir, every year 150,000 people are dying due to accidents of 5 lakh accidents every year. 150,000 people die. How many tsunami? And it is losing 3.1% of the GDP is being lost. So to address the vehicular safety, you are proposing to implement a new program, Bharat New Car Assessment Program. It is a welcoming step on the part of the government in providing star safety rating system. And for which my suggestion is, rule has to be framed, stringent rules has to be framed, so as to have the star safety rating system of the cars and all the automobiles. Not only for the cars, for all the automobiles, this rating system has to be safety, rating system has to be provided for all the vehicles. That is the last suggestion. And regarding my constituency, sir, your constituency is also connected with my constituency, and regarding road, sir, NH 744. Bharat Mala project, I am thankful to the government for having a new road from Aryangav, Tenmala, Nelamel, Chadayamangalam to Paripalli, the border end of my constituency, and another National Highway 183 passing on the chairpersons also road, we both are connected, and 183A, I suggest to the Honorable Minister to have 183A, which is connecting 183 from Chavara Titanium Junction to Bharanikav, so that that road can be connected to the National Highway 66, and the NH 66 work is progressing. And I am thankful to the government for widening the existing National Highway Kollam bypass from 2-line to 6-line traffic, for which also the government has done a wonderful job in expediting the work. For all these things, we, the members of parliament, are thankful to the government for having a better road infrastructure in the country. With these words, this is the first time in my parliamentary experience that from opposition side, I am supporting the demands for grants for the national highway and road transport. Thank you very much, sir. Thank you. Honorable Member Sri Imtiaz Salil ji. अध्यक्ष महोदय, 2022-23 के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुदानों की मांगों के ऊपर चर्चा करने के लिए आपने मुझे अनुमति दी। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं। अध्यक्ष महोदय, राजनीति अपनी जगह के ऊपर है, मतभेद अपनी जगह पे, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई कट्टर विरोधक भी है तो वो भी इस बात को कबूल करेगा कि आज इस देश के अंदर अगर अच्छी सड़कें देखने को मिल रही है, बड़े फ्लाईओवर्स देखने को मिल रहे, एक्सप्रेसवे और सुपर एक्सप्रेसवे देखने को मिल रहे हैं, तो इसका सेहरा अगर किसी के सर पर जाता है तो नितिन गडकरी जी के सर पर जाता है। यकीनन आज इस मंत्रालय के अंदर जो काम किया जा रहा है वो वाकई में बहुत ही काबिल तारीफ बात है। मैं जितना दिल खोलकर नितिन गडकरी जी की तारीफ कर रहा हूं, उतना ही दिल से ये उम्मीद कर रहा हूं कि वो मेरे चुनावी क्षेत्र औरंगाबाद जो महाराष्ट्र के अंदर आता है, वहां पर हम कोई चांद सितारे नहीं मांग रहे, बल्कि हमारे शहर का जो सबसे बड़ी एक लाइफलाइन है, जो सबसे क्राउडेड एरिया है, जो रोड है जालना रोड, उसके ऊपर हम एक फ्लाईओवर मांग रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि वो एक फुल फ्लाईओवर की मांग जो हमने गडकरी साहब के साथ कई बार चर्चा भी किए हैं, उसको वो सैंक्शन करेंगे, ये उम्मीद करते हैं। लेकिन अगर एक नितिन गडकरी साहब अगर चुस्त है और उनके डिपार्टमेंट के कुछ अधिकारी अगर सुस्त है, तो जनरल साहब उसका असर कैसा होता है? अध्यक्ष महोदय, मैं आपको एक उदाहरण के तौर के ऊपर बताना चाहता हूं। 2 नवंबर 2019 को 7:56 के ऊपर नितिन गडकरी साहब एक ट्वीट करते हैं और उस ट्वीट के अंदर उन्होंने ये बताते हैं, द पुअर कंडीशन ऑफ हाईवे कनेक्टिंग औरंगाबाद सिल्लोड जलगांव हैज कम टू माई नोटिस। आई हैव इंस्ट्रक्टेड चीफ इंजीनियर नेशनल हाईवे डिवीजन PWD टू टेक इमीडिएट एक्शन and make sure that road is in good condition within 8 days, else face consequences. This is not acceptable. Officer or contractor, nobody shall be spared for negligence. 2 नवंबर 2019 को मंत्री जी ट्वीट करके कहते हैं कि 8 दिनों के अंदर हो जाना चाहिए। 2019 गया, 2020 गया, 2021 गया, 2022 आ गया। अध्यक्ष महोदय, ये सड़क आज तक नहीं बनी है
औरंगाबाद से अजंता जाने वाली सड़क जो वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट की तरफ जाती है, ये सड़क नितिन गडकरी जी साहब का ट्वीट आने के बावजूद भी अगर ये 4-4 साल तक अगर नहीं बनी है, तो भारत परियोजना के अंदर आपका जो ये स्कीम है भारत माला परियोजना, खुद नितिन गडकरी साहब ने योजना मैगजीन के अंदर एक आर्टिकल लिखा बूस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, और उसके अंदर उन्होंने ये बताया है कि नेशनल हाईवेज को हमने हर रोज 37 किलोमीटर हम बना रहे हैं। एक साल के अंदर 13,500 किलोमीटर का हम लक्ष्य रख रहे। औरंगाबाद से अजंता की ये जो रोड है ये महज 150 किलोमीटर है। अगर आप एक तरफ कह रहे हैं कि हम हर रोज 37 किलोमीटर बना रहे हैं, और अगर ये रोड पिछले 5 साल से अगर नहीं बनी है, तो कौन है इसके लिए दोषी, ये भी सोचना बहुत जरूरी है। हम एक तरफ अच्छी सड़कें बना रहे हैं, हम इसके लिए उनका मंत्रालय का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, लेकिन इसका दुष्परिणाम कैसा हो रहा है कि सड़कें अच्छी जब बन रही है तो मौतें भी ज्यादा हो रही है, लोग मर भी रहे हैं ज्यादा। उसकी वजह यह है कि एक्सीडेंट्स का प्रमाण भी हर साल बढ़ता जा रहा है। मैं अकेले से महाराष्ट्र की अगर बात करूं तो पिछले साल 30,000 एक्सीडेंट्स महाराष्ट्र के अंदर हुए, और नेशनल महाराष्ट्र हाईवे सेफ्टी पेट्रोल ने यह बताया कि 13,500 लोग महज महाराष्ट्र के अंदर अपनी जान गंवा चुके हैं ओवर स्पीडिंग की वजह से। सड़कें अच्छी बन रही है तो हम ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं। दूसरा यह है, जनरल साहब मैं आपसे हाथ जोड़कर यह विनती करूंगा कि 2017 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया था कि जो हमारे स्टेट और नेशनल हाईवेज है उसके अतराफ 500 मीटर की दूरी के अंदर किसी भी होटल, किसी भी रेस्टोरेंट या किसी भी शराब की दुकान के अंदर आप शराब का कारोबार नहीं कर सकते। यह सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था। इसका असर यह हुआ कि तमाम सारे राज्य जो है, जो इनको एक्साइज ड्यूटी के जरिए पैसा मिलता है, यह सुप्रीम कोर्ट में गए कि नहीं आपका यह फैसला गलत है, इसको रिव्यू किया जाए करके। आज ड्रंकन ड्राइविंग की वजह से कितने सारे लोगों की जान जा रही है। मैं शराब पी रहा हूं, मैं गाड़ी चला रहा हूं, अपनी जान तो जोखिम में डाल रहा हूं, लेकिन सामने वाले कितने लोगों की जान में जोखिम में डाल रहा हूं, यह भी सोचने की जरूरत है। इसीलिए ड्रंकन ड्राइविंग के ताल्लुक से भी आप ही की मिनिस्ट्री आंकड़े रिलीज करती है। पिछले साल के आंकड़े में बहुत ढूंढा, मुझे नहीं मिले। हम आपसे अनुरोध करेंगे आप ये बताएं कि ओवर स्पीडिंग की वजह से और ड्रंकन ड्राइविंग की वजह से कितने सारे लोगों की जान गई है करके उसमें। दूसरा यह है, अध्यक्ष महोदय मैं पार्टी की तरफ से, दूसरा यह है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में अभी अभी हमारे सम्मानीय सदस्य प्रेमचंद्र जी ने कहा है कि हम नेशनल हाईवे, सुपर एक्सप्रेसवेज के ऊपर तो बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो गांव के अंदर जाती है, वहां पर आप हिंदुस्तान के किसी भी गांव के अंदर चले जाइए। मैं अपने चुनावी क्षेत्र औरंगाबाद के बारे में बात करता हूं। एक जंग लगा हुआ बोर्ड मिलेगा वहां पर कि यह सड़क प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के जरिए बनाई गई है। क्या वजह है कि उसकी इतनी बुरी हालत रहती है? उसकी वजह आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। वजह यही है कि ठेकेदार को अधिकारी का डर नहीं, और अधिकारी को इसलिए किसी का डर नहीं कि अधिकारी अपने नेताओं को खुश करके टोल देकर अपना काम चला रहा है। आप एक टीम तैयार करिएगा क्वालिटी कंट्रोल के लिए, आपके पास है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, लेकिन कम से कम केंद्र सरकार की जो स्कीम से, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की हो, या सीआरएफ फंड के जो पैसे से रोड बनाई जाती है, उनका क्वालिटी चेक करने के लिए मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अगर ये गुनाह है, ये जुर्म है, ये कानून है कि अगर कोई ठेकेदार गलत पैसों का इस्तेमाल कर रहा है, कितने ठेकेदारों को आज देश भर के अंदर आपने सजा सुनाई है, कितने अधिकारियों के ऊपर आपने कार्रवाई की है? आप नहीं कर रहे हैं, इसलिए उनके हौसले और बुलंद होते जा रहे हैं। डालिए ठेकेदारों को जेल के अंदर, डालिए अधिकारियों के ऊपर। आप तो जनरल है, आपके पास का जो डिसिप्लिन आर्मी का था, उस डिसिप्लिन को यहां पर लेकर आइए, कोर्ट मार्शल कराइए उन अधिकारियों का, तब जाकर हमारे गांव की सड़कें भी अच्छी बनेगी। मैं अपने आखिरी में मैं अपने चुनावी क्षेत्र की बात करता हूं। डॉक्टर भगवत करार साहब मेरे औरंगाबाद से ताल्लुक रखते हैं। हमने जालना रोड के लिए एक फ्लाईओवर मांगा, मंत्री जी चुनकर आए, उन्होंने कहा कि नहीं मैं 10 साल के बाद आपको एक मेट्रो दूंगा। नहीं चाहिए हमें आज के दिन सिर्फ जालना रोड के लिए एक फ्लाईओवर चाहिए। औरंगाबाद से पुणे
का एक सुपर एक्सप्रेसवे बना दीजिएगा। शिरडी को सारे देश भर से और दुनिया भर से श्रद्धालु आते हैं। औरंगाबाद से शिरडी में है 100 किलोमीटर का रास्ता है, उसे अगर सुपर एक्सप्रेसवे के अंदर अगर आप बना देते हैं तो जो श्रद्धालु शिरडी आएगा वो हमारे औरंगाबाद में अजंता एलोरा देखने के लिए आएगा। तो हम पिछले 2 साल से ये मांग कर रहे हैं कि औरंगाबाद और शिरडी को एक सुपर एक्सप्रेसवे के अंदर बनाया जाए, औरंगाबाद और पुणे को सुपर एक्सप्रेसवे के अंदर। और एक अहम जो कन्नड़ का घाट है, वहां का एक अतरम घाट का एक मुद्दा है, वो कई सालों से ये पेंडिंग है। मैं आपसे मंत्री जी अनुरोध करूंगा कि कन्नड़ के अतरम घाट जो है, जो नेशनल हाईवे को जोड़ता है, उस घाट के ताल्लुक से सरकार कुछ न कुछ फैसला करे, ये उम्मीद करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ऑनरेबल मेंबर नामास्कनी। மாண்புமிகு தலைவர் அவர்களே, சாலை போக்குவரத்து மற்றும் நெடுஞ்சாலைத்துறை மானிய கோரிக்கை மீதான விவாதத்திலே பங்கேற்பதற்கு வாய்ப்பளித்தமைக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். நாட்டினுடைய வளர்ச்சிக்கும் மாநிலங்களுடைய வளர்ச்சிக்கும் ஒவ்வொரு பகுதியினுடைய வளர்ச்சிக்கும் சாலை போக்குவரத்து மேம்பாடும் நெடுஞ்சாலை திட்டங்களும் அவசியமானது. சமீப காலமாக சாலை போக்குவரத்து அதிகமான முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இருக்கின்றது. மற்ற போக்குவரத்தை விட சாலை போக்குவரத்து சாமானிய மக்கள் அதிகம் பயன்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கின்றது. இதனை கருத்தில் கொண்டுதான் எங்களுடைய மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் அவர்கள் தமிழ்நாட்டில் பெண்களுக்கு இலவச பேருந்து திட்டத்தை அறிவித்து செயல்படுத்தி வருகிறார்கள். இதுபோன்ற நாட்டினுடைய வளர்ச்சி திட்டங்களை நாங்கள் வரவேற்கின்றோம். ஆனால் அதே நேரத்தில் நெடுஞ்சாலை திட்டங்கள் திட்டமிடும் போது பொதுமக்களுடைய குடியிருப்புகள், வாழ்வாதாரங்கள் பாதிப்படையாதவாறு திட்டமிடுவது அவசியம் என்பதை சுட்டிக்காட்ட விரும்புகின்றேன். சாலை மேம்பாடுகள் நெடுஞ்சாலைகள் வளர்ச்சிக்காக என கொண்டு வரப்பட்டாலும் அந்த பகுதியில் வாழும் மக்களுடைய வாழ்வாதாரங்களை பதிக்கும் வண்ணம் இருந்தால் மக்கள் போராட தூண்டப்படுகின்றார்கள், போராடுவதற்கு தள்ளப்படுகின்றார்கள். ஆனால் அந்த வளர்ச்சி திட்டமும் தடைபடக்கூடிய சூழலுக்கு உட்படுத்தப்படுகின்றது, தாமதப்படுத்தப்படுகின்றது. எனவே நெடுஞ்சாலை திட்டங்கள் திட்டமிடும் போதே மக்களுடைய வாழ்வாதாரங்கள் பாதிக்காத அளவிற்கு திட்டமிட வேண்டும் என கேட்டுக்கொள்கின்றேன். என்னுடைய ராமநாதபுரம் பாராளுமன்ற தொகுதிக்குட்பட்ட பாம்பன் பகுதியில் 4 வழிச்சாலை திட்டத்தின் மூலமாக குடியிருப்பு பகுதிகள் பாதிக்கப்படுவதாக அந்த பகுதியினுடைய மக்கள் போராடி கொண்டிருக்கின்றார்கள். இவ்வாறு மக்களுடைய குடியிருப்பு பகுதிகள் பாதிக்கப்படும் வகையிலும் வாழ்வாதாரங்கள் பாதிக்கப்படக்கூடிய வகையிலும் உள்ள திட்டங்களை ஆரம்ப நிலையிலே மாற்று திட்டமிடலை செய்ய வேண்டும் என கேட்டுக்கொள்கின்றேன். நெடுஞ்சாலைகள் மூலம் வாழ்வாதாரங்கள் பாதிக்கப்படும் போது மக்களுக்கு மாற்று வாழ்வாதாரங்களை ஏற்படுத்தி தருவதற்கு அரசே முன்வர வேண்டும். அவர்களுக்கு முழுமையான இழப்பீட்டுத் தொகையை அரசு வழங்க வேண்டும் என கேட்டுக்கொள்கின்றேன். நிதிநிலை அறிக்கையில் சாலை போக்குவரத்து மற்றும் நெடுஞ்சாலைத்துறைக்கு கடந்த நிதியாண்டில் 1,36,000 கோடி ஒதுக்கப்பட்டிருந்தது. இந்த நிதியாண்டில் 2 லட்சம் கோடியாக உயர்த்தப்பட்டிருப்பதை வரவேற்கின்றேன். கிட்டத்தட்ட 65,000 கோடி நிதி உயர்த்தப்பட்டிருக்கின்றது. ஆனால் இதில் எத்தனை புதிய திட்டங்களை அரசு செய்யப் போகிறது, எத்தனை திட்டங்களை புதுப்பிக்கப் போகிறது என்பதை பற்றி தெளிவான விளக்கமில்லை. முந்தைய ஆண்டுகளில் எத்தனை நெடுஞ்சாலை திட்டங்களை அரசு ஒதுக்கிய நிதியிலிருந்து செய்து முடித்திருக்கிறது என்பது குறித்த விளக்கமும் குறிப்பிடப்படவில்லை. எனக்கு இந்த அரசு பாரத் மாலா திட்டத்தின் கீழ் 5 ஆண்டுகள் 34,500 கிலோமீட்டர் சாலைகள் அமைப்பதற்கு கிட்டத்தட்ட 5 லட்சம் கோடியை ஒதுக்கியிருந்தார்கள். ஆனால் இன்று வரை 6,900 கிலோமீட்டர் வரை பணி முடிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. 35% பணிகள் மட்டுமே நிறைவு செய்யப்பட்டிருக்கின்றது. ஏன் இத்தகைய காலதாமதம்? தமிழகத்தில் 28 தேசிய நெடுஞ்சாலையில் பணிகள் தாமதம் ஏற்பட்டுள்ளது. கொரோனா ஊரடங்கு மற்றும் நிலம் கையகப்படுத்தல் தாமதம் உள்ளிட்ட காரணங்களால் சென்னை தடா நெடுஞ்சாலை, சிறுவரமுத்தூர், வாலாஜாபாட்டை கிருஷ்ணகிரி நீடிப்பு உள்ளிட்ட 28 தேசிய நெடுஞ்சாலை பணிகள் தாமதப்படுத்தப்பட்டு உள்ளது. ஒன்றிய அரசு இந்த திட்டங்களுக்கு முழுமையான நிதிகளை ஒதுக்கி தாமதம் இல்லாமல் நிவர்த்தி செய்ய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கின்றேன். தமிழகத்தில் பல முக்கிய நெடுஞ்சாலை திட்டங்கள் ஒன்றிய அரசு தாமதப்படுத்தி வருகின்றது. ஒன்றிய அரசு மாநில அரசுடன் கலந்து ஆலோசித்து நடைமுறை சிக்கல்களை எல்லாம் தீர்த்து கொண்டு தாமதம் இல்லாமல் திட்டமிடப்பட்ட நெடுஞ்சாலை திட்டங்களை எல்லாம் துரிதப்படுத்த வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கின்றேன். எங்களுடைய மாநில முதலமைச்சர் மாண்புமிகு மு.க. ஸ்டாலின் அவர்கள் வளர்ச்சி திட்டங்களுக்கு முன்னுரிமை கொடுக்கக்கூடிய ஆற்றல் மிக்க, செயல்திறன் மிக்க முதல்வர். வளர்ச்சி சார்ந்த திட்டங்களுக்கு என்றுமே உறுதுணையாக இருக்கக்கூடிய முதல்வர். எனவே ஒன்றிய அரசு மாநில அரசோடு கைகோர்த்து தாமதப்படுத்தப்பட்ட தேசிய நெடுஞ்சாலை திட்டங்களை தொடர வேண்டும் என கேட்டுக்கொள்கின்றேன். தமிழ்நாட்டுக்கு கூடுதலாக நிதியை ஒதுக்கி திட்டங்களை விரைவுபடுத்த வேண்டும் என்றும் கேட்டுக்கொள்கின்றேன். சாலை பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதில், சாலை தரத்தை மேம்படுத்துவதில் இந்த அரசு மிகுந்த கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கின்றேன். லட்சக்கணக்கான மக்கள் சாலை விபத்துக்களை தங்களுடைய வாழ்வை தொலைத்துக் கொண்டிருப்பதை இந்த அரசு அவசியத்துடன் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கின்றேன். 2 லட்சம் கோடி நிதியிலே வெறும் 386 கோடி மட்டுமே சாலை பாதுகாப்பிற்கு ஒதுக்கியிருக்கிறீர்கள்.
வெறும் 1.67% மட்டுமே சாலை பாதுகாப்பிற்கு ஒதுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. ஒருபுறம் கடந்த நிதியாண்டை விட இந்த நிதியாண்டில் கூடுதலாக சாலை போக்குவரத்திற்கு 66 கோடி நிதி ஒதுக்கப்பட்டிருக்கு. ஆனால் சாலை பாதுகாப்பிற்கு வெறும் 356 கோடி மட்டுமே நிதி இந்த அரசு ஒதுக்கீடு செய்திருக்கின்றது. சாலையினுடைய தரம் உலக நாடுகளுடைய பட்டியலிலே ஒப்பிடும்போது 160 நாடுகளிலே நம்முடைய நாடு 44வது இடத்திலே இருப்பதை வருத்தத்தோடு பதிவு செய்வதற்கு கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன். அதிகமான நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டும் தரமான சாலைகள் அமைக்க முடியவில்லை என்பதை இந்த அரசு ஒப்புக்கொள்கிறதா? விலை மதிப்பில்லாத மக்களின் உயிர்களை பாதுகாக்கும் நோக்கத்திலே சாலைகள் அமைப்பதிலும் சாலை விபத்துகளை தடுப்பதும் வகையிலும் சாலை பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதிலும் அரசு கூடுதல் கவனத்துடன் மிகுந்த எச்சரிக்கையுடன் செயல்பட வேண்டும் என்று வலியுறுத்தி கேட்டுக்கொள்கின்றேன். என்னுடைய ராமநாதபுரம் நாடாளுமன்ற தொகுதிங்கிறது நம் நாட்டிலுடைய மிக முக்கியமான பகுதியிலே ஒன்றாகும். லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் ராமேஸ்வரம் உள்ளிட்ட நகர்களுக்கு புனித யாத்திரை வருகின்றார்கள். ஆனால் அப்படிப்பட்ட நகரத்திலே அடிப்படை வசதிகள் மேம்படுத்தப்படாததால் பெரிய தொழில் வாய்ப்புகள் இல்லாமல் பொருளாதார வளர்ச்சி இல்லாமல் பின்தங்கிய மாவட்டமாகவே எங்களுடைய மாவட்டம் இருக்கின்றது. எனவே தொழில் வாய்ப்புகளை பெருக்கக்கூடிய வண்ணம் வர்த்தகத்தை வளர்க்கக்கூடிய வண்ணம் தேசிய நெடுஞ்சாலைகளை ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தின் வழியாக ஏற்படுத்த கூடுதல் முக்கியத்துவம் தர வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். காரைக்குடி ராமநாதபுரம் நீடிப்பு நெடுஞ்சாலை திட்டத்தினுடைய நிலை என்ன என்பதை கேட்க விரும்புகின்றேன். அதனை விரைவாக செயல்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கின்றேன். மதுரை ராமேஸ்வரம் 4 வழிச்சாலை திட்டம் பரமக்குடியுடன் நிறைவேற்றி மீதமுள்ள ராமேஸ்வரம் வரை 2 வழிச்சாலையாகவே உள்ளது. எனவே அதனை முறையாக திட்டமிட்டு ராமேஸ்வரம் வரை 4 வழிச்சாலையாக தரம் உயர்த்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கேட்டுக்கொள்கின்றேன். அதுபோன்று கிருஷ்ணகிரி, அதுபோன்று தனுஷ்கோடி, ராமேஸ்வரம், மதுரை, கிருஷ்ணகிரி வழியாக டெல்லி, வாரணாசி வரையிலான தேசிய நெடுஞ்சாலை திட்டத்தை ஏற்படுத்தி தர வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கின்றேன். முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இந்த திட்டம் பக்தர்களும் வணிகர்களும் அதிகம் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு முக்கியமான சாலை. எனவே என்னுடைய தொகுதியினுடைய வளர்ச்சியை கருத்தில் கொண்டு இந்த திட்டத்தை ஏற்படுத்தி தருமாறு கேட்டுக்கொள்கின்றேன். அதுபோன்று தமிழகத்திலே நிலுவையில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து தேசிய நெடுஞ்சாலை திட்டங்களையும் மாநில அரசோடு ஆலோசித்து விரைந்து செயல்படுத்துமாறு கேட்டுக்கொள்கின்றேன். ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் நகரத்திலும் தேசிய நெடுஞ்சாலைக்கான உரிய கட்டமைப்புகளை இன்னும் ஏற்படுத்தவில்லை. அதனை மேம்படுத்தி தேசிய நெடுஞ்சாலைக்கான உள்கட்டமைப்பு வசதிகளை ஏற்படுத்தி தர வேண்டும் என கேட்டுக்கொள்கின்றேன். மேலும் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் பல ஒளிவிளக்குகள் பொருத்தப்படாமல் இரவு நேரங்கள் பயணிகளுக்கு சிரமத்தை ஏற்படுத்துகிறது. மேலும் பல்வேறு விபத்துகளும் ஏற்படுத்துவதற்கு வாய்ப்பாக இருக்கின்றது. எனவே ஒளிவிளக்குகள் பொருத்தப்படாத தேசிய நெடுஞ்சாலையில் ஒளிவிளக்குகள் பொருத்த விரைந்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கேட்டுக்கொள்கின்றேன். மதுரை, ராமேஸ்வரம், தூத்துக்குடி, நாகப்பட்டினம் தேசிய நெடுஞ்சாலை பெரும்பான்மையான வழித்தடம் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் வழியாக செல்கிறது. எனவே ராமநாதபுரம் மாவட்டத்திலே தேசிய நெடுஞ்சாலைக்கான திட்ட இயக்குநர் அலுவலகத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும். தற்போது சிவகங்கை மாவட்டம் காரைக்குடியிலே இருக்கின்றது. தூத்துக்குடி, நாகப்பட்டினம் நெடுஞ்சாலை பராமரிப்பு பணிகளை உடனடியாக துவங்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். சிஆர்எஃப் நிதியை ராமநாதபுரம் மாவட்டத்திற்கு கூடுதலாக ஒதுக்கீடு செய்ய உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். அரியநேந்தல் முதல் ராமேஸ்வரம் 4 வழிச்சாலை 2 வழிச்சாலைகள் மட்டும் உள்ளது. ஆனால் அதிலும் 2 வழிச்சாலைகளுக்கு சுங்கவரி வசூலிக்கப்படுகின்றது. 4 வழிச்சாலை இல்லாமல் 2 வழிச்சாலை மட்டும் இருக்கும் இடத்தில் சுங்கவரி வசூலிக்கப்படுவதால் மக்கள் மிகுந்த சிரமத்திற்கு உள்ளாகப்படுகின்றார்கள். எனவே அந்த சாலையில் வசூலிக்கப்படக்கூடிய சுங்க வரி வசூலிப்பதை அரசு பரிசீலிக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். சாலைகளை தரமாக வைத்துக் கொள்வது, புதிய சாலைகளை ஏற்படுத்துவது, சாலைகளை பராமரிப்பதெல்லாம் அரசினுடைய கடமை. இதை மக்களிடம் சுங்க வரி பற்றியே செய்ய வேண்டியது என்பதெல்லாம் ஏற்புடையதில்லை. எனவே குறைந்தபட்சம் 2 வழிச்சாலையில் உள்ள சுங்கவரி வசூல் நிலையங்களை மூடுவதற்கு அரசு முன்வர வேண்டும். சுங்கவரி சாலைகளில் விரைவாக நகர்வதற்காக ஃபாஸ்டாக் முறை கட்டாயப்படுத்தப்படுகின்றது. ஃபாஸ்டாக் இல்லாத வாகனங்களுக்கு இரட்டிப்பு கட்டணம் வசூல் செய்யப்படுகின்றது. ஒரு சில சுங்கச்சாவடிகளில் தொழில்நுட்ப கோளாறு ஏற்படும் போது மக்கள் இரட்டிப்பு கட்டணம் செலுத்தும் நிலைக்கு தள்ளப்படுகின்றார்கள். எனவே மக்களின் சிரமத்தை கருத்தில் கொண்டு இதனை மாற்றி சாதாரண கட்டணமாக ஏற்படுத்த அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். தேசிய நெடுஞ்சாலையில் மேம்பாலங்கள் சீரமைப்பு மற்றும் சாலைகள் சீரமைப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளப்படும் போது கடும் வாகன நெரிசலை சந்திக்க வேண்டியிருக்கின்றது. எனவே சீரமைப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளப்படுவதற்கு முன்பே திட்டமிட்டு வாகன நெரிசலை தடுக்குமாறு மாற்று வழியை ஏற்பாடு செய்த பின் சீரமைப்பு பணிகளை தொடர வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். நன்றி. राजू बिस्ट। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, इस महत्वपूर्ण विषय पे आपने मुझे बोलने का समय दिया। और हमारे जैसे क्षेत्र विशेष करके दार्जिलिंग, कालिंगपुंग, सिलीगुड़ी के लिए और भी महत्व का विषय बन जाता है, क्योंकि हमारे क्षेत्र को पिछले 65 साल से ठगा गया है। हमारे कांग्रेस के साथी, यूपीए के साथी भी हमारे बीच में हैं। पता नहीं कारण क्या रहे होंगे, लेकिन यूपीए के समय में पॉलिसी कुछ ऐसी थी कि जो भी बॉर्डर रीजन है उसकी जो है डेवलपमेंट नहीं करनी, वही अपने आप एक राष्ट्रीय पॉलिसी उन्होंने बना रखी थी। पता नहीं उनके सलाहकार कौन थे। तो मैं आपसे ये भी निवेदन करता हूं सर कि इस दार्जिलिंग क्षेत्र जो 4 इंटरनेशनल बॉर्डर से लगा हुआ क्षेत्र है,
चाइना, भूटान, बांग्लादेश और नेपाल से लगता हुआ ये एरिया है। थोड़ा समय आप हमको जरूर अधिक दें। सबसे पहले तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और नितिन गडकरी जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों के मार्गदर्शन में और लीडरशिप में पिछले 7 सालों से नॉर्थ ईस्ट जैसे क्षेत्र या बॉर्डर के जितने भी रीजन है, हिमालय रीजन में बहुत तेजी से विकास हो रहा है और वो सब आंकड़े भी हमारे समक्ष उपस्थित है जो उसको सत्य करती है। और हमारे मंत्री नितिन गडकरी जी हमेशा एक बात बोलते हैं, बहुत हम सबको प्रेरणा मिलती है। लोग कहते हैं कि अगर हमारा देश विकसित होगा तभी हमारी सड़कें अच्छी बनेंगे, लेकिन वो हमेशा एक बात कहते हैं कि अगर हम अच्छी सड़क बना सकते हैं तो देश अपने आप जरूर विकास करेगा। सर, जैसा कुछ सांसदों ने कहा कि अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा विश्व का सड़क नेटवर्क भारत का है और 65% के आसपास जो है गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन हम सड़क के माध्यम से करते हैं और आज भी 90% से ज्यादा पैसेंजर जो है ट्रैफिक सड़क के माध्यम से ही होती है। 2013-14 तक जहां रोज 12 किलोमीटर की सड़क बनती थी, आज 37 किलोमीटर तक हम पहुंच गए हैं और पिछले 7 सालों में 300% से ज्यादा की वृद्धि इसमें हुई है। अगर इसी तेजी से हम आगे बढ़े तो एक दिन हम अमेरिका को भी पीछे छोड़ देंगे। आप देखिए सर, 65 साल तक जब यूपीए या कांग्रेस का शासन रहा तो देश में करीब 90,000 किलोमीटर का नेशनल हाईवे था। आज 7 साल में बढ़ करके 1.5 लाख किलोमीटर का हो गया है। ये अपने आप में दर्शाता है कि किस तेजी से यह सरकार जो है काम कर रही है और सरकार के साथ साथ इस मंत्रालय से जुड़े हुए सभी अधिकारियों का भी मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा। इतना ही नहीं सर, ग्रीन एनवायरनमेंट, ग्रीन टेक्नोलॉजी को भी बढ़ावा दे रहे हैं जिससे कार्बन फुटप्रिंट कम हो। ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बन रहे हैं, गति शक्ति के बारे में बताया गया, सीमलेस ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देना और साथ ही ये मुझे लगता है एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी जो है ये एक उपयोग होगा। मैं बात करना चाहूंगा कुछ दार्जिलिंग और कुछ बंगाल के विषय में। सर, जैसा मैंने आपको बताया कि बॉर्डर के रीजन आज बहुत तेजी से विकास हो रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में भी बहुत तेजी से विकास हो रहा है। इसके कारण नॉर्थ ईस्ट में पीस भी हो रहा है, डेवलपमेंट भी हो रहा है और आने वाले समय में पूरे देश के लिए ग्रोथ इंजन का काम जो है नॉर्थ बंगाल या नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र अवश्य करने वाला है। सर, कुछ योजनाएं जो मेरे क्षेत्र में चल रहे हैं, मैं उसके बारे में कुछ आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इन सब कामों में बहुत तेजी लाने की आवश्यकता है। और इस विषय को रखने से पहले एक विषय मैं और आपके माध्यम से करना चाहूंगा कि करीब 1.5 लाख करोड़ के आसपास की योजनाओं के ऊपर में पश्चिम बंगाल में आज काम चल रहा है और हमने ये देखा सर, इसको महसूस भी किया कि पश्चिम बंगाल में जब तक 10% से ज्यादा कमीशन अगर कॉन्ट्रैक्टर नहीं देता तो कोई भी काम होता नहीं है। मुझे लगता है 1.5 लाख करोड़ में अगर मंत्रालय ठीक से जो है देखरेख करे तो 15,000 करोड़ से ज्यादा हिंदुस्तान का पैसा हम बचा सकते हैं। सर, हमारे क्षेत्र में 717A जो कालिंगपुंग से होते हुए सिक्किम गैंगटोक तक जाता है, करीब 2400 करोड़ की योजना पे काम चल रही है और ये काम ठीक ठाक तरीके से चल रहा है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि इसमें और तेजी लाया जा सकता है। दूसरा सर, एशियन हाईवे घोषपुर से लेकर के बागडोगरा 4 लेन की सड़क बन रही है, 2022 तक कंप्लीट होनी है। समय बहुत थोड़ा है, इसको थोड़ा और फास्ट करना पड़ेगा। NH34 रायगंज से दालखोला 4 लेन करीब 1000 करोड़ की ये योजना है। इसी तरह सर, सिलीगुड़ी के अंदर में सिलीगुड़ी शहर हिमालय के गोद में बसा हुआ मुझे लगता है भारत का सबसे सुंदर शहर है, लेकिन आज वो पूरा शहर बैठ चुका है ट्रैफिक की समस्या की वजह से और छोटी छोटी सड़कों की वजह से। और हम पश्चिम बंगाल से हम उसकी अपेक्षा भी नहीं रख सकते क्योंकि ऑलरेडी जो है लक्ष्मी हमसे रूठी हुई है और ममता दीदी के कारण जो है आज 6 लाख करोड़ के कर्ज के ऊपर में पश्चिम बंगाल बैठा हुआ है। सर, एक योजना आपने जो है इसकी स्वीकृति दी है, मैं इसके लिए पहले तो बधाई देता हूं मंत्रालय को। बालासन ब्रिज से लेकर के सेवक आर्मी कैंटोनमेंट एरिया तक सारे 12 किलोमीटर का जो है 4 लेन या कहीं कहीं 6 लेन जो है एलिवेटेड रोड बनना है। करीब इसके लिए 990 करोड़ रुपए की स्वीकृति जो इसी बजट में हुई है। मैं चाहता हूं सर ये काम जल्द से जल्द हो
और इसके कारण सिलीगुड़ी का करीब 80% जो ट्रैफिक की समस्या है वो हमारी अच्छी हो जाएगी। इसी तरह सर आज देखिए दार्जिलिंग जाने के लिए सिलीगुड़ी से जो रोड जाता है, सारे रोड जाकर के आधे रोड यानी करशंग में मिल जाते हैं, उसके बाद एक ही रोड होता है और ये अंग्रेज के समय से वही रोड बना हुआ है। हमने एक मांग की थी कि दार्जिलिंग तक पहुंचने के लिए सिलीगुड़ी से अल्टरनेटिव एक हाईवे बने, उसका जो है अभी डीपीआर स्टेज पे है। मैं चाहूंगा कि उसका भी काम जल्द से जल्द हो। सर इसी तरह से जो है NH10 जो कालिंगपुंग और सिक्किम को जोड़ता है और ये रोड आप इसी रोड को उपयोग करते हुए चाइना बॉर्डर तक भी आप जाते हैं, लेकिन NH10 की इतनी खस्ता अवस्था है आज, क्योंकि एक तरफ जो है तीस्ता नदी बहती है और नदी के कारण सड़क जो है विलुप्त होती जा रही है और मंत्रालय ने करीब 1175 करोड़ रुपए के खर्च से जो है 52 किलोमीटर की एक सड़क बनाने की योजना भी रखी है। मैं चाहूंगा इस पे भी बहुत तेजी लाने की आवश्यकता है। सर इसी NH10 में आगे चल के जब एक कोरोनेशन ब्रिज आता है और मंत्री जी हमारे बीच में बैठे हुए, उनको ये अच्छे से जानकारी है, ये अंग्रेज का बना हुआ कोरोनेशन ब्रिज 100 साल हो गया सर, और कभी भी जो है ये किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है और बहुत ही खस्ता अवस्था में ये कोरोनेशन ब्रिज है और मंत्रालय ने इसकी भी स्वीकृति दी है। मैं चाहूंगा कि ये करीब 1100 करोड़ के बजट से जो बनने वाला पुल है करीब 6.5 किलोमीटर का, ये भी जल्द से जल्द हो। सर एक और घोषणा इस बार नितिन गडकरी जी ने की है, गोरखपुर से लेकर के सिलीगुड़ी तक करीब 30,000 करोड़ रुपए के खर्च से एक जो है ग्रीनफील्ड जो है योजना उन्होंने स्वीकृति दी है। मैं चाहूंगा सर ये भी जितना जल्दी काम हो सके, जिससे भारत के दूसरे क्षेत्रों के साथ हमारी कनेक्टिविटी बहुत हो जाएगी। हमको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, ये चिकन नेक एरिया है, लेकिन सर डेवलपमेंट नहीं होने के कारण वो चिकन नेक आज बोटल नेक बन गया है और उस बोटल नेक के कारण जब तक आप सिलीगुड़ी या दार्जिलिंग का विकास नहीं कर सकते तब तक आप नॉर्थ ईस्ट में विकास करने की कल्पना मुझे लगता है वो अधूरी रहेगी। इसके साथ ही रेलवे ओवर ब्रिज और अंडर ब्रिज के करीब 8,000 करोड़ के काम है, वो भी मैं चाहूंगा जल्द से जल्द हो। सर दो बातें आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से रखना चाहूंगा। सर जैसा मैंने कहा सिलीगुड़ी शहर आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है और मैंने मंत्री जी से एक निवेदन किया था कि सिलीगुड़ी के चारों तरफ एक रिंग रोड बने जिस तर्ज पे दिल्ली में बना हुआ है, तो इसकी फिजिबिलिटी जो है वर्कआउट हो रहे। मैं चाहता हूं कि ये काम हमारे क्षेत्र के लिए जल्द से जल्द हो। और सर अंत में एक विषय और है, पर्वत माला योजना, क्योंकि मैं पहाड़ी क्षेत्र से आता हूं और हम सब जानते हैं बहुत कन्वेंशनल ट्रांसपोर्ट के माध्यम से पहाड़ के बहुत सारे क्षेत्रों तक नहीं पहुंचा जा सकता और इस योजना के अंतर्गत 3 स्थान पे दार्जिलिंग में सिंहबाड़ी से लेके सिंगला और बतासे से लेकर के रॉक गार्डन और तुंगसुंग से लेके पंदन तक मेरी इच्छा है कि हमारे दार्जिलिंग के लिए ये 3 रोपवे बने और इसके कारण जो हमारे लोकल लोग हैं, सर मैंने पहले ही कहा था बड़ा सेंसिटिव एरिया सर, बस 2 मिनट मैंने मेरी ये इच्छा है सर कि ये अगर ये 3 रोपवे बनते हैं जो 3 से 4 किलोमीटर के डिस्टेंस वाले होंगे, इसके कारण सर टूरिज्म भी बढ़ेगा और लोकल हमारे वहाँ के लोग हैं उनको भी उसका बहुत फायदा होगा। और इतना सारा विषय रखने के लिए सर मुझे आपने समय दिया, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। मैं मंत्री जी से अंत में यही निवेदन करता हूँ सर कि खास करके पश्चिम बंगाल को लेकर के केंद्र सरकार से हमारी बहुत अपेक्षा है, क्योंकि हमारी सरकार जैसे हमारे अधिरदाबी यहाँ बैठे हुए हैं सर, कभी भी आज तक 3 साल होने के हैं कोई दिशा कमेटी की कोई मीटिंग नहीं हुई और कोई भी योजना जो पश्चिम बंगाल में केंद्र सरकार के पैसे से होती है उसकी जानकारी सांसदों को नहीं होती। मैं ये भी चाहूंगा कि सर आपके माध्यम से जो है स्पीकर सर ने ये अनाउंसमेंट किया था, उनकी ये योजना थी कि हमारे यहाँ हर महीने दिशा कमेटी, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज कैरी ऑन ब्रह्मानंद रेड्डी जी। थैंक यू सर। At the outset, I would like to thank you, the Union Minister, Sri Nitin Gadkari Garu, for recognizing Andhra Pradesh as a positive state committed to the development of public works for the betterment of its people. In the Honorable Minister's recent visit to our state, 51 projects were inaugurated, including Western Bypass Flyover, second at Ben Circle.
The much-awaited eastern bypass, which will reduce the vehicular burden and decrease road accidents between Guntur and Krishna districts, were also sanctioned. 6 greenfield express highways have been sanctioned for our state to be completed over next 5 years, and central support be pledged for the development and growth of our roads and infrastructure, with the promised outlay of 3 lakh crores between now and 2024. We are acknowledging and appreciating these steps. There are some points I would like to bring to your notice. Road safety. In 2018, WHO report 11% of accident-related deaths in the world occur in India. Despite this fund sanction for the road safety in 22-23 are less than 0.2% of the ministry's total budget. For comparison, countries like USA spend up to 6% of the highway budget on road safety. Pending works. Narsipatnam, Sambavaram Junction Road and Narsipatnam and Thuni Road. Since 2021, state representatives have been requesting that the Narsipatnam, Sambavaram Junction Road and Narsipatnam Thuni Road to be declared as a national way. These 2 roads are already connected to the national ways such as Kolkata, Chennai and Raipur, Visakhapatnam, and state highways such as Voddadi, Paderu and Anakapalli, Chodavaram Road. Development of the aforementioned road into NHS would ease traffic and further the development of state by connecting integral national and state highways. Multimodal Logistics. The Andhra Pradesh government has urged the centre to establish the Multimodal Logistics Park at Komparthi in Kurnool district of Andhra Pradesh. The ministry has not mentioned this in demand for grants 21-22. Pending CFS license for the Multimodal Logistics Park at Visakhapatnam. Additionally, in the issuance of CFS license for the Multimodal Logistics Hub at Visakhapatnam remains unfulfilled till date. Despite the park being sanctioned in 2014, the non-issuance of the license in hampering the full realization of the park's economic potential. I request that the ministry coordinate with the Ministry of Ports, Ship and Waterways to expedite the same. Conclusion. Our dreams of realization of certain creation of public works and job along with its will only work if we do not falter at the stage of implementation. With regards to this, I would like to add the vacancies in NHAI must be filled at the earliest to ensure maximum efficiency. The government has initiated some ambitious plans, but have no doubt they will be realized. So I hope to see a positive change take place and greater efficiency with respect to our road infrastructure dreams, not just for the people of Andhra Pradesh, but the whole country. Thank you, sir. Thank you. Sri Alok Kumar Suman. धन्यवाद सभापति महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने डिमांड फॉर ग्रांट्स अंडर कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज पर अपनी बात रखने का मौका दिया। महोदय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की मांग संख्या 86 के अनुसार वर्ष 2021-22 में संशोधित आवंटन 1,31,149.07 करोड़ रुपए था, जिसे बढ़ाकर बजट 2022-23 में 1,99,107.71 करोड़ किया गया है, जो 52% के लगभग है। इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं एवं आभार व्यक्त करता हूं। महोदय, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2022-23 में सक्रिय राजमार्गों पर 2,42,020 करोड़ रुपए खर्च करने का लक्ष्य रखा है, जिसमें बजटीय परिव्यय के माध्यम से 1,87,020 करोड़ रुपए, IEBR से 1 लाख रुपए,
VIT से माध्यम से 10,000 करोड़ रुपए, SPV के माध्यम से 15,000 करोड़ रुपए और निजी निवेश के माध्यम से 30,000 करोड़ रुपए शामिल है। वर्ष 2022-23 के लिए मंत्रालय ने 12,000 किलोमीटर का कार्य अवार्डेड कर चुका है और 12,000 किलोमीटर निर्माण का NH का बनाने का लक्ष्य है, जिससे हमारे देश की प्रगति और विकास को बल मिलेगा। महोदय, भारतमाला परियोजना के पहले चरण में कुल 20,632 किलोमीटर लंबाई के निर्माण का कार्य सौंप दिया गया है और दिसंबर 2022 तक 7,375 किलोमीटर सड़क का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। भारतमाला परियोजना के पहले चरण का निर्माण वर्ष 2027 तक पूरा कर लेना है। महोदय, हमारे बिहार में हमारे माननीय दूरदर्शी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, जिसमें बिहार में पहले सड़क के नाम पर केवल गड्ढे थे, उसको डबल इंजन की सरकार में उन्होंने गली गली गांव-गांव तक सड़क पहुंचा दी। लेकिन मैं आपके माध्यम से मैंने यहाँ माननीय मंत्री जी से उनका ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र गोपालगंज के सारण बांध की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ, जो सोनपुर से शुरू होकर यूपी के बॉर्डर सिसमा तक जाती है और दोनों राज्यों के विभिन्न जिले के कृषि बिजनेस सेंटर को जोड़ती है। इसका लगभग आधे से ज्यादा हिस्सा जो सारण छपरा संसदीय क्षेत्र में पड़ता है, माननीय मंत्री जी के द्वारा स्वीकृति के साथ आवंटन भी दे दी गई है। अतः माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि बाकी बचे सारण बांध जो डुमरिया घाट से सिसमा यूपी बॉर्डर तक है, उसको राष्ट्रीय राजमार्ग में शामिल कर हाईवे का काम शुरू कराया जाए। इससे कई जिले के लोगों को राजधानी पटना से जुड़ने का सीधा मार्ग मिल जाएगा और कृषि एवं अन्य व्यापार एवं रोजगार का भी सृजन होगा। महोदय, NH-27 जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का पार्ट है, गोपालगंज शहर में एलिवेटेड रोड 10 वर्षों से ज्यादा समय से लंबित था। वो अब आपके आशीर्वाद से बनने की प्रक्रिया शुरू है, लेकिन धीमी गति से बन रही है। इसका निर्माण समय से पूरा करने के लिए आप अपने स्तर से आदेश निर्गत करने की कृपा करेंगे। साथ साथ NH-27 के गंडक नदी पर वर्षों से लंबित पुल का निर्माण कार्य भी जल्द शुरू करने का आदेश निर्गत करेंगे। महोदय, NH-27 जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है में गोपालगंज जिले के क्षेत्र में अधूरे डिवाइडर, अधूरे प्लांटेशन, अधूरे बैरिकेटिंग एवं जगह जगह गड्ढे हैं जो दुर्घटना के कारण बनते हैं। प्रोजेक्ट डायरेक्टर का भी पद 1 वर्ष से खाली है, जिस पर मंत्री जी की विशेष आशीर्वाद की जरूरत है, क्योंकि बिहार पर आपकी विशेष कृपा रहती है। अंत में मैं इस डिमांड फॉर ग्रांट पर अपनी बात रखते हुए माननीय मंत्री जी से पुनः निवेदन करता हूं कि NH-19 जो नियर बक्कर घाट भाया मकेर तरैया राजापट्टी बैकुंठपुर डुमरिया घाट तक राष्ट्रीय राजमार्ग का काम शुरू है, जिसे डुमरिया घाट से विस्तारित कर सिसमा यूपी बॉर्डर तक हो जाता है, तो NH-19, NH-27 और NH-28 भी इससे जुड़ जाएंगे। इससे न केवल बिहार की लगभग 2 करोड़ की आबादी एवं साथ साथ यूपी के सीमांत कृषि आधारित गांव एवं जिले जुड़ जाएंगे और राजधानी पटना की दूरी भी कई जिलों से 3 से 5 घंटे कम हो जाएगी तथा 350 गांवों का विकास के साथ साथ आर्थिक एवं सामाजिक पिछड़ापन भी दूर होगा, रोजगार का सृजन होगा। अतः महोदय, मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात समाप्त करते हुए डिमांड फॉर ग्रांट्स का समर्थन करता हूं। धन्यवाद सभापति महोदय। थैंक यू। ऑनरेबल मेंबर दल सिंह बिसन। सभापति महोदय, आदरणीय सभापति महोदय, मैं आज सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अनुदान मांगों का समर्थन करते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, सड़क परिवहन मंत्री आदरणीय हमारे गडकरी जी, VK सिंह जी का बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि जिनकी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण से आज हमारा यह जो राजमार्ग विभाग है 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन की सड़कें बना रहा है। एक से एक हवाई पुल का निर्माण हो रहा है। अंतर्राज्यीय मार्गों पर, सीमाओं पर पुलों का लगातार निर्माण करके नए नए विकास के आयाम गढ़ते चला जा रहा है। सभापति महोदय, मैं इस अवसर पर देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद करना चाहूँगा और उनको श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए कहना चाहता हूँ कि देश के ऐसे पहले यशस्वी प्रधानमंत्री जिन्होंने गाँव के लोगों के लिए पक्की सड़कों का जिन्होंने सपना देखा
और उनके सपनों को पूरा करने में गडकरी जी ने बड़ा योगदान दिया, इसलिए पुनः इनका आभार व्यक्त करते हुए एक बात बताना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र से कश्मीर से कन्याकुमारी NH7 जाता है। इस NH7 को उस समय पर तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल जी के समय पर स्वीकृत किया गया था। किस तरह से पिछली सरकारें विकास के काम में रोड़ा बनती है, सभापति महोदय, मैं उसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण मेरे लोकसभा क्षेत्र का मेरा सिवनी होम टाउन है, उसमें मेरे यहाँ पर एक जब सड़क स्वीकृत हुई थी तो ये स्वर्णिम चतुर्भुज के अंतर्गत स्वीकृत हुई थी, पर इसको लगातार 10 वर्षों तक अटकाया गया, बनने नहीं दी गया, कोर्ट में केस लगाए गए, NGOs के माध्यम से लटकाने का काम किया। पर जब 2014 में मोदी जी की सरकार आई और उस समय पर फिर गडकरी जी भी मिनिस्टर बने, तब जाकर इस योजना को स्वीकृति मिली। और यह आज जो मेरी मोहगांव से सड़क तक जो नागपुर को सड़क जोड़ती है, यह एशिया का पहला ऐसा सड़क मार्ग बना है जो साउंड प्रूफ है, जिसमें हमारे यहाँ पर पेंच नेशनल पार्क है, वहाँ से सारे जो हमारे जंगली जानवर हैं, जितने वन्य पशु हैं, उनका भी सुविधा का ध्यान रखा। केवल 8 किलोमीटर के मार्ग 900 करोड़ रुपए में बना के ऐसा मार्ग बना के दिया, इसकी जितनी तारीफ की जाए, एशिया का पहला ऐसा मार्ग है। और पेंच नेशनल पार्क है जहाँ हमारे दुनिया के लोग पेंच नेशनल पार्क आते हैं, पर जबलपुर से नागपुर के बीच में ये स्थिति थी कि हमको 4-6 घंटे भी लगते थे तो न नागपुर तरफ से पहुंच पाते थे न जबलपुर तरफ से। पर आज की स्थिति में नागपुर से 1.5 घंटे में हम पेंच पहुंच सकते हैं, 2.5 घंटे में जबलपुर से पेंच आ सकते हैं। तो सभापति महोदय, ऐसे अद्भुत काम के लिए मैं गडकरी जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगा। और इसी तरह से कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि सड़कों के बनने के कारण से आज जिस तरह से शिक्षा में हो, चिकित्सा में हो, सारी सुविधाएं प्राप्त हुई हैं और जिनके कारण से यह देश बहुत तेजी के साथ आगे विकास में बढ़ा है। सभापति महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस समय हमारा भारत देश दुनिया का दूसरे नंबर का देश है जहां सर्वाधिक लंबाई की सड़कें हैं, लगभग 64.45 लाख किलोमीटर सड़कें हैं। यह अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा लंबी सड़कों का देश है। सभापति महोदय, इस अवसर पर यह भी बताना चाहूंगा कि जिस तरह से शरीर में धमनियों का महत्व होता है, ऐसे देश के शरीर के विकास के लिए धमनियों का महत्व है, अच्छे रक्त के संचालन के लिए धमनियों का महत्व है, ऐसे ही देश के विकास के लिए अच्छी सड़कों के होने का महत्व है। और इस काम को करने के लिए आदरणीय गडकरी जी ने जिस तरह की व्यवस्था बनाई, सभापति महोदय बताना चाहूंगा कि जहाँ पहले बजट के पूर्व 1914-15 में जहाँ सड़क केवल 91,287 किलोमीटर सड़क थी, आज 21-22 में लगभग 1,41,190 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई जा चुकी है। इसी तरह जो बजट 14-15 के समय जो था, उससे लेकर आज की तारीख में 3 गुने से ज्यादा 1,99,000 करोड़ का बजट दे करके इन सारे कामों को करने का काम मार्ग प्रशस्त किया है। इस तरह से 7 साल में लगभग मोदी जी के कार्यकाल में, गडकरी जी के इस कार्यकाल में 7 साल में 1.5 गुना राशि भी दी और सड़कों को भी बनाने का काम किया है सभापति महोदय। और इसीलिए कहा जाता है कि मोदी है तो मुमकिन है, और गडकरी जी का जो विजन है आज देश को बहुत ऊंचाइयों की ओर ले जाने का काम कर रहे हैं। सभापति महोदय, मैं इस अवसर पर आदरणीय गडकरी जी को और इधर से धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने CRIF के अंतर्गत हमारी सड़कों को स्वीकृत करने का काम किया, जिससे मेरे यहाँ पर एक बंडोल से कोहका सड़क लगभग 40 किलोमीटर की सड़क है, उसका निर्माण होगा, जो कि हमारे NH7 को और बालाघाट से हमारे सिवनी से छिंदवाड़ा वाले मार्ग को इंटरकनेक्टिविटी का 40 किलोमीटर का एक मार्ग बनेगा। इसी तरह से सभापति महोदय, मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगा कि जब पूर्व हमारे राजमार्ग मंत्री थे हमारे पड़ोसी छिंदवाड़ा के, तो उन्होंने अपने यहाँ जितने सड़कें बनाई, जितने NH बनाए, पर टोल अपने क्षेत्र में नहीं लगने दिया, उनको अन्य जिलों की तरफ स्थानांतरित किया। मेरे सिवनी में इतने ज्यादा टोल हो गए थे, एक NH का एक टोल हटाने का भी काम किया है, जिसकी बहुत जनता की मांग थी। पर मैं इसी तरह की एक मांग करना चाहता हूं कि जो छिंदवाड़ा से सिवनी के बीच में, सिवनी से केवल 15 किलोमीटर दूर लाके टोल लगा दिया गया है, जबकि हमारी दूरी 25 किलोमीटर पड़ती है। तो जनता की मांग है कि कम से कम उसको बॉर्डर पे लगाया जाए, ताकि हमको केवल शहर से निकलने वाले व्यक्ति सिवनी जिले में जाना है तो टैक्स देना है और छिंदवाड़ा के लोगों को देना नहीं पड़ता, तो कम से कम उसकी सुविधा हमारी जनता को मिले। सभापति महोदय, मैं आज आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि जिस तरह गडकरी जी ने नए आयाम गढ़े हैं, तो इसके अंतर्गत मेरी एक डिमांड है मेरे लोकसभा क्षेत्र की। मेरा लोकसभा क्षेत्र में एक और अभ्यारण्य है, कान्हा नेशनल पार्क, और कान्हा नेशनल पार्क के लिए लोग अभी हवाई मार्ग से ही आते हैं, और बालाघाट जिले में अभी एक भी NH नहीं है, और इस समय पर वहां पर सड़कें नहीं होने से वहां पर रेल मार्ग में भी और ना भी कोई बाईपास है, तो इसके कारण से हमको बहुत दिक्कत होती है चारों तरफ। 2 मिनट बस मैं अपनी मांग बात कर सकता। तो उसमें क्या है कि मुझे
मैंने जो मांग कर रखी थी मंत्री जी से कि बालाघाट से भंडारा को उससे जोड़ दिया जाए, तो हमको नागपुर के लिए हमारे को इलाज के लिए जाना पड़ता है, तो बालाघाट भंडारा मार्ग है। ऐसे ही मेरा सिवनी से लेकर तुमसर मार्ग जोड़ दिया जाता है, तो ये हमारा गनगरेज फैक्ट्री जबलपुर टू भंडारा को जोड़ने के लिए सीधा मार्ग होगा, जो अभी नागपुर होके जाता है। इसी तरह सभापति महोदय, कान्हा जाने के लिए नागपुर से बालाघाट लोग आते हैं, तो ये एनएच बनेगा, और ऐसी बालाघाट से कान्हा के लिए गढ़ी लेके आमानाला तक भाई हमारे महाराष्ट्र की सीमा तक बना दिया जाता है, तो कान्हा में लोगों को आने की सुविधा मिलेगी। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से गोंदिया से लेके बालाघाट तक 4 लेन का काम की स्वीकृति दी है, और मेरे यहाँ सिवनी से लेकर रायपुर के लिए सीधा मार्ग है, तो बालाघाट से लेकर सिवनी तक 4 लेन का मार्ग का निर्माण किया जाए। सिवनी मंडला मार्ग भी है, कान्हा यदि जाना है तो सिवनी होकर जाते हैं, तो कान्हा जाने के लिए तो सिवनी मंडला एनएच भी किया जाए। अध्यक्ष महोदय, अंतिम बात, मेरे यहाँ पर सिवनी में भी रेल के काम के पहले एनएच बना दिया गया, पर उस समय पर हवाई पुल बना के देने का काम नहीं किया गया। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सिवनी से छिंदवाड़ा मार्ग पर, सिवनी से मंडला आपके नागपुर मार्ग पर, और जो हमारा खैरी टेक, एक अंतिम है, खैरी टेक से लेकर के जो नंगझर तक NH7 था, उसको बना के देने का काम उस समय में नहीं किया गया। वन टाइम में बना के देना था, उसको ठीक से बना के नहीं दिया गया है, आधा अधूरा बना के उस समय दे दिया, ट्रांसफर कर दिया, और इसलिए मंत्री जी ने इसमें सहमति भी प्रदान की है। तो मेरा विभाग से आग्रह है कि हमारे सिवनी शहर के अंदर से जो गुजरने वाला 11 किलोमीटर का मार्ग है, उसको भी 4 लेन बना के दें, ताकि सिवनी शहर जो नागपुर और जबलपुर के बीच का मार्ग है, इसको जनता की सुविधा मिल सके। आपने एक अंतिम बात, अभी माननीय मंत्री सभापति में एक अंतिम बात कह के, मेरा जो है वो महाराष्ट्र से लगा हुआ प्रांत आता है, और मेरे यहाँ पर बालाघाट से नागपुर जाने के लिए बोनकट्टा में एक पुल पड़ता है, वो महाराष्ट्र का पुल आता है, और उसके लिए कहीं से राशि मिल नहीं रही, महाराष्ट्र सरकार उसको आवंटित नहीं कर रही। मैंने माननीय मंत्री जी से मांग रखी थी, उन्होंने अपनी सहमति भी दी है, तो बोनकट्टा पर अंतर्राज्यीय एक पुल बना के देने का कष्ट करेंगे, तो जनता को बहुत सुविधा मिलेगी। अभी हमारी केवल 2 व्हीलर गाड़ियां, 4 व्हीलर गाड़ियां निकल रही, बड़े वाहन जा नहीं रहे, इससे हमें इलाज कराने जाना हो, हमारे यहाँ के लोगों को व्यापार के लिए जाना हो, तो मैं केवल इतना कहते हुए आपने मुझे समय दिया, मैं पुनः अनुदान मांगों का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। மாண்புமிகு தலைவர் அவர்களுக்கு எனது வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். The road transportation infrastructure is crucial for economic development and social integration of this country. Road transport has emerged as the dominant segment in India. Transportation is a sector. Road transport also acts as a feeder of service and railway, shipping and air traffic in our country. The national highways acts very important role of the road network in the country. Minister of Roads, Transport and Highway, the primarily responsible for the development of the national highway, work of which are sanctioned under the different schemes such as a Bharatmala Priyojana. Sir, particularly in Tamil Nadu, therefore, 25 NH projects pending in the sector. In Bharatmala, in my constituency, Nagapattinam has 100 kilometers long coastal area having non-major ports, fisheries port in namely Arkatturai, Serudur, Nambiyarkuppam, Nahur and Pattinacheri, Samandanpettai. I request the government of allocate these funds under the Bharatmala Priyojana development connectivity of there are in improve the livelihood of fishermen and economically. Sir, there are many national highway roads projects are in my constituency area are long pending. The government should give priority to and complete the projects for easy and smooth movement of the common people. The road work from Tanjavur to Nagapattinam, NH 83, old number 67 was started 2017 for a long bending, length of 66 kilometers and 6 years past length of 40 kilometers, which is still bending for
completion. I request the Minister to give a special attention and allocate more fund, complete the project. The NH45A Nagapattinam to Viluppuram sector for a length of 155 kilometers in slow progress. Third, Vigravandi and Tanjavur NH45C bending, Nagapattinam Kanyakumari NH45A 333 kilometers still preparation of DPR stage and a special priority should be given the start work of this road project. Trichy Vedaranyam via Mannargudi sector, government announced the sector as a national highway, but so far not allocate the fund and is it still in survey level. This road is a Rajaji has marched in the route during the Salt Satyagraha, Agasthyamballi, which was the historical movement. Sir, during the discussion, I want to point out that our Tamil Nadu Chief Minister, Thalapathy M.K. Stalin, sanctioned the 136 crores, the development and improved the road, ECR road. I congratulate our Honorable Chief Minister, M.K. Stalin. I point out some points. First, they strongly oppose the outsourcing workers. Strongly I oppose the outsourcing workers in the road sector. And second, the Transport Ministry easily create the class 4 workers, so you can utilize the class 4 workers in permanently. During the discussion, I point out this, install the CCTV camera for the ensuring the safety and identify the lawbreakers. Should be improved road quality for the all NH roads. I want to expand from the domestic vehicles in toll-free. Exemption to the domestic vehicle in the toll-free in Salvag and Tamil Nadu, particularly in Tamil Nadu, every 50 kilometers, one toll-free is there. So kindly, it is be throughout this in all Tamil Nadu is a very important issue. Thank you, sir. Shri Ram Shiramani Verma. माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे सड़क परिवहन एवं राजमार्ग के अनुदानों पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महोदय, मेरा संसदीय क्षेत्र श्रावस्ती आकांक्षी जिलों में आता है। इस संसदीय क्षेत्र में 2 जिले श्रावस्ती और बलरामपुर आते हैं। इस क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं की तरफ आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। जैसे देवीपाटन तुलसीपुर में नए बस स्टॉप बनाने की आवश्यकता है। बलरामपुर जनपद में बस स्टॉप पर पर्याप्त सुविधा नहीं है, जैसे यात्रियों के बैठने के लिए प्रतीक्षालय, स्वच्छ पेयजल के साथ साथ सुलभ शौचालय एवं साफ सफाई की अच्छी व्यवस्था कराई जाए। बहराइच का ककरदरी मार्ग का निर्माण कार्य बहुत ही मंद गति से चल रहा है। इस कार्य में तेजी लाने की आवश्यकता है। श्रावस्ती जनपद में भिनगा लक्ष्मणपुर बाजार मार्ग निर्माण बहुत धीरे प्रगति में बन रहा है। इस कार्य में तेजी लाने की बहुत ही आवश्यकता है। जनपद बलरामपुर में हरिहरगंज बाजार से ललिया शिवपुरा बरदौलिया बनकटवा मार्ग का चौड़ीकरण व सुंदरीकरण कराने की आवश्यकता है। जनपद बलरामपुर में उतरौला बलरामपुर मार्ग से महेशवारी तिराहा से बाबागंज संपर्क मार्ग का चौड़ीकरण होना अति आवश्यक है। जनपद बलरामपुर में चंदनपुर पचपेड़वा उतरौला मार्ग का चौड़ीकरण कराने की बहुत ही आवश्यकता है। जनपद बलरामपुर में बालपुर तिलकपुर संपर्क मार्ग का चौड़ीकरण होना अति आवश्यक है, जो बलरामपुर जनपद में श्रावस्ती जनपद को जोड़ने का कार्य करता है। जनपद श्रावस्ती में भिनगा, इकौना, गिलौला, जमनहा, श्रावस्ती, सिरसिया में बस स्टॉप पर यात्रियों के लिए
प्रतीक्षालय, कक्ष एवं पेयजल, शौचालय की भी व्यवस्था कराई जाए। साथ साथ श्रावस्ती जनपद में हवाई अड्डे का निर्माण हुआ था और आज भी उसका संचालन नहीं हो पा रहा है और वो बौद्ध स्थल भी है। तो मैं चाहूँगा कि उसका भी संचालन जल्द से जल्द शुरू किया जाए। मैं माननीय मंत्री जी से चाहूँगा कि इन बिंदुओं पर गंभीरता से विचार करने की सख्त जरूरत है, क्योंकि ये मेरा लोकसभा क्षेत्र अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, माइनॉरिटी एवं सामान्य वर्ग यानी बहुसंख्यक आबादी वाला क्षेत्र है। यह क्षेत्र नेपाल की सीमा से सटा हुआ क्षेत्र है, तराई क्षेत्र है एवं हमेशा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है एवं नेपाली पहाड़ी नालों से सटा हुआ भी है। इस पर विशेष पैकेज देकर के क्षेत्र को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है एवं साथ ही साथ पूरे देश एवं प्रदेश में भी सड़क परिवहन एवं राजमार्ग पर विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। धन्यवाद। थैंक यू। श्री संतोष चौधरी। धन्यवाद सभापति जी, आपने मुझे डिमांड्स फॉर ग्रांट्स अंडर ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे डिपार्टमेंट पर बोलने का मौका दिया। सभापति जी, ये जो फ्लाईओवर्स बनते हैं ये लोगों की सुविधा के लिए बनते हैं, लेकिन अगर इनकी डिजाइनिंग प्रॉपर ना हो तो कई दफा ये सुविधा का कारण बन जाते हैं। इन्हीं में से जो जलंधर नेशनल हाईवे जब लुधियाना से जलंधर एंटर करते हैं, जलंधर डिस्ट्रिक्ट, तो जो फर्स्ट फ्लाईओवर है, पहला फ्लाईओवर है, वो फ्लोर फ्लाईओवर है, जो कि फ्लोर का जो टाउन है, सिटी है, उसके ऊपर से गुजरता है। लेकिन मैं समझता हूं कि जब इसकी डिजाइनिंग की गई तो ये नहीं देखा गया कि फ्लोर में एंट्री पॉइंट कहां से रखना है, एग्जिट पॉइंट कहां से रखना है। तो ये एक बड़ी असुविधा का कारण बन गया है और ना ही तो इसको प्रॉपर एंट्री है फ्लोर शहर में, ना ही प्रॉपर एग्जिट है। जो फ्लोर शहर का बस स्टैंड है उसका भी कोई प्रॉपर एंट्री और एग्जिट नहीं है, वो बिल्कुल डिसफंक्शन हो गया है, वो डिफंक्ट हो गया है। तो जो बस स्टैंड है वो फ्लाईओवर के ऊपर लोग खड़े होकर बसें पकड़ते हैं, वहां उतरते हैं। तो मैं आपसे ये अनुरोध करना चाहता हूं कि ये एक बहुत बड़ी असुविधा है कि इस फ्लाईओवर को की रीडिजाइनिंग की जाए और ये जो फ्लोर शहर की कठिनाइयां इनको दूर किया जाए। फ्लोर का कारोबार खत्म हो गया है, फ्लोर के जो दुकानदार हैं वो उनकी बिक्री नहीं हो रही, वो घर बैठे हैं। सो एक बहुत असुविधा का कारण है। इसी तरह सभापति जी, जो नेक्स्ट जो फ्लाईओवर जलंधर जो पीएपी जंक्शन है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट जंक्शन है, जहां से जलंधर से बाहर जो दिल्ली साइड आते हैं वो लोग जाते हैं, जो बॉर्डर तरफ अमृतसर साइड पे जाते हैं वो जाते हैं। लेकिन जो अमृतसर साइड पे जो एग्जिट है, जो जाने का रास्ता है, वो प्रॉपर नहीं है। वहां से जंक्शन से 1.5 किलोमीटर पहले दिल्ली साइड जाना पड़ता है, फिर 1.5 किलोमीटर वापस आके फिर उसको फ्लाईओवर को पकड़ना पड़ता है। हमने रेलवे डिपार्टमेंट को भी रिक्वेस्ट की है कि जो आरओबी है पीएपी जंक्शन के ऊपर, उसको एक्सपेंड किया जाए, उसको एक्सटेंड किया जाए। तो मेरा ये आपसे अनुरोध है कि ये रेलवे से कोऑर्डिनेट करके वो जो आरओबी है उसको जल्दी से जल्दी उसको प्रॉपर किया जाए। इसी तरह सर, जो इसके आगे चिगिट्टी एंड सूर्य एनक्लेव जंक्शन है, वहाँ जो 6 लेन जो रोड है वो एब्रप्टली 4 लेन में मर्ज हो जाती है, जिसके कारण बहुत एक्सीडेंट होते हैं। तो मेरा ये भी अनुरोध है कि इसको भी रीडिजाइन किया जाए। और इसी तरह दूसरा मेरा पॉइंट ये है कि जो एनएच पर जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स है, जो साइड्स पे ड्रेन्स है, ये जहाँ बंद है, जहाँ ये लोअर क्वालिटी है, इसका कोई डिस्चार्ज पानी का कहीं हो नहीं रहा, सड़कें टूट रही हैं। मेरे इसी एनएच पे जो आगे पठानकोट का जो रोड आता है, ट्रांसपोर्ट नगर आता है, वहाँ जो ड्रेनेज सिस्टम है बिल्कुल खत्म हो चुका है
और जब बारिश होती है तो सारे शहर में पानी पानी हो जाता है। इसी तरह होशियारपुर रोड पे एक शेखा गांव का फ्लाईओवर है, उसकी भी साइड जो ड्रेनेज सिस्टम है वो बंद हो चुका है। तो ये ड्रेनेज सिस्टम को सुधारने के लिए कोई पुख्ता इंतजाम किए जाएं, ये मेरी आपसे अनुरोध है। तीसरा मेरा पॉइंट है कि आदमपुर जो नेशनल हाईवे 03 जो 4 लेनिंग ऑफ जलंधर टू होशियारपुर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बहुत महत्वपूर्ण सड़क है कि यहाँ बहुत पिलग्रिमेज माता चिंतपूर्णी जाते हैं, माता ज्वालामुखी जाते हैं, बहुत लोग वहाँ ट्रेवल करते हैं। और आदमपुर इस फ्लाईओवर को क्रॉस करके आदमपुर अभी जो हमारा हवाई अड्डा बना है वो है। तो लेकिन इसका जो कट ऑफ डेट है वो 31/12/22 है, लेकिन अब तक वहाँ पिलर ही नहीं खड़े हुए। और जो शहर के साइड पे दोनों साइड लेन्स है वो बंद हैं, चिक्कड़ है, वहाँ पानी है, शहर का कारोबार खत्म हो गया, कोई लोग अंदर जा नहीं सकते, कोई बाहर आ नहीं सकते। तो मेरा ये आपसे अनुरोध है कि ये आदेश दिए जाएं NH जो डिपार्टमेंट उसको कि ये जो प्रोजेक्ट है इसको फौरी तौर पे इसको मुकम्मल किया जाए। और जब तक ये नहीं हो रहा उसकी जो साइड की सड़कें हैं, जो साइड लेन्स हैं, उनको पक्का किया जाए, उनको प्रॉपर किया जाए, ताकि ये जो ट्रैफिक की असुविधा हो रही है वो खत्म हो सके। सो मैं इन्हीं बातों से आपका फिर धन्यवाद करता हूँ और सरकार को अनुरोध करता हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट को, कि मेरे जो मुद्दे हैं उन पर ध्यान दिया जाए। ये बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, इनको एड्रेस किया जाए। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। ऑनरेबल मेंबर श्री उदय प्रताप सिंह। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के अनुदान की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ और माननीय मंत्री श्री गडकरी जी और इस देश में जिन्होंने सेना को लीड किया और अब हमारे सड़क के तंत्र को नेतृत्व दे रहे हैं, ऐसे हमारे जनरल VK सिंह साहब को भी मैं दोनों मंत्रियों का बहुत धन्यवाद भी करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं कि आपके प्रयासों से इस देश में सड़कों के प्रति और विकास के प्रति एक नई सोच और एक नया वातावरण बना है। सभापति महोदय, हमारे मंत्रालय को जो बजट में प्रावधान किया गया, और मुझे लगता है कि वो और ज्यादा आवश्यकता थी सड़क परिवहन मंत्रालय को जो बजट मिला है, उसमें अगर इसको और बढ़ोतरी की जाती तो मुझे लगता है कि देश में शायद काम करने के लिए मंत्रालय को और आसानी होती। मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्रालय से भी आग्रह करूंगा कि सड़क हमारा एक ऐसा विकास, हमारा एक ऐसा सेक्टर है जो देश में बाजार और प्रगति का एक द्योतक है, तो इसके ऊपर जितना फोकस किया जाएगा देश उतनी प्रगति करेगा, उतना आगे बढ़ेगा। 25,000 किलोमीटर और का अगले वर्ष प्रावधान और 20,000 करोड़ की व्यवस्था करने के संकल्प के साथ मंत्रालय आगे बढ़ा है। मैं स्मरण कराना चाहता हूं कि जो कॉरिडोर स्वर्गीय प्रधानमंत्री माननीय वाजपेयी जी के समय नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का जो प्रावधान उस समय किया गया था, अगर वो चीज नहीं होती, आज देश में वो महत्वपूर्ण 4 बड़े मार्ग नहीं बने होते, तो शायद जो कनेक्टिविटी देश में आज है वो हम उतनी बेहतर कनेक्टिविटी इस देश को नहीं दे पाते। दूसरा जो मंत्रालय विशेष रूप से काम कर रहा है कि दुर्घटना रहित मार्ग होना चाहिए। जो एक्सीडेंटल उन एरियाज थे उनको ठीक करके दुर्घटनाएं कम हो, इसको केंद्रित करके जो डिपार्टमेंट काम कर रहा है, मुझे लगता है कि उसको प्रशंसा मिलनी चाहिए। उसकी हम आपके माध्यम से सदन में भी बहुत प्रशंसा करते हैं, उसके प्रति मंत्रालय का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। माननीय सभापति महोदय, सड़क प्रगति तो लेकर आती है, साथ ही विकास और बाजार भी पैदा करती है। मेरा संसदीय क्षेत्र इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर मेरे संसदीय क्षेत्र से होकर तक गुजरता है। उसके पहले की परिस्थितियां, आज की परिस्थितियां, जमीन और आसमान का अंतर है। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी यहाँ पर बैठे हैं, इनसे आग्रह करना चाहता हूं कि सड़कों के ऊपर जितना हो सके हम देश में सांसदों को उनके एक अनुकूल परिस्थितियां उनको मिलनी चाहिए। CRF से पहले सांसद के आग्रह पर CRF में हम लोगों को फंड मिलता था, लेकिन आजकल उसमें प्रावधान में परिवर्तन किया गया है, तो CRF में हमारी अनुशंसाएं शायद उतनी शामिल नहीं की जाती जितनी पहले की जाती थी। मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि CRF का जो फंड है, सेंट्रल रोड फंड जो है, क्योंकि सांसदों के पास सीधे कोई फंड देने की कहीं कोई व्यवस्था नहीं होती, कम से कम इसमें साझेदार सांसद को सीधे तौर पर रखा जाए, मंत्रालय से मेरा आग्रह है।
दूसरा एक बड़ा विसंगति इस देश में है, टोल नाके लगे हुए हैं। टोल देने में दिक्कत नहीं है, लेकिन टोल के कारण जो एक हर्डल फ्री जो एक मूवमेंट गाड़ियों का रहता है उसको कहीं ना कहीं रोक लगती है, और टोल के कारण कई बार विसंगतियां पैदा होती हैं। खासकर मेरा आग्रह है कि जहां पर टोल स्थापित होता है उससे 10 किलोमीटर का जो स्थान है, उस 10 किलोमीटर में लोग दैनिक आवागमन करने वाले किसान हैं, बाजार जाने वाले लोग हैं, स्कूल पढ़ने वाले बच्चों की गाड़ियां हैं, ऐसे अनेक चीज होती हैं जिनको कि अनावश्यक बहुत पैसा भी लगता है और व्यवधान भी पैदा होता है। मेरी बात से शायद पूरा सदन भी सहमत होगा कि अगर टोल के नजदीक 10 किलोमीटर रहने वाले लोग अपना प्रमाणित रूप से कोई वहां टोल पर अपनी बताते हैं कि हम 10 किलोमीटर की सीमा में रहते हैं, तो उनको टोल फ्री उनको 10 किलोमीटर परिधि के लोगों को या महीने में 5 बार 7 बार उनसे टोल लिया जाए। इस तरह का कोई एक सिस्टम, एक मैकेनिज्म डेवलप होना चाहिए। मैं आपको अभी का उदाहरण बताता हूं। हमारा जबलपुर भोपाल नया जो हाईवे तैयार हुआ है, वहां बरेली के पास, उदयपुरा के पास अन्य कई जगह हैं जहां रोज लोग निकलते हैं और दिन में अनेक बार उनको टोल देना पड़ता है। मंथली पास के बाद भी उसकी एक मैक्सिमम कैपिंग है, तो इसमें कोई ना कोई संशोधन मंत्रालय करेगा, ऐसा मेरा आग्रह है। दूसरा मेरा एक अनुरोध है कि पुराना जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है, उसका जो डीपीआर तैयार किया गया था उसमें बहुत ज्यादा मुझे लगता है जल्दबाजी में तैयार किया गया था। कई जगह ऐसी जहां बहुत दुर्घटनाएं आज भी हो रही हैं, तो उस पर काम करने की जरूरत है। और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के ऊपर खास करके सागर, नरसिंहपुर और जो लखनऊ नागपुर की तरफ जाता है, अनेक पॉइंट ऐसे हैं जहां लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं। उनको चिन्हित कराकर उनको ठीक करने की जरूरत है। मंत्रालय इस पर काम करेगा, मेरी आपके माध्यम से विनती है। मैं आपके माध्यम से मेरे संसदीय क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मार्ग है, जबलपुर, नरसिंहपुर, गाडरवारा, पिपरिया, होशंगाबाद, हरदा, खंडवा और सीधा जलगांव जाता है। हम अनेक एक्सप्रेस वे इस देश में बना रहे हैं, सरकार नई कई एक्सप्रेस वे का प्रावधान भी कर रही है। मेरा आपसे आपके माध्यम से प्रार्थना है माननीय मंत्री जी से कि जबलपुर से नरसिंहपुर, गाडरवारा, पिपरिया होकर होशंगाबाद और जलगांव महाराष्ट्र को जोड़ता है। माननीय गडकरी जी का स्टेट भी महाराष्ट्र है और जलगांव हमारे यहाँ एजुकेशन हब है। जबलपुर हाई कोर्ट है, गाडरवारा हमारा आचार्य रजनीश की जन्मस्थली है, पिपरिया पचमढ़ी एक हमारा टूरिज्म का हेडक्वार्टर है। तो इन सबको जोड़ने के लिए एक एक्सप्रेस वे बनेगा, जल्दी बनेगा, ऐसा मैं आग्रह करता हूं। माननीय सभापति महोदय, जो निर्माण कार्य चल रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस देश में ट्रांसपेरेंट सिस्टम, एक ईमानदार सोच के साथ काम करने की एक प्रवृत्ति पैदा हुई है। और इस सब के बाद भी अगर कहीं गुणवत्ताहीन कोई काम होता है तो मुझे लगता है वो चिंता का विषय है। जबलपुर भोपाल होकर जो मार्ग जयपुर जाता है, पहले भी मैंने अनेक बार शिकायत की है, हम लोगों ने सीधे जाकर मंत्रालय में भी आग्रह किया है और आज आपके माध्यम से सदन में भी इस बात को रखता हूं कि जबलपुर से हमारा जो भोपाल मार्ग है उसमें खास करके नरसिंहपुर जिले का कुछ हिस्सा और रायसेन जिले में जो मार्ग बन रहा है, अभी उसका उद्घाटन हुआ है, टोल चालू हुआ है, लेकिन निहायत गुणवत्ताहीन राष्ट्रीय राजमार्ग तैयार हुआ है। उसकी तुरंत चिंता करने की जरूरत है, नहीं तो यह संदेश ठीक नहीं जाता कि आज जब हम हर चीज अच्छी कर रहे हैं, सारी जगह पूरा मार्ग अगर 400 किलोमीटर में ठीक बना है तो 100 किलोमीटर क्यों खराब बना। इस पर एक हमारी चिंता है जिस पर मंत्रालय ध्यान देगा। दूसरा मेरा अनुरोध है कि जो हाईवेज हमारे तैयार हुए हैं, बाईपास हमने तैयार किए हैं, अंदर के जो मार्ग छूट गए हैं, जैसे इसी भोपाल जबलपुर हाईवे के ऊपर चाहे देवरी बाईपास हो, उदयपुरा का बाईपास हो, खरगोन का बाईपास हो, बरेली का बाईपास हो, बाड़ी का बाईपास हो, इनके अंदर के मार्ग नहीं बनाए। उनकी नरक जैसी स्थिति हो रही है, वहां पर धूल उड़ रही है, लोग रोज व्यापारी परेशान होते हैं, हम लोग जाते हैं। चूंकि राष्ट्रीय राजमार्ग सीधा भारत सरकार से जुड़ा विषय है, हम लोगों से लोग आग्रह करते हैं इनको जल्दी इनका मेंटेनेंस होना चाहिए, निर्माण होना चाहिए। आपके माध्यम से प्रार्थना है, इस पर भी शीघ्र निर्णय सरकार करेगी। आखिरी बिंदु में आपके सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं, जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है उसमें नरसिंहपुर जिले का हिस्सा और जबलपुर जयपुर एक्सप्रेस हाईवे का जो हिस्सा क्रॉसिंग जो है वो समतल भूमि में है, एशिया की श्रेष्ठ भूमि है, उसमें ये दोनों हाईवे क्रॉस करते हैं। वहां समतल होने के कारण पानी की निकासी नहीं है, तो पानी भर जाता है, महीनों तक पानी भरा रहता है किसान को अपनी बुआई आदि के समय। और खासकर उस राजमार्ग चौराहे पर नरसिंहपुर जिले में जहां पर की आबादी हजारों की संख्या में लोग इस एनएच के कारण वहां बस गए हैं, उनकी पानी की निकासी नहीं हो पा रही। मंत्रालय एक कोई बड़ा प्रोजेक्ट वहां पर इस ड्रेनेज सिस्टम के लिए बनाकर लोगों को मदद करने का काम करेगा, यह भी मैं आपके माध्यम से अनुरोध करता हूं। और पुनः हमारा सड़क और परिवहन मंत्रालय के जो अनुदान मांगे हैं
उसके समर्थन करते हुए आपने मुझे समय दिया। आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री सी थॉमस जी। Thank you, Chairman, for giving me an opportunity for participating in this discussion on the demands for grants to the Ministry of Transport and Highways. Sir, this is a very important ministry. As we all know, the road infrastructure is very important for the growth of any country, economic as well as social development of any country. In India, as per the available information in the NHAI website, we have around 132,000 kilometers of national highways, out of which more than 70,000 kilometers are under the NHAI. Now, there are several projects proposed by the NHAI. The total amount of allocation in the budget is 68,000 crores, and the demand is for 1,99,000 crores. Of course, the demand is very correct, and the amount required is definitely more than 68,000 rupees, 68,000 crore. Sir, we are proposing, the government is proposing so many highways, including green highways, greenfield highways, and also express highways. But I am constrained to mention that out of these greenfield highways and express highways, there is no single highway, express highway proposed in Kerala. We have few greenfield highways proposed in Kerala, and also few other highways, out of which 4 are connecting my constituency. Of these 4, one highway, greenfield highway, NH85, starting from Kochi to Kochi, Munnar and Theni, it is some 132 kilometers, having a length of 152 kilometers. More than 30 years back, there was a proposal for constructing a bypass at Tripunithura, which is connecting 3 constituencies, Kottayam, Chalakudi, as well as Ernakulam. And a bypass for having a length of more than 8 kilometers was proposed, which was proposed to be constructed in 2 phases. First phase was 4 kilometers long, for which 16 hectares of land was proposed to be acquired. 4 hectares were acquired more than 30 years back. The balance land was frozen. Earlier, our honourable member, Sri N.K. Premachandran, was mentioning when the consultants are preparing the project for the construction of highways, they are not consulting the members of parliament, the representatives of that area. That has happened here in this case also. The consultants have prepared an alignment, a new alignment, for which they have proposed a bypass from Angamali to Kochi, which is avoiding this Tripunithura bypass. Again, this NH85 greenfield highways, that also is avoiding the Tripunithura bypass. And more than 219 families are suffering now. They could not do anything for the last 30 years for any construction in the land, for any other purpose. They were not allowed to use this. My humble request to the Honourable Minister, we have already represented to the NHAI that at least a standalone project. I understand that as per the NHAI rules, there can be a standalone project which can be a spur connectivity to Tripunithura from this NH85, that is Kochi Theni bypass, Kochi Munnar Theni bypass.
That will save the life of 219 families. Sir, I would request you, I have already represented it, we all have represented it. I would request you to take up this matter and give directions to the NHA authorities that while they construct the NH85, that is Greenfield Highway from Kochi, Munnar to Theni, they should construct a spur connectivity for the Tripunithura town that is connected to the Greenfield Highway. Sir, there is another proposal for a construction of a new Greenfield Highway parallel to the MC Road. MC Road is the first state highway in Kerala from Trivandrum to Angamali. There is a proposal for construction of a parallel Greenfield Highway to MC Road, and the length of the highway is more than 228 kilometers. I would request the proposal is pending there. Some alignment has been taken up, but no fund has been allotted. So immediate steps may be taken up for construction of a Greenfield Highway from Trivandrum to Angamali parallel to MC Road, for which will help the present congestion in the MC Road all through. MC Road is more than 200 kilometers long, and parallel Greenfield Highway will definitely set off the congestion in the MC Road. Sir, there is another proposal which has been agreed by the Honourable Minister with our Honourable Chief Minister. That is a road connecting from NH 183 to 85, NH 85, starting from Kottayam, that is my own constituency, Kottayam, via Palai to Todupuzha, then Undugal. Undugal is connecting NH 85. So 183 and connecting 183 and 85. That proposal has been agreed to by Honourable Minister for North and with our Honourable Chief Minister. But no further progress is there. This will help the tourism potential in Kerala. Kerala is more famous for tourism. And Komaragam is just 15 kilometers away from the starting point of this highway. And Undugal, from Undugal you can go to Munnar, Komaragam and Munnar, one backwater station and one hill station. Please that can be connected, and that proposal should be taken up immediately. Sir, only one proposal. Sir, the road safety people, all the members were mentioning about this road safety. There is a slight reduction of 12% in the road accidents during the last 1 year compared to the previous year. But the government should take steps to reduce the accidents. There are people who are driving after drinking. There are people who are overspeeding. There is jumping of the traffic signals, driving using mobile phones, then also without seat belts. Thank you. Sir, these things should be restricted, prevented, and actions should be taken against those people. Thank you very much. Thank you very much. Shri Rajiv Pratap Lodi ji. धन्यवाद सर। आज जिस विषय पर हम लोग बोलने के लिए आपकी अनुमति है बजट के इस अभिभाषण पर, और सचमुच अगर सड़क मंत्रालय 2 लाख करोड़ मांगती है तो उसे लाख करोड़ और भी दे देना चाहिए, क्योंकि इससे बेहतर देश के प्रधानमंत्री ने जो नक्शा बनाया है, मुझे लगता है इससे बड़ा काम देश में जो पिछले 100 साल 17 साल में नहीं हुआ, जो अभी हो रहा है, इसका कोई तुलना ही नहीं किया सकता। अद्भुत है साहब। और इसलिए मैं कहूंगा कि अगर मैं उत्तर बिहार में हूं, और अगर किसी को भी उत्तर बिहार में जाना होगा तो गंगा पार करके जाना होगा। और पीछे मुझे थोड़ा जलन सा हुआ
जलन इस बात का हुआ कि मैंने उत्तर प्रदेश में देखा चुनाव के पहले, जगदम्बिका पाल साहब बैठे हैं, बाकी लोग, एक फाइटर एयरक्राफ्ट हवाई जहाज वहां उतर गया आगरा हाईवे पर, तो मुझे थोड़ा जलन सा हुआ। और मैंने जाकर के माननीय गडकरी जी को कहा और प्रधानमंत्री जी को कहा, और मैं बताना चाहूंगा कि बिहार में भी बाकरपुर सोनपुर से डुमरिया घाट तक एक ऐसा ही एक्सेस कंट्रोल हाईवे बनने जा रहा है जिसमें गति की जो सीमा होगी वो 120 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। और जो हम लोग 4 घंटे और 5 घंटे में, डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हैं गोपालगंज के, अब वो मात्र 1 घंटे 10 मिनट में कर पाएंगे। उस पर फाइटर जहाज भी उतरेगा। तो देश के प्रधानमंत्री ने सारण की जनता को और बिहार की जनता को ऐसा सड़क भी दे दिया। गंगा पार करने में बड़ी कठिनाई होती थी और पैकेज वैकेज की बात करते रहते हैं लोग, विशेष स्टेटस की बात करते रहते हैं, मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि देश की सरकार नीति बनाती है और नीति के साथ जो विकास आता है वो पैकेज वैकेज से कहीं बहुत ज्यादा है। विशेष दर्जा क्या होगा? अगर नीति अगर आपकी सही होगी, सोच सही होगा, योजना सही होगा, तो लाखों करोड़ रुपया राज्य में चले जाएंगे। ऐसी सरकार तो हमने देखी नहीं थी, कम से कम हम लोग 25 साल से पार्लियामेंट में हैं और इस प्रकार से देश बिहार को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन बिहार को अपने तो आप सोचना पड़ेगा गिरिराज जी कि कैसे हम लोग को करना है, क्योंकि उफान हो जाता है जब ऐसी बातें होती हैं। 6 लेन गंगा, हम लोग कह रहे थे 2 लेन का गंगा सेतु, तो देश की सरकार ने, प्रधानमंत्री ने कहा 2 लेन क्या होता है भाई? जब गंगा पार ही करना है और रूडी जी के क्षेत्र से जाना है, हाजीपुर से जाना है, तो उसको 6 लेन बनाइए। और आज जेपी सेतु के पैरेलल 6 लेन बन रहा है। छपरा शहर में हमको बड़ी कठिनाई हो रही थी, 2 लेन था, देश की सरकार से मांग किया, वो आज 6 लेन होने वाला है। और इस बीच में वैशाली जाने की बात पता नहीं कब से होता था कि वैशाली के लिए पटना से सीधे रास्ता, तो सीधे सोनपुर से निकल करके दरियारा होकर के गंडक पार करके वैशाली, और वैशाली साहेबगंज होके नेपाल, ये भी योजना स्वीकृत है। शेरपुर दिगवारा साहब, मैंने माननीय बिहार के मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करना चाहूंगा। भाषण में नया गांव में मैंने उनसे कहा कि एक पुल चाहिए, उन्होंने कहा रूडी जी ले लीजिए। वहां से जब सहमति प्राप्त हुई और दिगवारा शेरपुर के बीच में 5000 करोड़ रुपए की लागत से नए पुल का निर्माण हो रहा है, जो पूरे उत्तर बिहार के लिए एक नया 6 लेन 4 लेन न जाने क्या क्या हमारे राज्य में हो रहा है। नहीं, नीतीश कुमार जी ने सहमति दी, उन्होंने मांग की और केंद्र की सरकार बना रही है। अभी हम केंद्र की सरकार की बात कर रहे हैं। गाजीपुर से, नहीं अच्छा बता, अच्छा इंडिया की सरकार बना रही। नहीं, मेरा सर ये माइनस किया जाए, 2 मिनट फिर गड़बड़ किया निशिकांत जी और तो कुछ नहीं, बीच में डिस्टर्बेंस होने। उसके बाद उत्तर प्रदेश, हमको लखनऊ जाना हो, हमको टाइम क्यों लगेगा भाई? क्योंकि बीच में गाजीपुर से छपरा माझीपुरा रोड में वो 2 लेन था और हाईवे नहीं था, उसकी भी स्वीकृति होगी खट से। और आज अगर छपरा से हमको लखनऊ जाना हो तो जैसे इस काम को पूरा होगा 2.5 से 3 घंटा में हम छपरा से लखनऊ पहुंच सकते हैं। तो कमाल का चीज है। लोग कहते हैं विशेष दर्जा विशेष दर्जा, अरे भाई नीति बनाओ, योजना बनाओ, सोच बनाओ और आगे निकल जाओ। फिर उसके बाद आगे रिविलगंज बाईपास, उस शहर में रिविलगंज छोटा सा एक नगर पंचायत है, बड़ी दिक्कत होती है। आग्रह किया, रिविलगंज बाईपास पूरा सड़कों का जाल है। उतना ही नहीं, दिगवारा से जो नया पुल बनेगा भारतमाला फेज 2 में, फेज 1 में तो नहीं हो रहा है, लेकिन फेज 2 में राम जानकी पथ तक जाने का मार्ग, तो सड़कों का जाल उत्तर बिहार में। और आज की तारीख में मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि सारण जिला, क्योंकि हमारा द्वार है, वहीं से आपको उत्तर बिहार में जाना है, तो उत्तर बिहार के लिए और सारण जिला में आज 18,000 करोड़ का काम देश की सरकार और देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। तो कौन कहता है पैकेज की बात? वो तो सब योजनाओं से ही नीति बनाइए और आगे निकल जाइए जैसे बाकी राज्य करते हैं। तो रोना किस बात का है? हम तो आगे बढ़ ही रहे हैं, लेकिन बढ़ाने का राज्य सरकार का संकल्प का भी दृष्टि अलग होना चाहिए। लेकिन भेल्दी सड़क हो, ये हो, अब ये अच्छी बातें। इसके अलावा एक्सेस कंट्रोल, अब मैं नीतिगत पर जाऊंगा, ये तो क्षेत्र का था और राज्य का, मैं नीतिगत फैसला। अध्यक्ष जी, देश की सरकार, ये राज्य की सरकार सड़क बनाती है, हम सड़क बनाते हैं, किसी तरह से राइट ऑफ वे लेते हैं, सड़क बनाते हैं और एक्सेस कंट्रोल के लिए बैरियर लगा देते हैं। क्या देखते हैं उसके किनारे? कोई शोरूम खोल रहा है, कोई रियल एस्टेट कंपनी वाला जमीन खरीद रहा है, कोई वहां से रास्ता निकाल रहा है। देश की सरकार सड़क इसलिए नहीं बनाती है कि उसके बगल में दुकान मकान बना करके लोग अपना व्यवसाय करें। और एक नीति होनी चाहिए, जहां जहां नेशनल हाईवे डिक्लेयर होता है, जहां जहां नेशनल हाईवे चाहे एनएचएआई का हो, रेंज का हो, साथ ही साथ सर्विस लेन के लिए राज्य सरकार को उसके पैरेलल कम से कम 30 से 50 मीटर राइट ऑफ वे का घोषणा कर देना चाहिए, चाहे उसका एक्विजिशन जब भी हो, लेकिन उसके बगल में कोई काम नहीं होगा जब तक वो खेती करता रहेगा।
खेती करता रहे, लेकिन जिस दिन देश की सरकार को जरूरत होगी वो सड़क पर इसकी योजना पॉलिसी के स्तर पर वीके सिंह साहब जिस दिन ले आइएगा, तो अमेरिका और जर्मनी और यूरोप की जो बात करते हैं वो हम लोग भारत, कहीं ये नीतिगत फैसला में अभाव है। आपको खरीदने के लिए नहीं कर रहा, भारतमाला में सब पैसा दे रहे हैं, लेकिन भारतमाला की योजना वही स्वीकृत कीजिए जहां राज्य सरकार सहमत दे दे कि अगर मेरा राइट ऑफ वे 35 मीटर है, 40 मीटर है, तो 25 मीटर हमारे जिम्मे रहेगा। जब हमारे पास पैसा आएगा हम सर्विस लेन बना देंगे, कम से कम लाखों करोड़ रुपया जो खर्च हो रहा है उसका नुकसान तो नहीं हो। तो एक नीतिगत फैसला की जरूरत है, और राज्य सरकारें भी जो पीडब्ल्यूडी रोड बना रही है उसके बगल में भी नीतिगत फैसला होगा। सड़कें दुकान बनाने के लिए नहीं है, सड़कें